لا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يؤفون بالنظر ويخافون كيوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تظليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وغلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا.
इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाअन व कान सायकुम मशकूरा इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आसिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकुरतन व असीला व मिनल लैलि फस्जुद लहु वसब्बिहु लैलन तवीला इन्ना हाउलाइ युहिब्बूनल आजिला व यज़रूना वराहुम यौमन सक़ीला नहनु खलक़नाहुम व शददना असरहुम व इज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। नारे सलवात। इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमन युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीना अ'अद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलैहि सलावत। तज़किरे कुरान मजीद की तिलावत कुरान मजीद के बाद जो शबे जुमा में पढ़ी जाने वाली दुआ मशहूर जो अहले बैत का बेहतरीन कसीदा है, जिसे परवरदिगार आलम ने खुद बयान किया है कि अहले बैत की क्या अज़मत है और अहले बैत की क्या मंजिलत है। लिहाजा अब आपके सामने हदीस किस्सा की तिलावत होने जा रही है। आप हज़रात बुलंदतर सलवात पढ़ें पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी अन्नहु क़ाला अन फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाला समिअतु फ़ातिमत अन्ना क़ालत दख़ल अलैया बि रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाला अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाला इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ुअफ़न फ़क़ुल्तु अऊज़ु बिल्लाहि मिनज़ ज़ुअफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इती बिल-क़िस्वाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतु बिल-क़िस्वाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलाअलअ कअन्नहु अल-बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। नारे सलवात। फमा कान इल्ला साअतन व इज़ा वलदियल हसन क़द अक़बला व क़ाला अस्सलामु अलैका या उम्मा फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रता ऐनी व सवत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मा इन्नी शुमिलतु राहितन तय्यबतन काना राहितु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसा फ़अक़बलल हसन नहवल किसा व क़ाला अस्सलामु अलैका या जद्दा या रसूलल्लाह
الله أتأذنني أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء صلوات. فما كان سعد وإذ ولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمي أو يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي. فقال يا أم إني أشم عندك راحة طيبة كان راحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدني الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل الحسين عليه السلام معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم منك راحة طيبة كان راحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم هو ما والديك تحت الكساء. فأقبل علي نعم الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواعي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء صلوات. صلي على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدغيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها.
फ़क़ाल जिब्रील अलैहिस्सलाम या रब्बी अताज़नु ली अन अहबत इलल अर्ज़ि लियकूना माअहुम सादिसा फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल फ़हबत अमीन जिब्रील वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल अलीयुल अला युक़रिउक सलाम व युख़िस्सुक बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लक व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़तु समा मबनिया वला अर्ज़म मदहिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम व क़द अज़ुली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल ताज़ुन या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह व अलैहिस्सलाम या अमीन वहिल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम मअना तहतल किसा फ़क़ाल लिअबी इन्नल्लाह क़द उहिया इलैकुम यक़ूल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अली इब्न अबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहत अल-किसा मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाहि तआला फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबी मुस्तफ़ानी बिरसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महाफ़िल अहलिल अर्ज़ फ़ी जमिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु हफ़्फ़त बिहुमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला यतफ़र्रक़ू सलवात। फ़क़ाल अली ज़वल्लाहि फ़ुज़ना फ़ाज़ शिय्यतुना व रब्बिल काबा फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबी मुस्तफ़ानी बिरसालति नजिय्यम मा ज़ुकिरा ख़बरना हाज़ा फ़ी महाफ़िल अहलिल अर्ज़ फ़ी जमिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमिन लफ़रजल्लाहु हम्मा वला महमूमिन इल्ला कशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिब हाजत इल्ला क़ज़ल्लाहु हाजता। फ़क़ाल अली ज़वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद दुनिया वल आखिरा व रब्बिल काबा सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार इस कलील से इबादत कबूल फरमा, इसमें जो कमी रही उसे माफ फरमा, इस जश्न को कामयाबी और कामरानी अता फरमा, इस जश्न के जितने अरकान हैं हर एक की हिफाजत फरमा, हर एक को तूल उम्र अता फरमा, हर एक की दिली हाजतों को रवा फरमा, हाज़रीन महफिल की तमाम हाजतों को रवा फरमा। ऐ अल्लाह जो दूर दराज से आए हों उन सब मुसाफिरों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हर एक की दिली मुरादों को पूरे फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अली व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान सलवात। 24वें दौर का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो चुका है। जो हज़रात तामनोश फरमा चुके हैं वो फ़र्श महफिल पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं अंजुमन के सेक्रेटरी जनाब ज़फ़र इमाम साहब और नायब सदर जनाब रज़ा हैदर साहब और ताहिर हुसैन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की सदारत कर रहे अलहाज रईस अहमद साहब की गुलपोशी करें। आज की इस नूरानी महफिल को खिताब फरमाएंगे अली जनाब
मौलाना गुलजार जाफरी साहब और मेहमान एजाज़ी की हैसियत से तकरीर करेंगे आली जनाब मेराज हैदर आदमी साहब। हमेशा की तरह गुलपोशी कर रहे हैं जनाब ज़फ़र इमाम साहब, और ये स्टाल उड़ा रहे हैं जनाब रज़ा हैदर साहब, जो आज महफिल की रात भर सदारत करेंगे। हमारी अंजुमन के सरपरस्त भी हैं। अब मैं हमेशा की तरह कुछ बच्चे नजराने अक़ीदत पेश करते हैं। मैं हसन सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और बारगाह बाबुल हवाइज में नजराने अक़ीदत पेश करें। नारे दुरूद से आप उनका इस्तक़बाल करें। शेख से दोस्ताना बुरी बात है, उनसे मिलना मिलाना बुरी बात है। महफिले मुर्तज़ा में जो आते नहीं, उनके घर आना जाना बुरी बात है। शेख से दोस्ताना बुरी बात है, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये ज़िक्र अली, सुन्नत मुस्तफ़ा है ये ज़िक्र अली। इस पे उंगली उठाना बुरी बात है, शेख से दोस्ताना बुरी बात है। जिसको महफिल से अपनी उठा दे नबी, जिसको महफिल से अपनी उठा दे नबी, उसको दिल में बिठाना बुरी बात है। शेख से दोस्ताना बुरी बात है। जो भी गाजी का परचम उठाते नहीं, जो भी गाजी का परचम उठाते नहीं, हाथ उनसे मिलाना बुरी बात है, बुरी बात है। बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे हसन सल्लल्लाहु। अब मैं हुसैन सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो भी बारगाह इमाम में नजराने अक़ीदत पेश कराएँ। जो हजरात बाहर तामलोश फरमा चुके हैं, मेरी उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, महफिल का आगाज़ हो चुका है, फ़र्श महफिल पे तशरीफ़ रखें। हुसैन सल्लल्लाहु से गुजारिश है कि वह आए और कलाम पेश करें, नारे दुरूद से इस्तक़बाल करें। सलवात। फर्श महफिल जो हम सब बिछाने लगे, फर्श महफिल जो हम सब बिछाने लगे, फर्श महफिल जो हम सब बिछाने लगे, फतवे बिदअत के मुफ्ती लगाने लगे, फतवे बिदअत के मुफ्ती लगाने लगे। नाम हैदर से नस्लें परखता हूँ मैं, नाम हैदर से नस्लें परखता हूँ
अपना चेहरा छिपाने लगे? आप क्यों अपना चेहरा छिपाने लगे? जिनकी नजरों में बिदअत था कल तक अलम, जिनकी नजरों में बिदअत था कल तक अलम, जिनकी नजरों में बिदअत था कल तक अलम, आज खुद ही वो झंडा उठाने लगे। आज खुद ही वो झंडा उठाने लगे। मैंने हैदर के दुश्मन पे लानत किया, मैंने हैदर के दुश्मन पे लानत किया, मैंने हैदर के दुश्मन पे लानत किया। शेख जी आप क्यों दिल मिलाने लगे? शेख जी आप क्यों दिल मिलाने लगे? मजलिसों का करम दुश्मनों पर भी है, मजलिसों का करम दुश्मनों पर भी है, मजलिसों का करम दुश्मनों पर भी है। कम से कम वो भी जलसा कराने लगे, कम से कम वो भी जलसा कराने लगे। जब मुज़फ़्फ़र ने चर्चा अली का किया, जब मुज़फ़्फ़र ने चर्चा अली का किया, जब मुज़फ़्फ़र ने चर्चा अली का किया, सुन के महफिल में सब मुस्कुराने लगे, सुन के महफिल में सब मुस्कुराने लगे। सलवात। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेहतरीन कलाम पेश कर रहे थे बेहतरीन तरन्नुम के साथ। मैं वसी सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो भी बारगाह बाबुल हवाइज में नज़राने क़िद्दत पेश करें, नारे दुरूद से आप उनका इस्तक़बाल करें। हाज़िरान महफ़िल सलाम अलैकुम। कितना मासूम है, कितना मासूम है, प्यारा है भला है अब्बास। कितना मासूम है, प्यारा है भला है अब्बास। गोद में मज़हबे, गोद में मज़हबे सादिक के पला है अब्बास। गोद में मज़हबे सादिक के पला है अब्बास। पांच मासूमों ने एक साथ दुआ मांगी है। पांच मासूमों ने एक साथ दुआ मांगी है, तब कहीं जाके ज़माने को मिला है अब्बास। तब कहीं जाके ज़माने को मिला है अब्बास। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। कट गए हाथ मगर शेर का गुस्सा न गया। जख्म खाकर भी वो कर्रार नजर आता है। जख्म खाकर भी वो कर्रार नजर आता है। पांच मासूमों शाम की फौज को ये बात तो मालूम न थी। शाम की फौज को यह बात तो मालूम न थी। उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है। उसको बेहाथ भी लड़ने का हुनर आता है। ज़िक्रे अब्बास ज़माने का भला करता है। ज़िक्रे अब्बास ज़माने का भला करता है। खुलूस से दिल से जो मांगे तो अता करता है। खुलूस से दिल से जो मांगे तो अता करता है। दुआए फातिमा ज़हरा की सखावत देखो। दुआए फातिमा ज़हरा की सखावत देखो। ये कटे हाथ से
सलवात। उसे मिसले अलियो मुस्तफ़ा एहसास कहते हैं, उसे मिसले अलियो मुस्तफ़ा एहसास कहते हैं। उसी को गैरते कर्रार का आकाश कहते हैं, उसी को गैरते आकाश का कर्रार कहते हैं। जो काबिज हो के दरिया से प्यासा ही पलट जाए, जो काबिज हो के दरिया से प्यासा ही पलट जाए, वफादारों की दुनिया में उसे अब्बास सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वफादारों की दुनिया लीजिए मौलाना अली जनाब मौलाना सलवात। मेराज हैदर साहब और ख़तीब आज के जश्न के ख़तीब हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना गुलजार जाफरी साहब और हमारे पेशे इमाम अली जनाब मौलाना इब्ने अब्बास साहब भी डैश पे तशरीफ ले आए। बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ो बेटा। 14 की 14वीं को जो चमका महे कमाल, 14 की 14वीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई किसकी है मजाल, उससे नजर मिलाए कोई किसकी है मजाल। जिसने मिटा के रख दिए बैत के हर सवाल, जिसने मिटा के रख दिए बैत के हर सवाल। आने दिया ना मकसद शबीर पर जवाल, आने दिया ना मकसद शबीर पर जवाल। वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास बची जुल्फ़िकार है, हैदर की जिसके पास बची जुल्फ़िकार है। हुक्मे ज़हूर रब से पाए गए के दिन, अंदाज है दरी वो दिखाए गए के दिन, लेकर वो जुल्फ़िकार को आए गए के दिन। औकात किसकी क्या है बताए गए के दिन। अरे बैठा हुआ है गैब वारिस रसूल का, वो इंतकाम मान के लेगा बतूल का। सलवात। ये थे वसी सल्लल्लाहु। अब मैं मोहसिन सल्लल्लाहु से गुजारिश करूँगा कि वो बारगाह इमाम में नजरान अक़ीदत पेश करें, नारे दुरूद से आप उनका इस्तक़बाल करें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक बाबा से बुलंद नारे सलवात। सजदे को अदा करना जिस तरह इबादत है, सजदे को अदा करना जिस तरह इबादत है, सजदे को अदा करना जिस तरह इबादत है, जिस तरह इबादत है। सज्जाद की मिदहत भी मोमिन की अलामत है, सज्जाद की मिदहत भी मोमिन की अलामत है। तो पाबंद सलासिल है इस्लाम की खातिर वो, पाबंद सलासिल है इस्लाम की खातिर वो, इस्लाम की खातिर वो। बाजू में अली जैसी जिस शख्स के ताकत है, बाजू में अली जैसी जिस शख्स में ताकत है, कि वो कैद नहीं होगा बीमार नहीं होगा, वो कैद नहीं होगा बीमार नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। आबिद की मोहब्बत है वो जिसके भी सीने में आबिद की मोहब्बत है। एक बाब से नारे सलवात। अब मैं आखिर में गाजी इमाम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और बारगाह बाबुल हवा में नज़रान अक़ीदत पेश करें, नारे दुरूद से आप उनका इस्तक़बाल करें। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को इस जश्न की बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक सलवात पढ़िए ज़रा। इसलिए तो हर मुसीबत
बला सदमे में है, इसलिए तो हर मुसीबत हर बला सदमे में है। घर हमारा परचमे अब्बास के साए में है, घर हमारा परचमे अब्बास के साए में है। कुछ नए मज़मून भी नहजुल बलागा दर्ज कर, कुछ नए मज़मून भी नहजुल बलागा दर्ज कर। देख ज़ैनब की खिताबत बाप के लहजे में है, देख ज़ैनब की खिताबत बाप के लहजे में है। कब्र गाजी पढ़ रहा करता है वो महबे तवाफ, कब्र गाजी पढ़ रहा करता है वो महबे तवाफ। आज तक दरिया मेरे अब्बास के कब्जे में है, आज तक दरिया मेरे अब्बास के कब्जे में है। बच्चों की पेशखानी का सिलसिला यहीं पर अख्ताम पजीर होता है। जो हजरात ताम नोश फरमा चुके हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो फ़र्श महफिल पे तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं बहुत अदब एहतराम के साथ आज के मेहमान आज़ादी आज जनाब मौलाना मेराज हैदर आदमी साहब से गुजारिश करूँगा कि आएँ और इस महफिल को खिताब फरमाएँ, एक नारी दुरूद से आप उनका इस्तकबाल करें। पीछे होता तो ठीक था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन अलानि इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला मौलाना अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्साकितु अनिल हक़ शैतानुन अख़रस। आपके सामने मैंने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल पेश किया है, जिसमें आपने बड़ी बेहतरीन बात कही है। मैं उसके ज़िम्न में चंद बातें कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे बुजुर्गान यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताए देना चाहता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी खिताबत यहाँ नहीं है। बस मैं शऊर खिताबत को मेराज की मंजिल तक पहुँचाने के लिए दरमियान में हायल हुआ हूँ और आप हजरात के दरमियान थोड़ा सा वो माहौल बन जाए और वो हमारे बिरादरान जो खा चुके हैं, ताम नोश फरमा चुके हैं, वो भी हाजिर हो जाएं। बिलखुसूस अंजुमने गुंचे अब्बासिया के वो तमाम मेंबरान जो मुझे दिखाई दे रहे हैं सामने, अगर वो आ जाएं तो ठीक है, वरना मैं उस वक्त तक तकरीर करता रहूँगा जब तक कि ये हाल भर न जाए। एक सलवात पढ़ी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद।
कोई काम नहीं कर रहा है, बफर सिस्टम है, सब जाएंगे वहाँ अपना उठा के खा लेंगे। जितने अफराद हैं, मैं अंजुमन के तमाम अरकान से गुजारिश हूँ कि तमाम मोमिनीन जो फारिग हो चुके हैं उनको वो भेज दें अंदर, ताकि मैं शऊर खिताबत के लिए ज़मीन आमादा कर सकूँ और आप उनकी खिताबत से इस्तिफ़ादा कर सकें। मैंने आपके सामने मौलाए कायनात का जो कौल पेश किया है उसमें आप इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि अस्सा के तो अनिल हक़ शैतानुन अखरस, हक पर खामोश रहने वाला गूंगा शैतान है। हक पर खामोश रहने वाला गूंगा शैतान है। इस हदीस में चंद बातों की तरफ इशारा है। सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई हक को देख रहा है और उस हक के सामने बोलने की जुर्अत पैदा नहीं कर रहा है, उसका ढांचा तो इंसान का है लेकिन वो गूंगा शैतान है। उसने इंसानी शक्ल पाई है लेकिन वो एक गूंगा शैतान है। तवज्जो कीजिएगा, इसका मतलब यह है कि अगर हक पर कोई बोल नहीं सकता तो उसे इंसानियत के दायरे में मत देखना। तवज्जो कीजिएगा, इंसानियत के दायरे में उसे हतमन न देखना। अब दो चीज़ें हो गई, एक है बोलना, दूसरे है खामोशी। तवज्जो कीजिएगा, एक है बोलना, दूसरे है खामोशी। हक की बात आ जाए तो फिर बोला जाए। तवज्जो कीजिएगा, हक की बात आ जाए तो बोला जाए, बातिल की बात आ जाए तो होंठों को सी लिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, यानी हक को बातिल मेयार बनाया गया है। क्या कि अगर बोलोगे, देखिए बोलना हर जगह बुरा भी नहीं है और बोलना हर जगह अच्छा भी नहीं है। दोनों में दोनों पहलू पाए जाते हैं, यानी बोलना पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, मुस्बत पहलू भी है, मनफी पहलू भी पाया जाता है। आप अगर देखिए कि इंसान को बोलना कितना चाहिए, इंसान को खामोश कितना रहना चाहिए, तो जो कि मैं जल्दी जल्दी आपके सामने इस बात को पेश कर दूं। अगर बोलना मना होता तो कभी भी अमीर कायनात ये न कहते कि बोलो ताकि पहचाने जाओ। तवज्जो कीजिएगा, यानी बोलना इंसान की पहचान है। तवज्जो कीजिएगा, अब इस पहचान के भी दो पहलू पाए जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, बोलो के पहचाने जाओ, इसका मतलब बोलोगे तो पहचाने जाओगे। तो पहचाने कैसे जाओगे? जैसा बोलोगे वैसे पहचाने जाओगे। अच्छा बोलोगे तो अच्छे पहचाने जाओगे, बुरा बोलोगे तो तुम्हारी पहचान बुरी हो जाएगी। बोलो ताकि पहचाने जाओ। बोलने में दोनों पहलू पाए जाते हैं। अब बोलना कितना जरूरी है, परवरदिगार आलम ने कुरान में इसका भी मेयार मुअय्यन कर दिया है। बोलने में किसी को छूट नहीं। जब रहमतुल लिल आलमीन को अपनी मर्जी के मुताबिक बोलने की इजाजत नहीं, आखिर आयत आई ना, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब उस वक्त तक कलाम करता ही नहीं जब तक वही ना आ जाए। यानी हबीब को भी बोलना है, लेकिन उस बोलने में यह देखना है कि खुदा की मर्जी है कि नहीं। तवज्जो कीजिएगा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अब हमारे और आपके दरमियान बोलना है तो देखना है कि रिज़ाए परवरदिगार है कि नहीं, मर्जी है अल्लाह की कि है नहीं। अब कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है। तवज्जो कीजिएगा, हम सब जिस माहौल और जिस जमाने में गुजर रहे हैं वहाँ बोलने और न बोलने के मेयार हमारे ये हैं कि जब हम बोलना चाहते हैं, बोलने के पहले ये देख लेते हैं हमारे मफादात इससे वाबस्ता है कि नहीं। अगर हम बोले तो नुकसान हो जाएगा कि नहीं, अगर बोले तो कहीं हमारा फ़ायदा हो जाएगा, कहीं नुकसान हो जाएगा। लिहाजा हम बोलने के पहले सोचते हैं यहाँ पे बोलने से हमारा नुकसान ना हो जाए, हमारा फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी कि हम अपने मफादात को नज़र में रखते हैं, फिर बोलना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, तारीखी जुमला कह रहा हूँ, याद रखिएगा कि अगर
बोलना मफादात की बुनियाद पे होता, तवज्जो कीजिएगा, बोलना सिर्फ अपने फायदे के लिए होता, तवज्जो कीजिएगा, बोलना अपने फायदे के लिए होता तो कभी भी कटी गर्दनें न बोलती। तवज्जो कीजिएगा, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना पहले ही मुझे मेरे ब्रदर बुजुर्ग ने कह दिया जितना आप पढ़ेंगे उतना मैं अपने वक्त से माइनस कर लूंगा। मैं बिल्कुल इनके लिए सारे वक्त को माइनस कर रहा हूं। तो बोलो के पहचाने जाओ, तवज्जो कीजिएगा, बोलो के पहचाने जाओ। ये बचपन के हबीब हैं, एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बोलो के पहचाने जाओ। अमीर कायनात ने दूसरी जगह क्या कहा? खामोश रहने वाला, कहां? हक पर, तवज्जो, हक पर खामोश रहने वाला इंसान नहीं है, गूंगा शैतान है। तवज्जो कीजिएगा, हक पर न बोल पाया तो वो गूंगा शैतान है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जरा आइए हम देखते हैं कि आखिर कहां बोला जाए। तवज्जो कीजिएगा, हम मफादात को नजर में रखते हैं। कहीं एक सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब जरा गौर कीजिएगा, हम अपने मफादात को नजर में रखते हैं। मफादात कैसे हैं? कहीं माल का नुकसान न हो जाए, कहीं जान का नुकसान न हो जाए। तो कीजिएगा, कहीं माल का नुकसान न हो जाए, कहीं जान का नुकसान न हो जाए। हम नुकसानात और फायदे को पहले नजर में रखते हैं, फिर बोलते हैं जान का नुकसान न हो जाए, माल का नुकसान न हो जाए। जब तक तलवार न लटक जाए, जब तक कान पे कोई आकर के बंदूक न लगा दे, तब तक हम ये सोचते रहते हैं जान कैसे बच जाए, माल कैसे बच जाए। इस्लाम वो दीन है जो कहता है कि जानो माल की फिक्र न करो। तवज्जो, जानो माल की फिक्र न करो। कहां? जहां हक बोलना हो। तवज्जो, जहां हक बोलना हो, जहां हक बोलना हो वहां जान की ना फिक्र करो, माल की फिक्र ना करो। यही तो वजह है हम कहते हैं कि हक को पहचानना हो, सच्चे बोलने वालों को पहचानना हो, अपने लिए बोलने का किरदार, कहां बोलना है, कहां खामोश रहना है। जान खतरे में, 2 लाख का लश्कर, तो जो कीजिएगा, मर्सियों ने तादाद बहुत बयान कर दी है, 70,000 का लश्कर, 20,000 का लश्कर, फिर भी 72 के सामने बहुत ज्यादा। तो जो फिर भी 72 के सामने बहुत ज्यादा। ऐसे माहौल में एक शख्स आता है और आकर के कहता है तुम तो हमारे भांजे हो, आओ तुम्हारे लिए अमाननामा लेकर के आया हूं। यहां तो हमारी फितरत ये कहती है, दुनियावी इंसानी फितरत कहती है, यहां पे खामोश रह लिया जाए, उसके साथ निकल लिया जाए, जान भी बच जाएगा, माल भी बच जाएगा। लेकिन अब्बास ने वो तारीख रकम की, वाय हो ऐसे अमाननामे पर, तवज्जो कीजिए, वाय हो ऐसे अमाननामे पर जिसमें मैं बच जाऊं और इमाम न बच सके। तो जो कीजिए, अपने लफ्जों में, मैं बच जाऊं, मेरा इमाम बच जाए। आखिर अब्बास ऐसा जवाब क्यों दे रहे हैं? का यही तो बताना चाहता हूं, यहां बात है हक की। अगर इस हक पर मैं खामोश रह गया तो मेरा बाबा कह करके गया है, हक पर खामोश रह जाने वाला गूंगा शैतान है। एक सलवात पढ़िए बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस मैं इससे ज़्यादा भी बहुत तफसीली गुफ्तगू थी, लेकिन सारी गुफ्तगू को छोड़ते हुए आइए मैं अब इस दरमियान मैं गुजारिश हूँ अभी तक के नाजिम जनाब कशिश संडिलवी साहब से कि वो आए और कारकर्दगी रिपोर्ट पेश फरमाएं। बेहतरीन तकरीर समाअत फरमा रहे थे अली जनाब मौलाना मेराज हैदर साहब क़िबला से। मैं हमेशा की तरह अंजुमन की कारकर्दगी जो भी होती है वो 5 मिनट में पेश करता हूँ। हाइल मैं भी नहीं होना चाहता बीच में कि बस तकरीर सुने। हाँ, तो सबसे पहले हज़रात मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा उन मरहूमीन को इसाल कर दें जो इनकी वाबस्तगी अंजुमन से रही। उसमें कुछ नाम मैं पढ़ देता हूँ। सैयद यावर हुसैन रिजवी, सैयद इफ्तिखार हुसैन रिजवी, अलहाज तक़ील हसन जैदी, मौलाना शोजब काजिम जरवली साहब, आमिर फैज़ाबादी साहब, जो है आपके जाहिद हुसैन साहब बिलहरा,
सादत हुसैन साहब कस्बा बिलेरा, नसीर हुसैन साहब संगौरा, जनाब मुहिब हुसैन साहब आलमपुर, हुसैन मुस्तफ़ा असंदरा, अमीरुल हसन असंदरा, अफजाल हसन मोतीपुर, ये तमामी हजरात हैं। और अपने भी तमाम मोमिनीन मोमनात जो भी दुनिया में नहीं रहे उनको आप एक सूरह फातिहा इसाल कर दें। अंजुमन गुज़िश्ता 24 सालों से ये जश्न अब्बास का इनक़ाद कर रही है और उसमें बराबर के हमारे शरीक रहे और अपने मशवरे देते रहे। उसमें अंजुमन के सरपरस्त आली जनाब मौलाना वसी हसन आबिद हुसैन साहब, डॉक्टर अली हम्माद साहब, जनाब निहाल रिजवी साहब, डॉक्टर SM हैदर साहब जो हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा हैं, और डॉक्टर असद अब्बास साहब, इंजीनियर इफ्तिखार अली साहब, रफ़ाक़त हुसैन साहब, जनाब मुजाहिद हुसैन साहब, जनाब इरफास हुसैन साहब, ये हमारे सरपरस्त हमको ताउन अपना देते रहे और प्रोग्राम आगे बढ़ता रहा। अंजुमन के सदर जनाब शाहिद हुसैन रिजवी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और नायब सदर जनाब रज़ा हैदर पप्पू साहब, सादिक हुसैन साहब, ज़फ़र इमाम साहब और जाफ़र इमाम साहब और समीर अब्बास साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजुमन के सेक्रेटरी जो कि शाना बशाना मेरे साथ हर प्रोग्राम में शरीक रहते हैं और इस प्रोग्राम के जश्न में तो बराबर उनकी शिरकत रहती है मेरे साथ, जनाब ज़फ़र इमाम साहब जो कि डायस पे मौजूद हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी जनाब ज़ीशान हैदर साहब जो कस्बात के दौरों में हमारे साथ शाना बशाना रहते हैं, जनाब अशरफ हुसैन वली साहब और अम्मार हैदर साहब, प्रोपगंडा सेक्रेटरी जनाब अख्तर इमाम साहब और ज़फ़र अब्बास साहब की काविशें भी काबिल तारीफ़ हैं, और कन्वीनर जनाब कमर इमाम आदि साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ इस 24वें दौर में भी बहुत तन मन धन से शरीक रहे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और करबला कमेटी के चेयरमैन जनाब मुजाहिद हुसैन नकवी साहब और इसके मुतवल्ली जनाब मंजर अब्बास साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और हर दिल अजीज़ सबादत सादिक साहब जो कि 24 साल से यहाँ सफाई वफाई का काम देखते हैं और बहुत बखूबी करवाते हैं, मैं उनका तहे दिल से भी शुक्रगुजार हूँ। इस प्रोग्राम को पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी बराबर ताउन मिलता रहा है। इंचार्ज बरेल और कोतवाली के इंचार्ज और SDM जो है तिवारी जी, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने परमिशन देने में कोई कोताही नहीं बरती और परमिशन उन्होंने हम लोगों को दी। और डायस पर मौलाना इब्न अब्बास साहब, मौलाना फ़रूक मोदी साहब भी तशरीफ़ ले आए और इन सभी हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाज़िम इंक़लाब जो चौथी बार इस महफ़िल को ख़िताब फरमाएंगे उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमामी तफसील लंबी है लेकिन तमामी जो है एजेंसीज़ जैसे ग्राफ एन जी एजेंसी और अली CD एजेंसी, हुसैनी चैनल बाराबंकी, पैगाम अज़ादारी, खलीक एजेंसी और मुख्तार एजेंसी जो चैनल यहाँ पर सामने लगे हैं, इन तमामी हज़रात जो टेलीकास्ट करेंगे इसको उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर में मैं तमाम मोमिनीन से गुजारिश करूँगा जो बाहर तशरीफ़ फरमा हैं, अभी तक फ़र्श महफिल में तशरीफ़ नहीं लाएँ, उनसे मेरी मुद्दबाना गुजारिश है इस 24वें दौर को कामयाब बनाएं। और मैं ज़्यादा वक्त ले लेते हुए एक बार तमाम कस्बात से आए तमाम मोमिन मोमिनात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 23 साल से वो लगातार इस महफिल को में शिरकत कर रहे हैं और इस 24वें दौर में भी उनकी शिरकत हो रही है। मैं तहे दिल से तमामी कस्बात से आए हुए लोगों का शुक्रिया एक बार फिर अदा करता हूँ। अंजुमन के तमामी अरकान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि ये 24वें दौर को कामयाब बनाएंगे। आखिर में मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ अली जनाब मौलाना गुलजार जाफरी साहब से गुजारिश करूँगा कि वह आएँ और इस नूरानी महफिल के 24वें दौर को खिताब फरमाएँ। एक बुलंद तरीन सलवात से आप उनका इस्तकबाल करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर व मुईन क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद और आले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मैंने बरदर अज़ीज़ उज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मेराज साहब क़िबला को उकसाया था कि वो ज़्यादा तकरीर करें। वो कशिश साहब ने सोचा कि मैंने उन्हें धमकाया है कि वो कम पढ़ें। मैंने उनको उकसाया था कि वो ज़्यादा पढ़ें, और जो मोमिनीन अभी तक कुर्सियत ताम पर विराजमान हैं उनसे गुजारिश है कि वो फ़र्श एहतमाम पर आ जाएं, इसलिए कि ताम के वक्त का वक्त ख़त्म हो चुका है और फ़र्श एहतमाम उनके लिए बिछ चुका है। ज़्यादा तूल व तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे नाज़िम कशिश साहब जो है वो फ़ाइलें खोल रहे थे, तो अच्छा हुआ इस दौर में इन्होंने भी फ़ाइलें खोल दी, क्योंकि लोग फ़ाइलें खोलने से डरे हुए हैं। फ़ाइलें खोलने से डरे हुए हैं, और जब से स्टीफन जेफरी की फ़ाइल खुली है तब से तो मुजरिम साहूकार भी डरे हुए हैं कि कहीं उनका नाम तो ना आ जाए। लेकिन मैं अपने मोहतरम मजमे से एक जुमला कह के इस स्टीफन जाफरी के वहम और वहशत को ख़त्म करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, शर की आगोश में तरबियत याफ्ता अफराद की जब फाइलें खुलती हैं तो जिल्लत और जलालत उनका मुकद्दर बनती है। जिल्लत और जलालत उनका मुकद्दर बनती है, लेकिन खैर की आगोश में पलने वालों की जब फाइलें खुलती है तो मेराज ये है कि जश्न वफा में वफादारों के नाम गिनाए जाते हैं, और जश्न वफा में वफादारों का नाम गिनाया जाता है। ये बताने के लिए कि जो बाहर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इस जश्न वफा की लाज रखते हुए कुछ वफादारी का हक अदा करें और फर्श एहतमाम पर आ जाएं। जैसे जैसे वो आना शुरू कर देंगे, जाहिर है कि शोराए कराम दूर दराज का सफ़र तय करते हुए आए हैं, और आज की रात आप शोरा ही को सुनने के लिए बैठे हैं। हम तो इस फर्श मिदहत के, इस इबादत अज़ा के वो मुअज्जिन हैं कि जो सिर्फ बुलाने के लिए खड़े हुए हैं। जब तक लोग जमा हो जाएं तब तक हम यहाँ आपके सामने समखराशी करते रहें। जैसे ही शोराए कराम तशरीफ़ लाएंगे वैसे ही हम लोग अपनी अपनी जगह ले लेंगे। ज़ाहिर है कि शायरी एक सरमाया इल्मी है जो बहुत आसानी से हम तक लफ्ज़ों के सहारे पहुँचा दिया जाता है। एक वसी मफ़हूम होता है कि जिस वसी मफ़हूम को रदीफ़ व काफ़िये की बंदिश में रख कर आसान और सादा लफ्ज़ों में वो बात जो घंटों में कही जाए वो मिनटों में कह दी जाती है, और मजमा समझदार हो तो अशार लम्हों में पढ़ दिए जाते हैं, और लम्हों में पढ़े जाने वाले अशार होते हैं जिनमें सदियों का सफ़र तय कर दिया जाता है। लिहाजा जब शायर की फिक्र सफ़े किरतास पर कलम ले के बैठती है तो ये फिक्र की जौलानी उसे इस बात पर आमादा करती है कि बस औकात वो शेर कहने के लिए न जाने किस किस खैमे में जाता है, न जाने किस किस मशरब पे जाता है, न जाने किस किस गुल और गुलशन में जाता है, मगर उसका एहतियात ये होता है कि जिस बाग में जाता है अच्छी नस्ल के फूलों का इंतखाब करता है, अच्छी नस्ल के फूलों का इंतखाब करता है। हाँ, कलाई की नज़ाकत भी बताना हो तो ये कहता है कि वो तलवार भी चलाए तो चमेली की कली अगर कलाई पर बंधी हो तब भी उसकी शजात में फ़र्क नहीं आता। जब वो लफ्ज़ों का इंतखाब करता है तो याद रखिएगा वो लफ्ज़ों का भी हसब व नसब तय करके आता है। इसलिए शायर जब आता है तो वो सिर्फ शेर नहीं लाता, खूने जिगर सफ़े किरतास पर बिखेर के लाता है। गुजारिश ये कि शोरा को ऐसे सुनिएगा कि वो खूने जिगर लेकर आए हैं, ऐसे न सुनिएगा कि उनके अशारी का खून हो जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। लिहाजा जैसे जैसे शोरा आते जाएंगे आप हजरात की खिदमत में वो अपना सरमाए इल्मी पेश करते रहेंगे। याद रखिएगा, शोरा कराम जो शेर पेश करते हैं उसमें मिदहत होती है। ये और बात है कि आजकल दो तरह की शायरियाँ होती हैं। एक वो बैत होती है जिसमें उन्हें मासूम की तरफ से जन्नत मिलती है, कुछ बैतें वो होती हैं जिसमें वो सामईन को जन्नत बांटते हैं। हालांकि उन्हें जन्नत लेने का अधिकार है, जन्नत बांटने का अधिकार नहीं है। उन्हें चाहिए कि वो अपना काम करें, बैत पर बैत ले लें, मगर बैत पे जन्नत बांटने की कोशिश ना करें, इसलिए कि बैत लेना गुनाहगार का काम है और बैत देना मासूम की जिम्मेदारी है। बैत देना मासूम की जिम्मेदारी है।
इसलिए गुनहगार ये कोशिश ना करें कि मासूम के ओहदे पे विराजमान हो जाए, इसलिए कि जिन जिन गुनहगारों ने इस्मत के ओहदे को लेने की कोशिश की है वो कल भी लानती थे, आज भी लानती है और कयामत तक लानती रहेंगे। जिंदा तो जिंदा, मर के नबूवत के पहलू में चले गए हैं तब भी लानती है। ये ना सोचिएगा कि लानत का तौक गले से हटा दिया जाएगा, इसलिए कि मासूम की जगह पर जब तुम विराजमान होगे तो फिर तुम्हारे गले में जो गस्ब का तौक है वो डाला जाएगा, और गासिब बहरहाल काबिल लानत हुआ करता है। हाँ, ये और बात है कि गस्ब भी दो तरह का है। माल इमाम जो गस्ब किया जा रहा है, देखिए वक्फ दो तरह का है कहा जाता है। एक वो वक्फ है जो पैगंबर ने अपनी बेटी को दिया था, वो भी वक्फ था, और एक वो वक्फ है जो शिया आने अहले बैत के लिए देते हैं। मस्जिद का वक्फ करना, इमाम बारगाहों का वक्फ करना, तो ये भी वक्फ है, और जो पैगंबर ने फदक दिया, हिबा किया, वो भी वक्फ है। तो ये न सोचिएगा कि उन गासिबों पे लानत है और इमाम बाड़ा खा जाने वालों पे रहमत है। अगर वो काबिले लानत है तो ये भी काबिले लानत है। और याद रखिएगा, अगर गैर अहले बैत का हक खाने पे काबिले लानत है तो अपनों को बख्शा नहीं जा सकता। अदालत आलवी का तकाजा ये है कि जब इंसाफ की तलवार चले तो जैसे अपनों पे गैरों पे चलती है वैसे अपनों पे चले। इसलिए जरा ख्याल रखा जाए, ये दौर बड़ा पुराशोभ है और घटा टॉप है। हम जिस बज़्म वफा में बैठे हैं, जश्न वफा में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आए उस ममदूह का जिक्र कर दें जिसके लिए मैं हाजिर हुआ हूं। तो शुरू किया जाए यहाँ से कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। कुरान मजीद कहता है कि तुम उस नेकी को हरगिज़ हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक कि तुम वो नेकी ना करो कि जो तुम्हें पसंद है, यानी जो तुम्हें महबूब है उसे राहे खुदा में कुर्बान कर दो, ताकि उस महबूबियत की कुर्बानी के सिले में तुम्हारी नेकियों को कबूल कर लिया जाए। तवज्जो कीजिएगा, वो कौन है जो अपनी महबूब तरीन अशिया को राहे खुदा में कुर्बान करने की सलाहियत रखता है। कहते हैं कि जनाबे हिजाम बिन खालिद, जनाबे उम्मुल बनीन यानी जनाबे फातिमा कलाबिया के वालिद माजिद, आप उनकी तरबियत किया करते थे। और तरबियत का अंदाज ये था कि रोजाना आप उनको कुरान मजीद का एक सूरा दिया करते थे और बेटी से ये मुतालबा करते थे कि बेटी इस सूरे को हिफ्ज कर लो, याद कर लो। जब सूरा याद हो जाए तो मुझे सुनाना। जब शहजादी सूरा याद कर लेती थी और सुना देती थी तो आप उनको यानी अपनी बेटी को जनाबे हिजाम एक दिरहम इनाम, एक दीनार इनाम दिया करते थे। तवज्जो कीजिएगा, आप कह सकते हैं कि आज की जबान में जो कुछ पैसे वगैरह होते थे वो आप इनाम दिया करते थे। शहजादी जनाबे फातिमा कलाबिया या जनाबे उम्मुल बनीन उसको रखा करती थी अपने पास। अब रिवायत में ये मिलता है कि एक दिन जाहिर है कि हर दरवाजे पर फकीर आता है, तो जनाबे हिजाम के दरवाजे पे रोजाना फकीर आता था, कुछ मांगता था और घर से उसको आटा चावल दाल जो भी चीज अशिया हुआ करती थी वो दे दिया जाता था। और जनाबे उम्मुल बनीन ही जाहिर है जब घर में बच्चे होते हैं तो उनके हाथ में दिया जाता है। ये भी तरबियत है, तवज्जो कीजिएगा, ये भी इस्लामी तरबियत है कि अगर फकीर को पैसा देना हो तो आप न दीजिए, अपने बच्चे को दीजिए। क्यों बच्चे को दीजिए? ताकि बच्चे के अंदर ये हौसला पैदा हो जाए कि पैसा खाली लिया नहीं जाता, राह खुदा में दिया भी जाता है, राह खुदा में दिया भी जाता। और ये तरबियत है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सखी बने तो उसके अंदर सखावत की तरबियत आपको वदियत करनी पड़ेगी। अगर आप सदका देना चाहते हैं तो आप खुद न दीजिए, बच्चे से कहिए कि वो दे। हमारे यहाँ तो उल्टा होता है, सिगरेट पीना चाहे तो बच्चे से कहते हैं कि तू लेके आ, जबकि होना ये चाहिए कि जो बुरी चीजें हैं वो बच्चों से ना मंगाई जाए और जो अच्छी चीजें हैं वो मंगाई जाए ताकि तरबियत अच्छी चीजों की हो जाए। लिहाजा जनाब उम्मुल बनीन, तवज्जो फरमाइएगा, को दिया जाता था। आप जो है उसको सदका और खैरात दिया करती थी। एक दिन जनाब उम्मुल बनीन की तबीयत नासाज थी, दरवाजे पे फकीर आया और फकीर ने मुतालबा किया। जनाब उम्मुल बनीन की चूंकि तबीयत नासाज थी लिहाजा उनकी वालिदा गिरामी गई और जाने के बाद उसको जो घर का सामान जो सदका खैरात देना था वो दिया और दे के पलटने लगी
तो फकीर ने पूछा, बीबी जी आज वो बच्ची कहाँ है जो रोजाना मुझे खैरात दिया करती थी? और जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा को बड़ी हैरत हुई कि ये बच्ची को क्यों पूछ रहा है फकीर। आप मुतवज्जे हुई और कहा कि भाई तुम्हें जो चाहिए था हमने दे दिया है, अब तुम बच्ची के बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा कि असल में जो बच्ची रोजाना ये सामान मुझे सदका देने आती थी, उसके साथ मुझे रोजाना एक दिरहम, एक दीनार भी दिया करती थी। तवज्जो नहीं किया आपने, एक दीनार भी दिया करती थी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आज वो बच्ची कहाँ है कि आपने सामान तो दिया मगर मुझे दीनार न दिया। इसका मतलब है वो माल, वो दीनार जो आपके वालिद आपको हिफ्ज़े कुरान की वजह से दिया करते थे, आप उसे राह खुदा में दे दिया करती थी। जो कुछ मिलता था वो राह खुदा में दे दिया करती थी। यही अदा तो कुदरत को पसंद आई कि अगर हमने बचपन की अदाओं को देखा है तो अब हम इम्तिहान लेंगे कि भरी जवानी में तुम्हें 4 बेटे अता करेंगे। अब देखेंगे कि तुम्हारा मेयारे एसार क्या होता है। चाहती उम्मुल बनीन तो ज़ईफी के लिए एक बेटे को जखीरा कर लेती, 3 बेटों को करबला भेज देती, जाओ हुसैन की हिफाजत करो, एक बेटा मेरे पास रहे, मेरी ज़ईफी का सहारा बन जाए। मगर उम्मुल बनीन ने 4 बेटों को राह खुदा में भेज के बताया, जिनकी तरबियत बचपन से ईसार हुआ करती है वो भरी जवानी में ईसार से पीछे नहीं हटा करती। और जब बचपन का ईसार इस मंजिले कमाल पर हो तो फिर कुदरत उसे औलाद देता है। और ये तय कि हर बीवी की किस्मत में ये ईसार नहीं होता। जिनके बचपन में ये ईसार की अदाएं होती हैं उन्हें अता किया जाता है। और शायद यही राज है कि कुदरत ने नबूवतों को ज़ौजात तो अता की है मगर उनके शजरे तमन्ना पे समर न खिला, इसलिए कि जिनके दिलों में बुख्ल था उन्हें औलाद से महरूम कर दिया। जिसने सब कुछ लुटा दिया उसे एक बेटी दी मगर कयामत तक के लिए कौसर बना किया था। कयामत तक के लिए उसकी नस्ल में बरकतें अता कर दी। इसलिए याद रखिएगा ये ईसार है कि जनाब उम्मुल बनीन ने किया और इस ईसार का सिला कुदरत ने ये दिया कि बेटा भी दिया तो ऐसा जिसे बाबुल हवाइज कहा गया। और याद रखिएगा जनाब उम्मुल बनीन उस खानदान से ताल्लुक रखती हैं जिसका नाम बनु किलाब है, खानदान है किलाबिया से ताल्लुक रखती हैं। और ये वो खानदान है जो शुजा है, बहादुर है। गौर फरमाइएगा, मैं जल्दी जल्दी अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा तकरीर मुझे नहीं करना है, बस मैं तो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नाजिम आ जाए, 2-4 शोरा आ जाए ताकि इस मिदहत के कारवान को आगे बढ़ाया जा सके। यकीन जानिए फिक्र की गलियों के सारे मद्दाह आ चुके हैं, बस अभी वो फिक्र की गलियों में हैं कि शायद उनके अशार मुकम्मल हो जाए और वो धीरे धीरे अपने शेर का सफर तय करते हुए इस बज़्म मवद्दत में आ जाएं। इसलिए जल्दी जल्दी मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। गौर फरमाइएगा, जनाब उम्मुल बनीन उस खानदान से ताल्लुक रखती हैं जो शजा है, जो बहादुर है। मौलाए कायनात ने अपने भाई हजरत अकील से ये फरमाइश की, आप सुनते रहते हैं क्या, कि मुझे एक बहादुर खानदान में अक़्द करना है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आलमे अरब में बनी हाशिम से बहादुर कोई कबीला था? और कीजिएगा, आलमे अरब में बनी हाशिम से ज्यादा बहादुर कबीला कोई कबीला था? यकीनन नहीं था। तो जनाब अकील ने अली की तमन्ना को, तवज्जो कीजिएगा, पूरा करने के लिए बनी हाशिम का इंतखाब क्यों नहीं किया? किया तो बनी किलाब का किया। तो बनी हाशिम में और बनी किलाब में क्या फर्क है? तवज्जो कीजिएगा, बनी हाशिम में और बनी किलाब में फर्क ये है कि यूं तो दोनों कबीले बहादुर हैं मगर फर्क ये है कि बनी हाशिम तलवार के धनी हैं और बनी किलाब नेजा बरदारी के माहिर हैं। मेरा जुमला वाज़ेह हो जाता, नेजा बरदारी के माहिर हैं। तलवार के धनी बनी हाशिम हैं, नेजा बरदारी के धनी बनी किलाब हैं। अली जानते हैं, अकील पहचानते हैं कि जो शख्सियत की जरूरत करबला में है उसे जौहरे जुल्फ़िकार नहीं दिखाने हैं, उसे नेज़े की अदाएं दिखानी है।
उसे नेज़े की अदाएं दिखानी है। और याद रखिएगा, इस वजह से जरूरी था अब्बास के ऊपर कि आज करबला में लहू का असर नहीं दिखाना है, शीरे मादर का असर दिखाना है। और यही वजह है कि रिवायात में मिलता है कि जनाब अब्बास ने नेज़े से जंग की है, और नेज़े से जंग करने का फलसफा यही है। अब याद रखिएगा, तो मौलाए कायनात ने जनाब अकील ने इंतखाब किया उस कबीले का जो नेज़ा बरदारी का माहिर है, उस कबीले का इंतखाब किया। तो तारीख ने ये लिखा है कि जनाब अकील दहलीज़े हजरत हिज़ाम बिन खालिद पर पहुंचे और जाने के बाद वहां खास्तगारी फरमाई, अपने भाई के रिश्ते को पेश किया। एक जुमला और है, अगर साहिबान ने इल्म तशरीफ फरमाए, महसूस कर ले मेरा मजमा, तो बात पहुंच जाएगी। गौर कीजिएगा, मौलाए कायनात ने अकील से कहा कि भैया आप तलाश करें। मौला अकील कितनी तलाश जानते हैं, इल्मे अंसाब के माहिर हैं, एक नस्लों को देख लेंगे, 2 नस्लों को देख लेंगे, मगर आपकी तो तलवार 70 नस्लें देखती है। आप उनसे क्यों कह रहे हैं कि इंतखाब करें? आप खुद ही इंतखाब कर लीजिए। तवज्जो कीजिएगा, आप खुद इंतखाब कर लीजिए। और आपसे बेहतर खानवादों की परख किसे है? आपसे बेहतर खानदानों की शजाअत को कौन जानता है? आप मैदान जंग में जानते हैं कि अहले करार का कबीला कौन सा है, अहले फरार का कबीला कौन सा है। आप जानते हैं कि मैदान जिहाद में इस्तिकामत किसके कदमों में है और भागते कौन है, तो आपसे बेहतर कौन जानता है। और अगर इल्म की बात करूं तो या अली, अकील का इल्म कहां, आपका इल्म कहां? अकील जितने भी इल्म के आगे बढ़ जाएं 2-3 नस्लें देख सकते हैं। आपके इल्म का कमाल यह है, आप 3 दिन की उम्र में 4 किताबें पढ़ के सुनाते हैं। नहीं तवज्जो की, 3 दिन की उम्र में 4 किताबें पढ़ते हैं, वो भी किसी आम आदमी के सामने नहीं, रसूल मकबूल के हाथों पर 4 किताबों की तिलावत करते हैं। तो आपसे बेहतर कौन जानता है? फिर पैगंबर ने फरमाया, अल्लमकुम अली, अक़ज़ाकुम अली, अअदलकुम अली, अशजाकुम अली, औराकुम अली, अतकाकुम अली। तुम में सबसे ज्यादा अदालत रखने वाला अली, सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला अली, सबसे ज्यादा परहेजगारी करने वाला अली, सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला अली, सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला अली, सबसे ज्यादा समझ रखने वाला अली। जब सारी फजीलतें आप में इल्म इसमें तफजील के साथ बयान की गई है, तो आप अकील से क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे समाज को यह पैगाम देना था कि अगर भाई को अक़्द करना है तो कम से कम बड़े भाई से मशवरा, कम से कम बड़े भाई से पूछ तो लिया कर। हो सकता है, मगर सन वो है कि मंसूबा साफी करो। तो फिर किसी ने इमाम खुमैनी से पूछा कि इनकलाब तो ले आए हैं, इसकी हिफाजत कौन करेगा? तो आपने फरमाया, इस इनकलाब की हिफाजत। मोमिनीन इकराम, सलामुन अलैकुम। सबसे पहले जश्न बाबरकत की मुबारकबाद आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, और आप तमाम हजरात की जानिब से जश्न के हकीकी वारिस यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। तमाम उलमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तमाम शुअरा तशरीफ़ रखते हैं, और अहले इल्म हजरात सामईन इकराम तशरीफ़ रखते हैं। लिहाजा जश्न में शुअरा की आमद है, जो पोस्टर में आप नाम देख चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला वो सब शुअरा बारगाह मौला पास में अपने मखसूस अंदाज में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे, मगर उससे पहले एक अजीम काम होना है। शेर पढ़ लेना, महफिल में कामयाब हो जाना, किसी भी महफिल को कामयाब कर देना, यह अलग मैटर है, अलग मौजू है। मगर शायर का असली इम्तिहान वहाँ होता है कि जब वो किताब की शक्ल में आता है। शायर कोई नहीं जिंदा रह जाएगा, मगर 2 तरह के शायर हमेशा जिंदा रह जाएंगे। एक वो कि जिसके नौहे बर्रे सगीर में पढ़े जा रहे होंगे, और एक वो कि जो किताब की शक्ल में मंजर आम पे आ गया होगा। और बहुत से शायर हिंदुस्तान में गुजरे जिन्होंने बड़ी कामयाब महफिलें पढ़ी, मगर किताब लिखने की हैसियत में नहीं थे। मगर खुदा का शुक्र है कि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत कि जिसका तीसरा मजमुआ मंजर आम पे आ रहा है, और
ये नहीं कि बस भर्ती के शेर पढ़ दिए, भर्ती के शेर लिख दिए और मजमुआ छपवा दिया, हमारे पास पैसा था हमने मजमुआ छपवा दिया, बल्कि अक़ीदत से पुर शेर, बामानी शेर, मफ़हूम के साथ हर चीज़ का ख्याल रखा जाए कि कोई शेर मुहम्मल ना होने पाए, खिलाफ वाक़या ना होने पाए, और उसके साथ साथ हम्द के भी शेर और नात के भी शेर, मनक़बत के भी शेर और मौला अब्बास के हवाले से भी शेर, मौला अली असग़र के हवाले से शेर, ये एक बड़ी बात होती है। मैंने फिर कहा महफिल में कामयाब होते हैं शायर, मगर जो किताब की शक्ल में आ जाएंगे वो ता क़यामत तक के वो ज़िंदा रहेंगे, इसलिए कि उनकी किताबें जब जब भी मोमिनीन की नज़र से गुजरेंगी तब तब इंसान को याद आएगा कि वो शायर है। एक अजीम शख्सियत जिसके कुछ शेर मैं पढ़ूँ, उसके बाद में उनकी किताब का रस्म इजरा इसी किताब का है। बता दिया अली असग़र ने एक तबस्सुम में, जिसे तो क़तरा समझता था वो समंदर है। क्या शेर है। जनाब अली असग़र का सिन देखिए और तबस्सुम देखिए, और एक क़तरे की तमसील है और समंदर के साथ रियायत के साथ शेर कहा गया। नकाब उठा के रहूँगा सितम के चेहरे से, शायरी देखें कि नकाब उठा के रहूँगा सितम के चेहरे से, ये और बात बदन पर न सर नज़र आए, ये और बात बदन पर न सर नज़र आए। क्या पामानी शेर है और मफ़हूम के साथ लफ्ज़ियात से माला माल, लफ्ज़ियात से पुर शेर है। इसी को शायरी कहते हैं। लफ्ज़ों को जोड़ लेने का नाम शेर नहीं है कि खिलाफ वाक़या हो जाए। ये सब खुतबात दे के ज़ैनब आली मकाम ने हर दौर के यजीद को गर्क़ाब कर दिया। अगर ऐसे शेर आप सुनना पसंद करते हैं या पढ़ना पसंद करते हैं तो बेशक आपके मंजर आम पे आ रही है किताब गुलदस्ता फ़िक्र। जैसा इसका नाम है वैसे ही ये किताब गुलदस्ता है भी, इसलिए कि इसमें गुलदस्ता उसे कहते हैं कि तमाम तरह के फूलों को एक जा कर दिया जाए, जिसकी महक अलग अलग हो, रंगत अलग अलग हो, खुशबू अलग अलग हो, मगर सब का नाम फूल हो। इसी तरीके से तमाम तरह के अशार, जनाब अली असग़र के हवाले से अशार, जनाब अली अकबर के हवाले से अशार, जनाब मौला अब्बास के हवाले से अशार, हम्द के भी अशार, नात के भी अशार के फूलों को एक जगह कर दिया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है गुलदस्ता फ़िक्र। आइए हजरात इसका रस्म इजरा मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना गुलजार जाफरी साहब क़िबला से कि वह तशरीफ़ लाएँ। मकाला पढ़ेंगे आली जनाब डॉक्टर शारिब मौरानवी साहब, उनसे गुजारिश है तशरीफ़ ला रहे हैं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। मोहतरम हज़रात, कशिश संदिलवी हिंदुस्तानी अदब का एक अजीम खिदमत गुजार, उर्दू अदब के मुमताज़ शायर सैयद मसूद हैदर रिज़वी तखल्लुस कशिश संदिलवी का ताल्लुक़ संडीला ज़िला हरदोई से है। इनके वालिद माजिद सैयद इशरत हुसैन रिज़वी ख़ुद भी एक साहिब कमाल शायर और नस्र निगार थे, जिन्होंने तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान जाने के बजाय हिंदुस्तान में ही रहना पसंद किया। ये इनका तारीख़ी फ़ैसला था। यहीं पर इन्होंने अपने तख्लीक़ी सफ़र को नई आबोताब बख्शी और अदब के मैदान में अपना एक मुमताज़ मकाम हासिल किया। कशिश संदिलवी को शायरी की सलाहियत विरसे में मिली है, जो उन्होंने न सिर्फ संभाली है बल्कि उसे नई बुलंदियों तक पहुंचाया भी है। उन्होंने अपनी तख्लीक़ी पहचान को गज़ल, सलाम, नौहा और कसीदा जैसे असनाफ़ सुखन में मनवाया। उनका कलाम अपने क्लासिकी इसलूब, फ़नी रचाव और जज्बात की गहराई की वजह से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के उर्दू जानने वाले हलक़ों में मकबूल हैं। ख़ास तौर पर उनके सलाम और नौहे बड़े खुलूस के साथ और एहतराम के साथ पढ़े जाते हैं और सुने जाते हैं। कई अदबी व मजहबी अंजुमनें उनके कलाम को प्रोग्रामों में
जीनत बख्शती हैं। कशिश संदीलवी ने अपने वालिद के अदबी विरसे को आगे बढ़ाने में जो किरदार अदा किया है वो काबिल सताइश है। आज उनका नाम उर्दू अदब की तारीख़ में एक दरख्शंदा सितारे की मानंद रोशन है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनकी अदबी खिदमात में हमेशा याद रखी जाएँ, इनकी अदबी खिदमात हमेशा याद रखी जाएँ और इनका कलमी वर्सा आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बने। कशिश संदीलवी की किताब गुलदस्ता फ़िक्र से मुंतखब एक मतला एक शेर हाजिर कर रहा हूँ, जो कि वक्त ज़्यादा हो चुका है, कि अली की ज़ात पर जो एतबार करता है, ये कशिश साहब का शेर सुन लीजिएगा। एक मतला एक शेर सुना रहा हूँ खाली, कि अली की ज़ात पर जो एतबार करता है हकीकतन वो मोहम्मद से प्यार करता है। हकीकतन वो मोहम्मद से प्यार करता है। वो क्या घटाएंगे अज़मत तेरी ज़माने में, वो क्या घटाएंगे अज़मत तेरी ज़माने में, तेरी सना तो खुदा बार बार करता है। एक सलवात के साथ इजाज़त चाहूँ। सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना गुलजार जाफरी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आली जनाब ये किताब जनाब कशिश संदेलवी साहब की जिसका रस्म इजरा होना है, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि शाल पोशी से इस्तकबाल करें और खैर मकदम करें हमारे शायर अहले बैत आली जनाब कशिश साहब का, आली जनाब मौलाना गुलजार जाफरी साहब। इस मौके पर आप हजरात से गुजारिश है कि एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना मेराज हैदर साहब, मौलाना हिलाल अब्बास साहब, आली जनाब मौलाना इब्न अब्बास साहब, आली जनाब डॉक्टर शारिफ मौरानवी साहब, आली जनाब ज़फ़र इमाम साहब, आली जनाब रज़ा हैदर साहब, जाहिद काज़मी मैं खुद, आली जनाब कमर इमाम साहब और आली जनाब मौलाना अबू तालिब साहब, मौलाना फ़रोग़ मेहदी साहब से गुजारिश है कि बराए करम व तशरीफ़ लाएँ और गुलपोशी से इस्तकबाल करें जनाब शायर अहले बैत कशिश संदेलवी साहब का। ये हर शायर की तमन्ना होती है, जो आज कशिश साहब की ये तमन्ना तीसरी मरतबा पूरी हो रही है। किताब लिखने की तमन्ना तमाम शायरों की होती है, मगर ये फ़जीलत परवरदिगार किसी किसी शायर की किस्मत में लिखता है। ये बड़ा एज़ाज़ है इंसान की ज़िंदगी के लिए। तो इस मौके पर आप हजरात से गुजारिश है कि एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। लीजिए सब ऐसे लाइन से खड़े, सब लाइन से खड़े हों। गुलदस्ता फ़िक्र इस किताब का नाम है। शायर हैं जनाब कशिश संदेलवी साहब, जो आप हजरात तक इंशाअल्लाह ताला पहुँचेगी और मोमिनीन इस किताब से मोमिनीन के जहलों को मुजल्ला करेगी इंशाअल्लाह ताला। ये किताब इसलिए इसमें बेहतरीन मनक़बत के शेर हैं, बेहतरीन सलाम के शेर हैं, बेहतरीन हम्द के शेर हैं इंशाअल्लाह ताला। लीजिए वो मौका आ गया कि जब किताब आपके आपके रूबरू है, मंजर आम पे आ रही है। मैं मीडिया वालों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मौके को हसीन तरीन अंदाज में अपने कैमरे की निगाहों में कैद करें और पूरी दुनिया को दिखाएँ। ये अजीम वक्त है एक शायर के लिए कि जब उसकी किताब मंजर आम पे आ रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात से एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक एज़ाज़ मिलना है और ये भी एज़ाज़ बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि दरे मौला पास पे किसी को एज़ाज़ मिल जाए ये तो किस्मत की बात है। इसलिए कि ये वो एज़ाज़ है कि दरे मौला पास का यूसुफ़ी एज़ाज़ यानी जनाब अली अकबर का सदक़ा है। जनाब मौला पास के दरगाह पे हिमालयाई एज़ाज़ यानी जनाब मौला पास का सदक़ा है। जनाब मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर MS हैदर साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। ये दबिस्तान अज़ीज़ बाराबंकी के सदर हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएँ।
हाशिम अली हाशिम साहब की जानिब से एजाज़ दिया जाएगा इनको। कशिश साहब, मैं अपनी तरफ से आपको मुबारकबाद दे रहा हूं और अपने तमाम सामाइन की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश कर रहा हूं। ये बड़ा अजीम मौका है आपकी ज़िंदगी के लिए और ये तमाम शायरों के लिए भी ये दिल की तमन्ना होती है कि काश हमारी भी ज़िंदगी में ये मौका आए। बहरहाल वहीं लगाओ भैया, वहीं लगाओ। हाँ, ये बच्चों की हौसला अफजाई होना है, इसलिए कि किसी ज़माने में जिसके पास ज़्यादा तीरंदाज होते थे वो मुल्कों पे हुकूमत करता था। फिर तीरंदाजी का ज़माना ख़त्म हो गया, तलवार का ज़माना आया। जिसके पास ज़्यादा तलवार चलाने वाले होते थे वो मुल्कों पे राज करता था। तलवार का ज़माना बंदूकों ने ख़त्म कर दिया। जिसके पास ज़्यादा बंदूक चलाने वाले थे उनका राज हुआ करता था। बंदूकों का ज़माना तोप ने ख़त्म कर दिया। जिसके पास ज़्यादा तोपें थीं वो हुकूमतें करता था। तोपों के बाद मिसाइलों का ज़माना। मगर ये सारे ज़माने एक तरफ हैं। इंसान अगर कलम से मजबूत है तो उसके लिए न बंदूक काम कर सकती है, न तलवार और न तोप, न मिसाइल। इसलिए हुकूमत वही कर सकता है जिसके हाथ में कलम हो। और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं कौम के, ये सबसे अच्छी बड़ी बात है। जश्न अब्बास के तमाम मेंबरान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये लोग बच्चों की हौसला अफजाई इसलिए करते हैं कि ताकि दूसरे बच्चों को सबक मिले कि इस साल फला नौजवान को एजाज़ मिला था, मैं भी कोशिश करके वहीं तक पहुँचूँगा और इससे इल्मी मेयार कौम का बुलंद हो रहा है। और खुदा करे कि इल्मी मेयार इसी तरीके से बुलंदी तक जाता रहे। इसलिए कि हमारे पास अगर इल्म नहीं है तो कुछ नहीं है, हम कहीं के नहीं रहेंगे अगर इल्म की दौलत इल्म का दामन हाथ से छूट गया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कमेटी के तमाम मेंबरान से कि जिन बच्चों को एजाज़ मिलना है वो कमर इमाम भाई बोलेंगे, तशरीफ़ ले आए। उसके बाद में जश्न का बाकायदा आगाज़ होगा जहाँ से शुआरा पढ़ेंगे। मोमिनीन सलाम अलैकुम। बस ज़्यादा देर आपके बीच में हायल नहीं रहूँगा, 10 से 15 मिनट में, क्योंकि ताख़ीर काफ़ी हो गई है। हर साल की तरह इस साल भी अंजुमन गुंचे अब्बासिया की जानिब से जो एकेडमिक अवार्ड, दीनी, कौमी व समाजी खिदमात अवार्ड और अदबी अवार्ड जो दिया जाता है, कई सालों से आप देख रहे हैं कि बच्चों की हौसला अफजाई होती है और दीनी, समाजी और अदबी फील्ड में जिन भी हजरात ने एक नुमाया कामयाबी हासिल की उनको भी अंजुमन के ज़रिए एजाज़ से नवाजा जाता है। इस साल एकेडमिक अवार्ड में सबसे पहले मैं आवाज़ दे रहा हूँ मोहतरमा फ़िज़्ज़ा बिन्त दिलावर हुसैन, जो पीर बटावन बाराबंकी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके यहाँ से कोई हो तो यहाँ पे स्टेज पे आ जाए। मोहतरमा फ़िज़्ज़ा बिन्त दिलावर हुसैन, पीर बटावन बाराबंकी। मैं अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी कशिश साहब से इल्तिमास करता हूँ कि उनकी जगह के एजाज़ ले लें। इन्होंने 10वीं स्टैंडर्ड में बेनी प्रसाद वर्मा इंटर कॉलेज बाराबंकी से 86% से कामयाबी हासिल की है। मैं कशिश संडिलवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आएँ। मैं आले जनाब मौलाना गुलजार जाफरी साहब, मौलाना इब्ने अब्बास साहब, ज़फ़र इमाम साहब और मौलाना मिराज साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आए और उनको एजाज़ से नवाजें। आज कोई दिक्कत नहीं, आए। उनके भाई शारिफ साहब भी आ गए हैं, फ़िज़्ज़ा के भाई शारिफ साहब भी आ गए हैं, इनको एजाज़ से नवाजे। एक सलवात तो आप लोग पढ़ें। इस बार हम लोगों ने एकेडमिक अवार्ड में 10th और 12th स्टैंडर्ड में 85% का क्राइटेरिया रखा था कि जो 85% से ज़्यादा बच्चे मार्क्स ला रहे हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। इन्होंने 86.5% से ये मार्क्स हासिल किए इस बच्ची ने। दूसरा अवार्ड मोहम्मद जरगाम सन ऑफ मौलाना सैयद सज्जाद हुसैन आलमपुरी,
मैं ये देखिए आ रहे हैं जरगाम साहब, इन्होंने 10वीं में पिछले साल 2025 यूपी बोर्ड से यूनाइटेड अवध मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज महमूदाबाद से 86% मार्क्स हासिल किए। आप ऊपर आ जाए बेटा। मैं इल्तिमास करता हूँ मौलाना मिराज हैदर साहब, मौलाना गुलजार जाफरी साहब, अंजुमन के सदर जनाब शाहिद हुसैन रिजवी साहब, जहाँ मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आ जाएं, और जनरल सेक्रेटरी जनाब कशिश संडिलवी साहब से कि वो आए इस बच्चे को दें। दो लोग उधर, जफर इमाम साहब से। गदीर फातिमा डॉटर ऑफ मुनव्वर मेहदी, आपके यहाँ से अगर कोई यहाँ पर हो तो ये अवार्ड रिसीव कर ले। ये आ रहे हैं गदीर फातिमा डॉटर ऑफ मुनव्वर मेहदी, इन्होंने 10वीं में यूपी बोर्ड से महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज से 97% मार्क्स हासिल किए हैं। 97%। मैं मौलाना आली जनाब मौलाना अबू तालिब साहब, मौलाना हिलाल अब्बास साहब, मौलाना फ़रोग मेहदी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो हैं, रज़ा हैदर साहब अंजुमन के नायब सदर, और जनाब सादिक हुसैन साहब अगर अंजुमन के नायब सदर यहाँ पर हो तो वो भी आ जाएं। रज़ा हैदर साहब। सानिया जहरा डॉटर ऑफ बिजात हसन जैदपुर, यहाँ से कोई अगर हो, सानिया जहरा डॉटर ऑफ बिजात हसन जैदपुर, जैदपुर से कोई ताल्लुक रखने वाला उनकी जगह पे ले सकता है। मौलाना फ़रोग साहब से मैं कहता हूं कि उनकी जगह पे ले लें। सानिया मौलाना, मैं गुजारिश करता हूं जनाब रईस हुसैन साहब से, अंजुमन के सरपरस्त मुजाहिद हुसैन साहब अगर हो, अम्मार हैदर साहब और अशरफ हुसैन वली साहब, वो आए और एजाज से नवाजे। अम्मार हैदर साहब, अशरफ हुसैन वली साहब, रईस हुसैन साहब अंजुमन के जो सरपरस्त हैं, अशरफ हुसैन साहब भी आ रहे हैं। बीच में आ जाए, बीच में। अच्छा ले, हाँ अभी बहुत अवार्ड है, बहुत अवार्ड है। सलवात भेजें आप लोग। रज़ा मोहम्मद सन ऑफ सैयद मुस्तफ़ा हैदर, अगला नाम रज़ा मोहम्मद सन ऑफ सैयद मुस्तफ़ा हैदर, ये भी जैदपुर से ताल्लुक़ रखें। देखिए रज़ा मोहम्मद साहब आ रहे हैं। ये वो बच्चा है कि जिसको हाई स्कूल में अभी हमने ये नुमाया कामयाबी के लिए था, और इस बार इन्होंने इंटरमीडिएट में भी ISC बोर्ड CMS चौक लखनऊ से 97.25% मार्क्स हासिल किए। मैं गुजारिश करता हूं अंजुमन के सरपरस्त जनाब रिफाकत हुसैन साहब, अंजुमन के सरपरस्त जनाब आमिर रज़ा साहब से कि आए सब बच्चे की हौसला अफजाई करें, और जनाब इरफाद हुसैन साहब भी जो सरपरस्त हैं अंजुमन के, इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। समीर अब्बास साहब अंजुमन के नायब सदर जहाँ यहाँ पे पहुँचाएँ, मौजूद हो जाएं, उनके हाथ से भी एक अवार्ड से नवाजना है। ये एकेडमिक अवार्ड जो पिछले साल 10th और 12th में थे, 5 मार्कशीटें हमारे पास आई थी जिनका ये एजाज़ दिया गया है। अब अगला जो अवार्ड है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अवार्ड में है, और बहुत खुशी मुझे हो रही है इस बात की कि आपके बाराबंकी शहर के 3 बच्चे हैं जिन्होंने UGC JRF नेट क्वालिफाई किया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पे कायम होंगे। पहला अवार्ड है मोहम्मद फरस अब्बास सन ऑफ वकार अब्बास, गुलिस्तान शहर बाराबंकी, उनके वालिद मोहतरम जनाब वकार अब्बास साहब और उनके दादा जनाब इक़्तिदार हुसैन साहब यहाँ पे हैं। तो जाहिर सी बात है पोते का अवार्ड है तो दादा ही लेने आएंगे। इक़्तिदार साहब और उनके वालिद साहब दोनों लोग आ जाएं, दोनों लोग आ जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना मिराज हैदर साहब, मौलाना गुलजार जाफरी साहब से। नहीं आप भी आए, आप दादा हैं, दादा से ज़्यादा कोई खुश नहीं होता पोते की कामयाबी पर। डॉक्टर मोहम्मद हैदर साहब, फरस अब्बास, बीच में आ जाए, बीच में आ जाए। 2 आदमी उधर हो जाए, 2 आदमी उधर हो जाए उस साइड में। इन्होंने UGC नेट JRF क्वालिफाई किया है और पूरी दुनिया में जो 25,000 बच्चे बैठते हैं उसमें 59th रैंक हासिल की है, 99.75%। हजरात आप फिर से एक बार सुनिएगा, 99.75%। मतलब ये UGC नेट JRF क्वालिफाई किया इन्होंने अपना BA LLB जामिया मिलिया न्यू दिल्ली से किया और अभी LLM परसुइंग कर रहे हैं जामिया मिलिया न्यू दिल्ली से।
और आप लोग इनके मुस्तकबिल के लिए, कामयाबी के लिए आप लोग दुआ करें कि ये बच्चा आगे चल करके इंशाअल्लाह जुडिशरी में भी जाएगा, क्योंकि ये इसका जो मेन फील्ड ही लीगल का है। मैं इनके दादा जनाब इक़्तिदार हुसैन साहब, जो कि खुद PhD हैं, डॉक्टर हैं, और इनके वालिद जनाब वक़ार अब्बास साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चे की परवरिश इस तरह से की कि आज कौम का नाम पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ये नुमाया करेगा। आप लोग एक सलवात का सहारा दें। अल्लाहुम्मा। दूसरा अवार्ड अनमता अस्करी, डॉटर ऑफ सैयद जावेद अस्करी, जो करबला बाराबंकी के हमारे रहने वाले हैं। उनके वालिद मोहतरम जनाब जावेद अस्करी सर आप यहाँ मौजूद हैं। ये बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट एंड टॉपर इन MCOM ग्रुप बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, और इसने भी UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जनवरी 2026 में 97% से हासिल किया। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना मेराज हैदर साहब से, मौलाना फ़रोग मेहदी साहब से, और अंजुमन के ज्वाइंट सेक्रेटरी जनाब जीशान हैदर नकवी साहब जो यहाँ पर हों, वो आए। अंजुमन के नायब सदर जनाब सादिक हुसैन साहब भी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो यहाँ पर आए और इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। गोल्ड मेडलिस्ट एंड टॉपर इन MCOM ग्रुप बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम जामिया मिल्लिया और क्वालिफाइड UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम इन जनवरी 26 विद 97.61%, और अभी ये PhD कर रहे हैं कॉमर्स में और जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से ही कर रहे हैं। तीसरा जो अवार्ड PhD का है वो हमारे बाराबंकी का ही बच्चा है, हैदर अब्बास जैदी, सन ऑफ वज़ादार हुसैन जैदी। ये अस्करी हाल से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए बच्चा आ रहा है, ये आप लोग इनको भी करिए। मौलाना गुलजार जाफरी साहब, मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब जो पिहानी से तशरीफ़ लाए हैं, और जनाब कफ़ील जैदी साहब जो हर दिल अजीज़ हैं, असंदरा से ताल्लुक़ रखते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जनाब समीर अब्बास साहब जो नायब सदर हैं वो यहाँ पर आए, और जनाब जाफ़र इमाम साहब भी जो नायब सदर हैं अंजुमन के, यहाँ पर मौजूद हों। जाफ़र इमाम साहब भी आ जाएं। ये जो बच्चा है इसके बारे में थोड़ी सी 2 मिनट आपसे लूँगा कि इसने UGC नेट JRF तो क्वालिफाई किया ही किया है, लेकिन क्योंकि इसने डबल मास्टर्स में इसने डबल मास्टर किया, तो इसने JRF नेट जो किया वो बिजनेस जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में और 21st रैंक ऑल ओवर इंडिया पाई, और उसके अलावा दिसंबर 2025 में UGC नेट कॉमर्स में भी क्वालिफाई किया इसने। डुअल मास्टर इन बोथ सब्जेक्ट, ये बहुत कम बच्चे कर पाते हैं कि जो मास्टर डुअल कर रहे हो। जून 25 में इन्होंने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में UGC नेट JRF क्वालिफाई किया, और फिर दिसंबर 25 में इन्होंने कॉमर्स में UGC नेट क्वालिफाई किया। वाकई बहुत मुबारकबाद इस बच्चे को, इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए पूरी अंजुमन अराकीन और तमाम मोमिनीन जो यहाँ मौजूद हैं वो दुआगो हैं। इन तमाम नौजवानों की कामयाबी हमारी कौम के लिए नमूने अमल है। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि हमारी कौम के नौजवान ऐसे ही कामयाबी से सरफराज होते रहें और परचम इस्लाम और मजहब तशय्यो के सर को और बुलंदी अता करें। इसके बाद दीनी व कौमी खिदमत अवार्ड, बस 3 अवार्ड बचे हैं हजरात। ये जो अवार्ड है दीनी व कौमी खिदमत का, ये हर साल हमें बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट से जो लोग हमें नाम बताते हैं या जो कमेटी के बारे में बताते हैं, तो हम लोग उस पर गौर व फिक्र करने के बाद इंशाल्लाह अमल करते हैं। अभी बहुत से नाम हमारे पास और हैं, इंशाल्लाह आइंदा साल में धीरे धीरे उन सबको भी अवार्ड से नवाजा जाएगा, क्योंकि ये जश्न जो है ये पूरे मोमिनीन ज़िला बाराबंकी करते हैं। हम लोग हर कस्बे में, हर घर में ये जा करके हम लोग बोलते हैं कि ये आपकी तरफ से महफिल मुनक्किद हो रही है, अंजुमन सिर्फ एहतमाम करके आपके हवाले कर देती है। इस साल दीनी व कौमी खिदमत अवार्ड हमारे जैदपुर कस्बे की 2 ऐसी कमेटियों को दी जा रही है कि जिन्होंने जब ये जुलूस शुरू किया था तो शायद आज दूसरी या तीसरी नस्ल, चौथी नस्ल उसको कर रही है। पहला जो अवार्ड है वो कमेटी 4 शाबान अंजुमन हुसैनिया जैदपुर, जिनकी जानिब से मैं जनाब असद रज़ा साहब मुन्ने और जनाब आबिद रज़ा साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये मैं चाहता हूँ इनसे वो स्टेज पे आएँ
मैं मौलाना गुलजार जाफरी साहब, मौलाना फ़रोग मेहदी साहब, मौलाना इब्ने अब्बास साहब, क्योंकि वो भी जैदपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। इस साल ये अवार्ड हमारे बाराबंकी के जैदपुर कस्बे की कदीम अंजुमन हुसैनिया जैदपुर के ज़ेरे एहतमाम उठने वाले 4 शाबान के जुलूस के लिए दिया जा रहा है। इस जुलूस में मदीने से करबला के सफ़र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिलसोज मंजर पेश किया जाता है। ये जुलूस 1335 हिजरी में कायम हुआ और गुज़िश्ता 112 सालों से बरामद किया जा रहा है। इसके पहले सदर जनाब फरासत हुसैन फरासत जैदपुरी मरहूम थे और पहले सेक्रेटरी जनाब मीर मोहम्मद हसन साहब मरहूम थे और मुशीर आला सैयद मोहम्मद अस्करी ताल्लुकेदार जैदपुर मरहूम थे। अभी सैयद नसीम हैदर साहब इसके सेक्रेटरी हैं और नाजिम दस्ता सैयद असद रज़ा उर्फ मुन्ना भाई हैं जो इस अंजुमन को संभाल रहे हैं और जुलूस को कर रहे हैं। वाकई पूरी हिंदुस्तान से जैदपुर के जुलूस को देखने के लिए, ज़ियारत के लिए लोग पहुँचते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कमेटी को कि इसी तरह से ये जज्बा और वलवला इनके दिलों में रहे और इस जुलूस को कायम करते रहें और मोमिनीन जो है उसको शिरकत करते रहे। दूसरा अवार्ड कमेटी 28 रजब अंजुमन दस्ते हैदरी जैदपुर, उनकी तरफ से मुझे हुक्म हुआ है जैदपुर की एक मशहूर मारूफ शख्सियत और एडवोकेट जनाब अली गदीर रिजवी साहब जो यहाँ पर हैं आ जाएं। ये अवार्ड के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ हिलाल अब्बास साहब, आप अगर अंजुमन के सरप्रत रईस हुसैन साहब, अंजुमन के एग्जीक्यूटिव मेंबर ताहिर हुसैन साहब, मौलाना अबू तालिब साहब जो बाराबंकी में हमारे अस्करी हाल के पेशे इमाम हैं, इनसे गुजारिश है गदीर भाई बीच में आ जाएं, आप बीच में आ जाएं। इस साल ये अवार्ड हमारे बाराबंकी के जैदपुर कस्बे की कदीम अंजुमन दस्ता हैदरी जैदपुर के ज़ेरे एहतमाम उठने वाले 28 रजब के जुलूस के लिए दिया जा रहा है। ये जुलूस भी मदीने से करबला का सफ़र इमाम हुसैन का दिलखराश मंजर पेश करती है। ये जुलूस 1357 हिजरी में कायम हुआ और गुज़िश्ता 89 सालों से बरामद किया जा रहा है। इस जुलूस के बानी जनाब हकीम सैयद एतियाद हुसैन, हकीम सैयद रियाज अहमद, सैयद अली शहीर, सैयद मोहम्मद हमीद, सैयद औन मोहम्मद व सैयद अबरार मेहदी साहिबान मरहूमीन थे। मोमिनीन 28 रजब के भी जुलूस में देखिए हमारे यहाँ कई इमामों की विलादत की भी 2 तारीख हैं, कई इमामों की शहादत की भी 2 तारीख हैं। तो किसी तरह का कोई ना तो किसी को एतराज़ है ना ही किसी तरह का इख्तलाफ है, दोनों ही दिन गम मनाए, दोनों दिन ही खुशी मनाए। ये कमेटियाँ जो उस जुलूस को जिस मतलब दिल के साथ लग कर, मैंने खुद देखा है वहाँ पे, मैं 9 साल से जैदपुर में पोस्टेड हूँ, कि जिस तरीके से ये दोनों जो हमारी अंजुमन हुसैनिया जैदपुर और दस्ते हैदरी ये जुलूस को तन मन और धन यानी दामे दौरमे सिखोने हर तरीके से मैंने देखा है कि ये पूरा इंतज़ाम करते हैं, लगते हैं। तो आप सब लोग इन कमेटी के हौसला अफजाई के लिए एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात भरें। आखिरी अवार्ड जो अदबी खिदमात अवार्ड में इंशाअल्लाह इस साल एक नाम है, वो हमारे जैदपुर के ही आली जनाब मौलाना सैयद अता मेहदी रिजवी जैदपुरी साहब को दिया जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना इब्ने अब्बास साहब जैदपुरी साहब से, मौलाना मिराज हैदर साहब से, मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब से और रईस हुसैन साहब से कि वो आएँ। आप इनके लिए मैं गुजारिश करता हूँ आपके फर्जन जो खुद आलिम दीन है, आली जनाब मौलाना फ़रोग मेहदी रिजवी साहब, जो अपने वालिद साहब का ये एजाज़ लेने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। आप जैदपुर की अजीम शख्सियत और बाअमल आलिम दीन हैं और एक इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ नस्लन बाद नस्ल इल्मी सफ़र आज भी जारी है। आप सुल्तानुल मदारिस में अपने तालीमी सफ़र के दौरान तंजीमुल मकातिब की जानिब से बाहैसियत इंस्पेक्टर मुल्क की मुख्तलिफ सूबों में तालीमी दौरे पर रहे और तालीमी फरागत के बाद 1994 से आज तक अपने वतन में फ़ी सबीलिल्लाह दिन रात खिदमत दीन अंजाम दे रहे हैं। मौलाना साहब की जो अदमी खिदमत है वो ये है कि इनकी 4 किताबें, जो पहली किताब कलाम वफ़ी, इस किताब में मद्दाह अहले बैत जनाब वफ़ी जैदपुरी साहब के कलाम, जिसमें सलाम और मुसद्दस और भी चीज़ें नौहों का मजमुआ है। दूसरी किताब फ़ख्रुल मुतकल्लिमीन नंबर, इस रिसाले में फ़ख्रुल मुतकल्लिमीन मौलाना इखलाक मेहदी साहब किबला मरहूम के 40वें के मौके पर 2003 में तरतीब दिया। तीसरी किताब किताब कलाम नाशात, इसमें ये किताब 2007 में शाया हुई और चौथी किताब किताब अनवार जैदपुर, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं। इस किताब में 59 शायर जैदपुर के कलाम का मजमुआ है। ये तारीख़ी सफ़र और यादगार किताब है।
आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं कि ये जश्न हज़रत अब्बास, जैसा कि मौलाना साहब ने दुआ की कि इस तरीके से होता रहे कि हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाए और हम सब मेहमान हों और मौला हमारे मेज़बान हों। और आइए सब दुआ करते हैं कि तमाम मोमिनीन इसी तरीके से एक दूसरे से दिली मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को हमेशा कायम व दायम रखें। फ़क़त वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। मैं माज़रत चाहता हूँ, 2 मिनट आपके लूँगा। अंजुमन गुंशा अब्बासिया यकीनन लायक शुक्र और लायक सताइश है, इसलिए कि हमारे हिंदुस्तान के मिजाज में अंजुमनों का एक ही काम है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मजलिस मुनक़िद करना या महफ़िल मुनक़िद करना, नोहे लिखना, उसकी धुन बनाना, उसे तैयार करना और ज़िक्र अहले बैत करना, जिसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये होना ही चाहिए, यही उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन उससे बड़ी ज़िम्मेदारी अंजुमनों की यही है जो इस अंजुमन ने निभाई है कि हमारी कौम के जो बच्चे एजुकेटेड हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको एवार्ड दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए। यही तरबियत का सिलसिला हमारी हर अंजुमन को कोशिश करना चाहिए कि इंशाअल्लाह इस तरह से जारी रहे। आए हम दुआ करें। जो अंजुमन की खुसूसी तमन्ना है जिसे मैं फरामोश कर गया था, इसलिए हाजिर हुआ हूँ और ये बताने के लिए भी कि हमारी सारी अंजुमनें अगर इस तरह से ये काम करने लगें तो और हौसला मिलेगा। और बिलखुसूस जिन बच्चों को ये अवार्ड मिला है उन्हें हाजिर होना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं हाजिर हुए, ताकि कौम उनकी शक्लें तो कम से कम पहचान लेती, उनकी सूरतें तो देख लेती, और उन्हें अगर कभी कहीं किसी की ज़रूरत पड़ती तो शायद कोई आगे बढ़ के पहचान लेता कि ये वही बच्चा है कि जिसने इतने अच्छे नंबर हासिल किए। तो उन लोगों का भी आना ज़रूरी था, उन बच्चों का आना ज़रूरी था, उन पेरेंट्स का आना ज़रूरी था जो इस अवार्ड के मुस्तहक थे। आइए, जो अंजुमन की खुसूसी तमन्ना वो ये है कि एक बार ये जश्न बाबुल हवाइज की दहलीज़ पर मुनक़िद हो जाए, चाहे हमारे अंजुमन के या इस अंजुमन के चंद ही अफराद जाके इसको मुनक़िद करें। तो बारगाह बाबुल हवाइज में ये खुसूसी दुआ है कि मौला इस अंजुमन को इतनी तौफ़ीक़ अता कर दें कि ये आपकी दहलीज़ पर इस जश्न को बरगुज़ार कर सके। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक मिनट, नस्र का सिलसिला ख़त्म हो गया और अवार्ड जो दे रहे थे वो भी हमारे कन्वीनर हमारे आदमी ने दे दिए। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आपके बीच में हायल नहीं होना चाहता। पिछली बार 10:30 बजे मैंने माइक नाज़िम इनकलाब जनाब जाहिद कानपुरी साहब को दे दिया था। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने निज़ामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। नारे दुरूद से आप उनका इस्तकबाल करें। नाज़िम इनकलाब जाहिद कानपुरी। नहीं, जो जश्न सुनने आए हो कहे चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोग तो उठते हैं जश्न में, ये नियम है पूरी दुनिया का। इंशाअल्लाह ताला और जो लोग गए हैं वो भी आ जाएंगे, इसलिए कि यहाँ से बैरूनी शुरा का मुसलसल सिलसिला शुरू होने वाला है। तो मुझे मालूम है कि जो लोग बाहर गए हैं, ई को थोड़ा सा कम कर दें। माइक ऑपरेटर, अगर माइक ऑपरेटर मेरी बात सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ई को कम करें। हाँ, थोड़ा सा कम कर देंगे ई को। तो थोड़ा सा आप लोग करीब आ जाइए। जो लोग हैं, मुझे मालूम है कि बाद में अभी ये हॉल पुर हो जाएगा पूरा। मोमिनीन हैं इस तादाद में, कसीर तादाद में मोमिनीन यहाँ हैं। इंशाअल्लाह ताला किसी ज़रूरत के तहत उठ के गए, इंशाअल्लाह ताला सब आ जाएंगे, मुझे यकीन है। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नौजवानों से भी गुजारिश है कि अगर आप लोग भी बेहतर समझें तो आगे आकर बैठ जाएं, उसके बाद में जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठे रहें। मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं ज़्यादा कि कहाँ बैठे हैं, क्या नहीं बैठे हैं, कैसे बैठे हुए हैं। तो लिहाजा हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा थोड़ा सा आगे आ जाए।
बच्चों थोड़ा सा आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ बस। उसके बाद मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो बाहर जो मोमिनीन हैं उनसे गुजारिश है कि ये पूरा अभी जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि पूरे 12 बनकी का ये जश्न है, इसलिए कि ये अंजुमन गुंशे अब्बासिया ये तो सिर्फ वही शेर पर अमल करती है कि मैंने रोशन तो कर दिए हैं चिराग, अब हवा तेरी जिम्मेदारी है। तो इनका काम तो ये है कि चिराग को रोशन कर दिया है, अब पूरे 12 बनकी के मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि जश्न को कितना कामयाब बनाना है, कहां तक ले जाना है। लिहाजा मैं इन नौजवान बच्चों से कह रहा हूं थोड़ा सा आप आगे आ जाएं, आप लोग आगे आ जाएं। जो पहले आ गए हैं वो पहली सब में नमाज अदा करें, बाद में जो लोग आएंगे देखिए शुरा आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं और बाकायदा बैरूनी शुरा जो पोस्टर में आपने देखे हैं, जनाब नायाब हल्लोरी साहब, जनाब बेताब हल्लोरी साहब, जनाब मौलाना शरफ नकवी साहब, जनाब चंदन फैजाबादी साहब, जनाब सावन हल्लोरी साहब, जनाब सुहेल बस्तवी साहब, जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब, जनाब रेहान आजमी साहब, जनाब मुदस्सिर जौनपुरी साहब, जनाब मौलाना महमूद अब्बास साहब पिहानी, जनाब जुल्करनैन अजमेरी साहब, जनाब अली अब्बास जैदपुरी सल्लमहू, जनाब जिया आजमी साहब, ये शुरा हैं जो बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश करेंगे। अब एक बाबा बुलंद नारे सलवात पढ़ें। अगर बेहतर समझे तो जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाएं। हाँ, जश्न अगर सुनने के लिए आए हैं तो जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ सकते हैं, और जो जरूरत के तहत गए हैं वो भी जरूरियात से फारिग हो गए जल्द जल्द अंदर तशरीफ ले आए। यहाँ से कुछ मैं जब तक एक माहौल हमवार करता हूँ, सुनिएगा, थोड़ा माहौल हमवार हो जाए उसके बाद मैं कुछ निजामत करूँ, उसके बाद फिर किसी शायर को आवाज दूँ कि आए हैं रिंद बांध के है राम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साकिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साकिया, हम सब शरीफ रिंद है बैतुल शरफ से ला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजब से ला, पानी जरा सभी न मिला ना शराब में, ये सुएसन है साकिए कौसर के बाप में, पीना है आज बंदगी ये भूत और आब में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में, बीमारे गम है रूह गेरा दिल की खोल दे, खाके शिफा भी कुछ मेरे सागर में घोल दे, खाके शिफा भी कुछ मेरे सागर में घोल दे, वो मैं जो मुस्तफा ने विला में मिला के पी और फातिमा ने अपनी हया में मिला के पी, हसनैन और मुर्तजा ने जो महफिल सजा के पी, जिब्रील ने फलक से जमीन पर जो आके पी, जिसका नशा हयात का सामान हो गया, सलमान पी के फख्रे सुलेमान हो गया, जिस सलमान पी, कभी सब बोलेंगे कोई बात नहीं है, तो अभी सलमान पी के फख्रे सुलेमान हो गया, वो मैं पिला की जिससे तबीयत हरी रहे, नस नस में इन नमा की सुबह ही भरी रहे, कायम सदा जहां में तेरी दिल भरी रहे, आंखों के सामने ये सुराही धरी रहे, जो बादक अजबिला का नशा कल पे टाल दे, लिल्लाह उसको बज़्म से अपनी निकाल दे, वो मैं जो मुस्तफा ने विला में मिला के पी और फातिमा ने अपनी हया में मिला के पी, हसनैन और मुर्तजा ने जो महफिल सजा के पी, जिब्रील ने फलक से जमीन पर जो आके पी, जिसका नशा नजात का सामान हो गया, सलमान पी के फख्रे सुलेमान हो गया, वो मैं पिला की जिससे नबूवत की बू मिले, जिसके नशे में हुस्न इमामत की बू मिले, आदम को जिससे खोई हुई आबरू मिले, मैं भी पीऊं तो मुझको खुदा रूबरू मिले, वो मैं की जिसमें सुबह अजल का सुरूर हो, वो मैं की जिसमें आले मोहम्मद का नूर हो, ईसा ने पी तो उनको मसीहाई मिल गई, मूसा को अपने रब की शनासाई मिल गई, दाऊद को भी कुव्वत गोयाई मिल गई, याकूब ने जो पी उन्हें बीनाई मिल गई, याकूब ने जो पी उन्हें बीनाई मिल गई, वो मैं कि जिसका कैफ दिलों में उतर गया, यूसुफ ने पी तो चांद सा चेहरा निखर गया। थोड़ा
इसीलिए तो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, तो शायर को आवाज दे देता है इतनी जल्दी। तो थोड़ा करीब आ जाए चाचा जान, आपके पीछे कुछ बच्चे खड़े बैठे हैं जो सब लोग आगे चले हैं। ये देखिए ऐसे कैमरामैन होना चाहिए कि एक साथ में महफिल को भी अपना समझे, है ना। हाँ, सिर्फ कैमरा लगाए बैठे नहीं है, बल्कि महफिल को कामयाब बनाने की जुस्तजू में लगे हैं हमारे अबू सर भाई। गिराफ एजेंसी के कैमरा आपको देख रहा है, आपके जश्न को देख रहा है। लिहाजा हाँ काम है बढ़ रहा था। ईसा ने पी तो उनको मसीहाई मिल गई, मूसा को अपने रब की शनासाई। थोड़ा सा मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कुछ छोड़े मोमनी ना और आ जाए। ईसा ने पी तो उनको मसीहाई मिल गई, मूसा को अपने रब की शनासाई मिल गई, दाऊद को भी कुव्वत गोयाई मिल गई, याकूब ने जो पी उन्हें बीनाई मिल गई, याकूब ने जो पी उन्हें बीनाई मिल गई। वो मैं कि जिसका कैफ दिलों में उतर गया, यूसुफ ने पी तो चांद सा चेहरा निखर गया। अरे सागर में हलाता की किरण घोल कर पिला, सागर में हलाता की किरण घोल कर पिला, सर पर लेवाए हमदे खुदा खोल कर पिला, रिंदों का सर्फ पूरी तरह तोल कर पिला, चुपचाप क्यों है आज तो हंस बोल कर पिला। सागर में आज इतनी मुकद्दस शराब हो, पीले गुनाहगार तो हज का सवाब हो। अब आमादा हो गए सब। अरे अंदर आइए, आपकी जरूरत अंदर है। नहीं भाई, जश्न सुनने के लिए लोग आते हैं, बाराबंकी है इसने पास। हाँ, इसका जश्न का एक मेयार है, कोई जरूरी थोड़ी ना पूरा हॉल भरा हो। हाँ, मकसद ये है कि जितने लोग हो उतने सुनने वाले हो। जहाँ हजारों का मजमा होता है वहाँ भी सुनने वाले इतने ही होते हैं, है ना। जहाँ हजारों का मजमा होता है वहाँ भी सुनने वाले इतने ही लोग होते हैं। और जहाँ पर ऐसे मोतबर सामीन हो वहाँ पे 10 हाथ उठ जाएं तो बहुत है। मगर अभी जब मैंने शेर पढ़ा जहाँ पर, वहाँ पे दाद मिली। तुम आइए, मैं 4-5 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद शायर को आवाज़ देता हूँ। इसलिए कि एक नाजिम का काम है कि माहौल को साजगार कर दे, शायर को आवाज़ दे दे। तो अभी माहौल उस तरह से साजगार नहीं हुआ है कि किसी शायर को आवाज़ दी जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो इतने भी नौजवान बाराबंकी के और सैदवाड़े के जितने भी नौजवान बाहर टहल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ से मैं पहला शायर बैरूनी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लिहाजा जितने नौजवान बाहर टहल रहे हैं उनसे उनकी जिम्मेदारी है कि वो जश्न में आ जाएं। अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद पाकिस्तान की सरजमीन, उनके 2-4 शेर पढ़ता हूँ। एक मकाला है, एक मुकदमा है कशिश भाई, एक मुकदमा है जो अल्लामा मोहसिन नकवी शहीद ने नज्म किया है कि जब 2 पड़ोसियों में अगर लड़ाई हो जाए तो कैसे लड़ाई होती है। पड़ोसी तो सब रहे होंगे ना, सबकी लड़ाइयाँ हुई होंगी, जिसकी लड़ाई नहीं हुई होगी उसने लड़ाई देखी होगी। जब 2 पड़ोसियों में लड़ाई होती है तो क्या होता है, वो कहता है मेरे पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास इतना खेत है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास क्या है। वो कहता है मेरे पास इतना बड़ा मकान है, तुम्हारे पास क्या है। यही तो लड़ाई में होता है ना। अब जमीन और आसमान की लड़ाई हो रही है। अब फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपको करना है कि जमीन जीती कि आसमान जीता। अब दोनों जब लड़ाई शुरू हुई तो पहले जमीन ने हमला किया। जमीन ने पहले क्या कहा कि एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन। पहले मिसरे पे इंशाल्लाह ताला बोलेंगे। करीब आए, थोड़ा करीब आ जाइए। हाँ आ जाइए, थोड़ा सा करीब आइए बस। माशाल्लाह, जिंदाबाद, मौला सलामत रखे। हाँ ऐसे ही सुन लिया करिए नाज़िम की बातें को ना। वो देखिए एक मोहल्ला बसाए हुए हैं, उन लोगों से गुजारिश है थोड़ा सा करीब आ जाए। जो मोहल्ला बसाए हुए हैं वो भी नारे हैदरी, बस इतने लोगों की जरूरत थी। अब बोलने वाले यहाँ मौजूद हैं, मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले जमीन ने झगड़ा शुरू किया। कहती है एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। नहीं पहुंचा पाया मिसरा। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी जमीन, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का।
जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो आधे लोग बोले हैं ना। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीं, एक दिन बड़े गुरूर, थोड़ा सा बेदार हो जाए सही। एक दिन बड़े गुरूर से कहने लगी ज़मीं, आया मेरे नसीब में परचम हुसैन का। महताब ने कहा मेरे सीने के दाग देख, होता है आसमां पे भी मातम हुसैन का। फिर हंस के आसमां ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श और कुर्सी और लौह कलम नहीं। आसमान ने क्या कहा? फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श और कुर्सी और लौह कलम नहीं। ज़मीन ने कहा अरे जब से जबीने सिफ्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। वाह 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 वाह। नर हैदरी देने लगे, मैं शायर को बुला दूंगा। आया मेरा नसीब में परचम हुसैन का। फिर हंस के आसमान ने कहा हैसियत न भूल, तू औजे अर्श और कुर्सी और लौह कलम नहीं। ज़मीन ने कहा जब से जबीने सिफ्ते नबी मुझ पे खम हुई, मेरी ज़मीन भी अर्श मौला से कम नहीं। फिर हंस के आसमान ने कहा देख ऐ ज़मीन, मेरी बुलंदियों की तू मुहताज हो गई। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफ़ा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। एक शब हमारे समद को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शब मेराज हो गई। ज़मीन ने कहा अरे छेड़ा है तज़किरा शब मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। अरे नालैने मुस्तफा की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। तीन चार शेर। अरे सरकार बाराबंकी है। हाँ सैदवाड़े में पढ़ रहा हूँ, जाहिलों के दरमियान थोड़ी ना पढ़ रहा हूँ। अभी देखा कितने बच्चों को एजाज मिला है। खुदा की कौम, खुदा की कसम ये कौम बदल रही है, इल्म की तरफ जा रही है कौम। अभी देखा आपने कोई 90% नंबर, कोई 97% नंबर, कोई 98% नंबर। ये कौम के आगे बढ़ने का सबसे बड़ा नमूना है। जो इस कैमरे की निगाहों से लोग देख रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि जिस इलाके में जश्न हो रहा है वहाँ कितने पढ़े लिखे लोग हैं। फिर हंस के आसमान ने कहा देख ऐ ज़मीन, मेरी बुलंदियों की तो मुहताज हो गई। एक शब हमारे संत को आए थे मुस्तफा, वो शब जहान में शबे में, थोड़ा सा बोले, वो शब जहान में शबे मेराज हो गई। छेड़ा है तज़किरा शबे मेराज का तो सुन, मेरा ख्याल है कि तेरी भूल बढ़ गई। नालैने मुस्तफा की कसम मुंसिफी तो कर, तुझसे तो मर्तबे में मेरी धूल बढ़ गई। फिर आसमान ने कहा तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे असल के दिन से मेरी अपनी हद में है। तू जिसके नूर से है मुनव्वर व नूर ज़ात, सारे असल के दिन से मेरी अपनी हद में है। ज़मीन ने कहा अरे इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, शमशो कमर भी अब मेरे बेटों की ज़द में है, बेटों की ज़द में है, बेटों की ज़द में है, बेटों की ज़द में है। आसमान ने कहा देख देख कौन नहीं बोलता। आसमान ने कहा अरे बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। सोचा था कि इस पे जो लोग बोलेंगे बहुत बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे। आसमान ने कहा बेटों की तरबियत में बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सखी कई कंजूस भी तो है। अरे कहने लगी ज़मीन कि सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो। मैं कामयाब हुआ मगर इन बच्चों को बुलाने में कामयाब नहीं हो रहा। ये थोड़ा सा आगे आए। हाँ ये बच्चे थोड़ा सा आगे आए, उठ के आ जाएं सब बच्चे, सब उठ के आ जाएं। हाँ सब लोग
कई कंजूस भी तो हैं। चंदा लेने के जाइए कोई प्रोग्राम का तो ऐसे करोड़पति हैं, हालात खराब चल रहे हैं जाहिर सा बात है ना। कहीं मैं अज़ादार हूं, है ना, तो ऐसे लोगों ने जिक्र किया जमीन आसमान, कहने लगे जमीन इसमें है कुछ सही, कई कंजूस भी तो हैं। कहने लगे जमीन के सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही, कई मनहूस भी तो हैं। खुदा की कसम अगर मैं शेर पहुंचाने में कामयाब हुआ तो कोई बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके हाथ में उठे। हो सकता है कि नौजवान जो ये मंजर हुआ था अभी वही मंजर इधर है। ग्राफ कैमरा रेडी रखिए, ये लड़ाई का एकदम पीक पॉइंट है। हाँ, मामला बड़ा टिपिकल हो चुका है, डेंजर जोन में जा चुकी है लड़ाई। क्या कहती है? ये शहर है कहकशां, आसमान का ये शहर है कहकशां, ये महो नज्म के तैयार। आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। जमीन आसमान ने जैसे क्या कहा, चांद सूरज सितारे कहकशां काबा कौसैन अदना सब मेरे पास है, तेरे पास क्या है? आसमान ने कहा चांद सूरज सितारे कहकशां काबा कौसैन अदना सब मेरे पास है, तेरे पास क्या है? जमीन ने कहा सोच तो सही, बात सही कही, मगर जमीन तुराब है, मदद मांगेगी अबू तुराब से। हाय रे सैयदवाड़ा के मोमिनीन कहाँ बैठे, अब जवाब सुन के रोक नहीं पाएंगे। हो सकता है कि नौजवान खड़े होकर दाद दे दें कि ये शहर कहकशां के इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है। शम्सो कमर भी अब मेरे बेटों की सद में है, बेटों की तरबियत पे बहुत नाज है तुझे, इसमें है कुछ सही कई कंजूस भी तो है। कहने लगी समी की सितारों को भी तो देख, इसमें है कुछ सही कई मनहूस भी तो है। जमीन आसमान का ये शहर है कहकशां, ये महो नज्म के तैयार। आ देख तो सही मेरे दामन में क्या नहीं। कहने लगी जमीन सरे तस्नीम खम बजा, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अच्छा पढ़ नहीं रहा हूँ, अच्छा सुनने बंदो शेर। अच्छा जमीन जीतेगी आसमान, जमीन जीतेगी आसमान, जमीन जीतेगी आसमान। अक्लमंद लोग हैं। अब आसमान ने कहा वो दिन भी थे कि जब मेरे उस्ताद के आसपास रहता था मरकबे शह कौनैन याद कर। कशिश भाई एक मिनट रुक जाइए। वो दिन भी थे कि जब मेरा उस्ताद के आसपास रहता था मरकबे शह कौनैन याद कर। जमीन ने कहा इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, खेले हैं मेरी गोद में हंस कर। अरे धीरे से भी शेर पढ़ा जाए तब भी बोल दिया करिए। इतनी सी बात पर तुझे इतना गुरूर है, खेले हैं मेरी गोद में हसनैन याद कर। आसमान का कर याद, तेरे पास में झूले की शक्ल में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। कर याद, तेरे पास में झूले की शक्ल में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। ज़मीन का तू भी तो याद कर कि ज़मीन पर बरोज़े ईद खत्मुर रसूल बने थे सवारी हुसैन के। फैसला आपके हाथ में। अच्छा जब लड़ाई कोई होती है आखिरी शेर फैसला आपके हाथ में है, यहीं से फैसला कर लेना, यहीं से मैं शायर को आवाज दूंगा। आखिरी शेर जब लड़ाई होती है कोई हारने लगता है ना तो बड़ी जली कटी बात करने लगता है। पड़ोसी में लड़ाई देखिए, इसमें तो बहुत होंगे जो पड़ोसी से लड़ चुके होंगे, तो बड़ी जली कटी बात करता है। तो अब आसमान जब अपनी हार देखा तो उसने जली कटी बात बोली, एकदम जल भुज के बोली। सुन सुन आए उदुए अम्न सुकूत दुश्मने बशर। सुन
ऐ उदूए अमनो सुकून दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे है तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। देखते हैं कैसे रोकते हैं अपने आप। आखिरी लड़ाई का मंजर है, लड़ाई डेंजर जोन में जा चुकी है और बड़ा अजीब मंजर, आखिरी मंजर क्या कह दिया आसमान? सुन ऐ उदूए अमन सुकून दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे हैं तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। तवज्जो तवज्जो मेरे भाई, कर याद तेरे पास में झूले की। तवज्जो मेरे पास, सब कुछ है तेरे पास मगर करबला नहीं। कई वो दिन भी थे कि जब मेरे उसाद के आसपास रहता था मरकबे शहक। थोड़ा सा बेदारी का सबूत, रहता था मरकबे शहक। कौन है याद कर, इतनी सी बात पर तुझे भी इतना गुरूर है। खेले है मेरी गोद में हसनैन, याद कर याद तेरे पास में झूले की शक्ल में जिब्रील लेके आए हमारी हुसैन की। तू भी तो याद कर कि ज़मीन पर बरोज़े ईद खत्मुर रसूल बने थे सवारी हुसैन की। आसमान का सुन ऐ उदूए अमन सुकून दुश्मने बशर, तू एक बोझ बन गई नबियों की जान पर। ईसा ने एक उम्र सहे है तेरे सितम, आखिर सुकून मिला है उन्हें आसमान पर। ज़मीन का इंतजार का है इमाम ज़माना छेड़, झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर। आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को भी उतरना पड़ेगा ज़मीन। झूठी शिकन न डाल मुनव्वर जबीन पर। आने दे मेरे आखिरी वारिस को एक बार, ईसा को भी उतरना पड़ेगा ज़मीन पर। यह निज़ामत का काम था जो मैंने अंजाम दिया कि मोमिन मुनज़्ज़म हो जाए और जश्न में आमादा हो जाए सुनने के लिए, जिससे किसी शायर के लिए कोई परेशानी का सबब न बने। तो मैंने वो काम कर दिया। अब इस वक्त शायर की ज़रूरत है। और लीजिए एक बेहतरीन तरन्नुम, एक बेहतरीन लहजा, एक बेहतरीन अंदाज, जो पहली मरतबा एक बेहतरीन अंदाज, एक नौजवान शायर, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज। इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात इंशाअल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी वो शख्सियत आपके दरमियान, उनकी आवाज़ भी, उनके अशार भी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब व एहतराम के साथ अपने इस फहरिस्त का पहला शायर जनाब मुदस्सिर जौनपुरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल। हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको इस पुरनूर बाबरकत जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह जाहिद भाई ने एक माहौल बना दिया। तमयीद की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चार मिसरे से बानी जश्न की इजाज़त चाहते हुए मतलब हाजिर करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएंगे मतलब आप पेश खिदमत है बतौर ख़ास पेश करता हूँ। जरी के जश्न का, जरी के जश्न का जो एहतमाम करते हैं, जरी के जश्न का जो एहतमाम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं, वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं,
वो इंतहाई शराफत का काम करते हैं। मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ, मैं घर में मजलिसों महफिल की सोच लेता हूँ। इमाम गैब से खुद इंतजाम करते हैं। खुद इंतजाम करते हैं। इमाम गैब से। एक बाबा से बुलंद नारे से बात मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएंगे खानदानी ज़हरा पर बाबा से बुलंद नारे सलवात सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। मतलब हाजिर करता हूँ और इस कलाम में थोड़ा सा साथ दीजिएगा। एक शेर के लिए चंद शेर तमीदन पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएंगे, बतौर खास पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। शान में जिसके कसीदा कोई लिखा जाए, शान में जिसके कसीदा कोई लिखा जाए, उसका किरदार तो कुछ खुद में भी ढूंढा जाए, उसका किरदार तो कुछ खुद में भी ढूंढा जाए, उसका किरदार। याद में शाम गरीबा को भी रखा जाए, याद में शाम गरीबा को भी रखा जाए, जब सरे शाम चिरागों को जलाया जाए, जब सरे शाम चिरागों को जलाया जाए, जब सरे शाम। अब ये शेर आखिरी मजमे तक पढ़ रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइएगा, एक मैसेज है, शायद इसी लायक हो, अगर पहुंच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। जब सरे शाम, धीरे धीरे इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपसे जुड़ने की। आले अहमद भी यहाँ आते हैं, रखना ये ख्याल, आले अहमद भी यहाँ आते हैं, रखना ये ख्याल, जश्न को जश्न के जैसे ही मनाया जाए, जश्न के जैसे ही मनाया जाए, जश्न को जश्न। जिक्र आबास, मेरी तरफ मुखातिब है, मैं हाजिर करता हूँ। जिक्र आबास भी अल्लाह का एक वादा है, जिक्र अब्बास भी
अल्लाह का एक वादा है, आओ फिर वादे माबूद निभाया जाए, आओ फिर वादे माबूद निभाया जाए। जान लो हज़रते अब्बास के शैदा हम हैं, जान लो हज़रते अब्बास के शैदा हम हैं। हमको मुमकिन नहीं दुनिया से मिटाया, मुमकिन नहीं दुनिया से मिटाया जाए। हमको मुमकिन जान लो हैरते अब्बास के शैदा हम हैं। हमको मुमकिन नहीं दुनिया से मिटाया जाए। हमको मुमकिन। अब ये भी शेर मैं अपने हमसे भाइयों की नज़र करता हूँ। आज़ादारी का मरकज़ है बाराबंकी। शेर अगर पहुँच जाए तो दुआओं से नवाजिएगा। अगर बतौर खास पेश करता हूँ, बतौर खास अफजल भाई दो शेर मुलादा फरमाएगा। कोई भी माँ है, नौजवानों की नज़र करता हूँ। कोई भी माँ है मुहर्रम में न हो दुश्वारी, बस यही सोच के मेहनत से कमाया जाए। कोई भी माँ है मुहर्रम में न हो दुश्वारी, बस यही सोच के मेहनत से कमाया जाए। बस यही आखिरी में मैं शेर नज़र करता हूँ। मुलाज़ फरमाएगा, ऐसी ऐसी दुनिया पे भी लानत है कि जिस दुनिया में, ऐसी दुनिया पे भी लानत है कि जिस दुनिया में कातिलों को रज़ी अल्लाह बताया। ऐसी दुनिया पे भी लानत है कि जिस दुनिया में कातिलों को रज़ी अल्लाह बताया जाए। कातिलों को अगर सहमत ना हो थोड़ा सा करीब आ जाइए। सलवात पढ़ती हो थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाइए। एक माहौल बना लीजिए जश्न सुनने का। चंद शेर और हाजिर रखता हूँ, फरमाएंगे मतलब पेश करता हूँ। नौजवानों की फरमाएंगे, पेश करता हूँ। बस अल्लमा का शोर है लश्कर में देखिए, थोड़ा सा जोड़ के सुने। बस अल्लमा का शोर है लश्कर में देखिए, अकबर है आज एक नए तेवर में देखिए, अकबर है आज एक नए तेवर में देखिए,
पर है आज एक नए शेर मुलाज़ फरमाएगा। मैदान कारज़ार में अकबर के दो कदम, मैदान कारज़ार में अकबर के दो कदम, है चार चांद दी के मुकद्दर में देखिए, है चार जज़ाकल्लाह सलामत। करीब आ जाए, थोड़ा सा करीब आ जाए। है चार चांद दी के मुकद्दर में दे, है चार चांद दी के। मजमा मुख्तसर है, मुतबर समाते हैं। शेर शहजादी के हवाले से पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएगा। है चार चांद दी के। शेर मुलाज़ा फरमाएगा। टुकड़ों पे जिसके पलती नजर आई कायनात, टुकड़ों पे जिसके पलती नजर आई कायनात, पैबंदों से बतूल की चादर में देखिए, चादर में देखिए, पैबंदों से बतूल। अब ये शेर मसाहब से फजाइल का एक गोशा है। सिर्फ आगे वालों की ही जिम्मेदारी नहीं है सुनने की, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि कैमरे में आप भी आ रहे हैं। आप भी बाद में वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सुनने गए थे। आप दाद भी दीजिए, लगे कि आप जश्न में मौजूद हैं। है चार चांद दी के। शेर पढ़ने जा रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएगा, पेश करता हूँ एक मंजर। मुलाज़ा फरमाएगा। है चार चांद दी के। समाज फरमाएगा। है चार चांद दी के। समाज फरमाएगा। रुक रुक के चल रहा है गुलूवे हुसैन पर, रुक रुक के चल रहा है गुलूवे हुसैन पर, कितनी थकन है शिमर के खंजर में देखिए। नारे हैदरी, वाह वाह। थकन है शिमर के खंजर में देखिए, कितनी थकन है शिमर के। नन्ही मुजाहिद की बारगाह में दो शेर से लेकर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमाएंगे। कितनी है शिमर के। आखिरी मंजमे तक शेर मुलाज़ा फरमाएगा। उल्टी है क्या रबाबों ने असगर की आस्ती, उल्टी है क्या रबाबों ने असगर की आस्ती, हलचल बपा है जुल्म के लश्कर में देखिए। हैदर 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 या अली, क्या कहने भाई, वाह। लश्कर में देखिए हलचल बपा है जुल्म के। मैदान का एक मंजर मुलाज़ा फरमाएगा। तो मैदान में आ गया है तो लौटेगा जीत कर, मैदान में आ गया है तो लौटेगा जीत कर, हैदर का हौसला अली असगर में देखिए। नारे हैदरी, असगर में देखिए हैदर का हौसला अली, असगर में देखिए
जफर भाई शेर बुलादा फरमाएंगे, ये भी समाज फरमाएंगे। हैदर का हौसला, आपकी दुआएं भी मुझ तक पहुंचनी चाहिए। हैदर का हौसला, हैदर का हौसला। शेर आखिरी मंजिल तक ये भी मुलादा फरमाएगा। अहले सकीफा चंद है उसमें भी इख्तिलाफ, अहले सकीफा चंद है उसमें भी इख्तिलाफ। एक जैसे फैसले हैं 72 में देखिए। अहले सकीफा चंद है उसमें भी इख्तिलाफ, एक जैसे फैसले हैं 72 में देखिए। बस अल्लमा का शोर है। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चंद शेर और हाजिर करता हूं। मतलब पेश खिदमत है, समात मांगेंगे, मतलब बिल्कुल सादा सा। उसके बाद शेर मुलादा फरमाएंगे, मतलब हाजिर करता हूं। दुश्मने हैदर, दुश्मने हैदर कर्रार जहां होता है, दुश्मने हैदर कर्रार जहां होता है, दुश्मने हैदर कर्रार जहां होता है। ये हकीकत है कि शैतान वहां होता है, ये हकीकत है कि शैतान वहां होता है। शेर नस करता हूं, मुलाज़ फरमाएगा। जंग कहती है हबीब और अली असगर की, जंग कहती है हबीब और अली असगर की। हौसला उम्र का मोहताज कहाँ होता। नारे हैदरी। हौसला उम्र का मोहताज कहाँ होता है, हौसला उम्र का मोहताज कहाँ होता है, हौसला उम्र का मोहताज कहाँ होता है। अब ये शेर फरमाइएगा। हौसला उम्र का मोहताज कहाँ होता है, तो पाल कर माने बताया है अली असगर को, पाल कर माने बताया है अली असगर को, पाल कर माने बताया है अली असगर को, पाल कर माने बताया है अली असगर को। 6 महीने में भी इस्लाम जवा होता है। अरे फिर से असगर को 6 महीने में भी इस्लाम जवा होता है, 6 महीने में भी इस्लाम जवा होता है। लाख मीसम की ज़बां काट दी जाए लेकिन, लाख मीसम की ज़बां काट दी जाए लेकिन, दार पर भी वही अंदाज़ बयां होता है, दार पर भी वही अंदाज़ बयां होता है। इसलिए उठती है आवाज़ खिलाफे मातम, इसलिए उठती है आवाज़ खिलाफे मातम। जख्म आते हैं यहाँ दर्द वहाँ होता है। नारे
हैदरी। इसलिए उठती है आवाज खिलाफे मातम, इसलिए उठती है आवाज खिलाफे मातम। जख्म आते हैं यहाँ दर्द वहाँ होता है, जख्म आते हैं यहाँ दर्द वहाँ होता है। इसलिए उठती है आवाज खिलाफे मातम, इसलिए उठती है आवाज खिलाफे मातम। जख्म आते हैं यहाँ दर्द वहाँ होता है, जख्म आते हैं यहाँ दर्द वहाँ होता है, जख्म आते हैं यहाँ दर्द वहाँ होता है। करबला छोड़ दे अब खौफ बयाबानी का, काफिला शह का मदीने से रवा होता है। करबला छोड़ दे अब खौफ बयाबानी का, काफिला शह का मदीने से रवा होता है। इनसे हरगिज़ भी उजाले की न उम्मीद करो, इनसे हरगिज़ भी उजाले की न उम्मीद करो। बुग़्ज़ हैदर के चरागों में धुआं होता है, बुग़्ज़ हैदर इनसे हरगिज़ भी उजाले की न उम्मीद करो। बुग़्ज़ हैदर के चरागों में धुआं होता है, बुग़्ज़ हैदर के। मुदस्सिर जौनपुरी साहब, इनसे हरगिज़ ना उजालों की उम्मीद रखो, बुग़्ज़ हैदर के चरागों में धुआं होता है। लिहाजा बड़ा खूबसूरत मजमा है और जब मौका मिलेगा तो निज़ामत करूँगा, नहीं तो फेरिस्त तवील है, मगर ऐसा भी नहीं कि निज़ामत नहीं करूँगा, मगर फेरिस्त तवील है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे मोमिन बाकायदा सुन रहे होंगे वहाँ निज़ामत का कोई काम नहीं होगा, तो वहाँ मैं निज़ामत थोड़ी सी इग्नोर भी कर सकता हूँ। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अली अब्बास सैदपुरी साहब से तशरीफ लाएं। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें अली अब्बास सैदपुरी साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम। आप सबको इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ममदू की शान में एक मतलब एक दुरूद पढ़ दें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जो परचमे अब्बास तक आया नहीं होगा, जो परचमे अब्बास तक आया नहीं होगा, जो परचमे अब्बास तक आया नहीं होगा, महशर में मयस्सर उस साया नहीं होगा। नारे हैदरी। जो परचमे अब्बास तक आया नहीं होगा, महशर में मयस्सर उसे साया नहीं होगा। और फतवे तू लगाता है अज़ादारी ये शह पर, अरे फतवे तू लगाता है अज़ादारी शह पर, अंजाम तेरा हश्र में अच्छा नहीं, हश्र में अच्छा नहीं होगा। अरे तो हमने तो कभी आपसे पूछा भी नहीं है, हमने तो कभी आपसे पूछा भी नहीं है, क्यों आप ये कहते हैं तबर्रा नहीं। नारे हैदरी। अबू तू
तुराब के नौकर तो प्यार देखते हैं, वो और हैं जो लहद में फिशार देखते हैं। अबू तुराब के नौकर तो प्यार देखते हैं, वो और हैं जो लहद में फिशार देखते हैं। ओ खुदा के घर की जियारत को भूल कर मुनकिर, खुदा के घर की जियारत को भूल कर मुनकिर, कहाँ से टूटी हुई है जिदार देख, कहाँ से टूटी हुई है जिदार देख। आइए आइए, मतलब पेश करता हूं बतौर खास। इसलिए मश्क को हम चूम रहे हैं अब्बास, इसलिए मश्क को हम चूम रहे हैं अब्बास। बारहा इस पे तेरे हाथ लगे हैं अब्बास, अरे लग गई है तेरे परचम की हवाएं, शायद लग गई है तेरे परचम की हवाएं, शायद हम भी फितरुस की तरह उड़ने लगे, हम भी फितरुस की तरह उड़ने लगे हैं अब्बास। अरे तेरी तलवार से मरने के जो हकदार न थे, तेरे तलवार से, तेरी तलवार से मरने के जो हकदार न थे, तेरे रहवार की टापों से मरे, तेरे रहवार की टापों से मरे हैं अब्बास। एक फरमा ले कि जल रहे हैं जो दिए उनको बुझाया जाए, जल रहे हैं जो दिए उनको बुझाया बस इश्क की शम्मा को जलाया अरे जश्न अब्बास में हाथों को उठाया जाए, और जो चाहिए वो मांग के पाया, चाहिए वो मांग के पाया जाए। और हजरत हुर का तो पहले भी अकीदा ये था, हजरत हुर का तो पहले भी अकीदा ये था, बिन्ते अहमद का कभी दिल न दुखाया जाए, बिन्ते अहमद का कभी दिल न दुखाया जाए। जनाब मुख्तार के हवाले से एक शेर समझ फरमाएं। बिन्ते अहमद का कभी दिल न दुखाया जाए, अरे उसकी दहलीज पे आ जाओ, गिरफ्तारी दो, इससे पहले कि तुम्हें ढूंढ के मारा। अरे उसकी
दरबार में आ जाओ, गिरफ्तारी दो, इससे पहले कि तुम्हें बांध के लाया जाए। अरे कितना आसान, कितना मुश्किल है तेरे गम को भुलाना मौला, कितना आसान है कह दे न भुलाया जाए। अरे आप बस ज़ाकिर शबीर लगा दे इसमें, आप बस ज़ाकिर शबीर लगा दे इसमें, और मेरे नाम में कुछ भी न लगाया। डॉक्टर मोहम्मद काया भलौरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। कुछ भी न लगाया जाए। आखिर के दो शेर समाप्त फरमा लें। और मेरे नाम में कुछ भी न लगाया जाए। नाम अब्बास में जो खान बिछाया जाए, नाम अब्बास में जो खान बिछाया जाए, भूख और प्यास के मारों को बुलाया जाए, भूख और प्यास के मारों को बुलाया जाए। और शाम वालों ने ये दस्तूर बना रखा है, शाम वालों ने ये दस्तूर बना रखा है, हार कर नेज़ों पे कुरान उठाया जाए। और इख्तिलाफात है राय में कोई हर्ज नहीं, नियतों को तो निशाना न बनाया। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा जश्न में, है ना? बेफिक्र रहो। हाँ हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो निजामत करने आया कि थोड़ा सा फिर एक माहौल बने महफिल का। एक बार मैं असल बात मुसीबत यह है मेरे लिए कि वक्त नहीं है नाज़िम के लिए बहुत ज़्यादा, तो ये भी एक परेशानी का सबब है, इसलिए कि बहरूनी शोरा को 20 मिनट का वक्त दिया गया है और मकामी शोरा को 3.5 मिनट का वक्त दिया गया है और नाज़िम के पास 2.5 मिनट का वक्त है। तो ये कुल मिला के इसी तरीके से कवर हो सकता है मामला। थोड़ा सा करीब आ जाइए आप लोग, थोड़ा सा करीब आ जाइए। जो पहली मरतबा आए हैं उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि सामाईन तो कम है, कैसे हमको सुना जाएगा, किस तरीके सुनेंगे। उनको पता शायद नहीं है कि ये सैयदवाड़े का मजमा है, ये सैयदों का मजमा है। इंशाअल्लाह ताला एक एक हाथ 10-10 आदमियों के बराबर होते हैं। यहाँ की दाद मशहूर ज़माना है। थोड़ा करीब आ जाइए जिससे इन लोगों को बिल्कुल एहसास ना होने पाए। भाई थोड़ा करीब आ जाइए। इसलिए जब गिराफ एजेंसी का कैमरा आपकी निगाह आपके इस मजमे पर पड़े तो कम से कम आगे के लोगों को पता रहे कि लोग थे, महफिल सुन रहे थे। आप भाई काहे मोहल्ला अलग बनाए बैठे हुए हैं? आपकी भी यही फरीजा है कि आप लोग भी यहीं आ जाएं। और 2 लोग इधर बैठे हुए हैं, अगर ये लोग आ गए, हाँ अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ आप पूरे दुनिया को दिखा रहे हैं तो इनको दिखाइए कि कैसे दाद दे रहे हैं। थोड़ा करीब आ जाइए भाई, हाँ थोड़ा करीब आ जाइए। नहीं, जो बाहर हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगे। बार बार बुलाने से
दिक्कत होगी, इसलिए कि कैमरा चल रहा है, ये जाहिद काज़मी को नहीं दिखा रहा, ये डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब को कम दिखाएगा, ये सावन हल्लौरी साहब को कम दिखाएगा, ये रेहान आज़मी साहब को कम दिखाएगा, मुनव्वर जलालपुरी साहब को कम दिखाएगा, इसलिए कि इनको यह हर जगह कैमरा दिखाता है। आज कैमरा बाराबंकी के मोमिनीन को दिखा रहा है कि यहाँ कैसे सुना जाता है, कितने लोग जश्न में शिरकत करते हैं। आज खुंचाए अब्बासिया के मिंबरान को कैमरा दिखा रहा है, तो लिहाजा पूरे अंजुमन के मिंबरान को यहाँ होना चाहिए, है ना। तो वो लोग खुद ही आ जाएंगे। मैं एक मसला पढ़ता हूँ और जो आने वाले पहली मर्तबा जो शोहरा आए हैं उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या सुन रहे हैं आप, कि हुर का अकबर की अज़ा पे फैसला रखा गया। अंदाजा हो जाएगा यहीं से, जो पहली यहीं से अंदाजा होगा कि हुर का अकबर की अज़ा पे फैसला रखा गया, रात का सजदा सवेरे तक कज़ा रखा गया। ये तो अभी आधी दाद हुई ना, खुदा का शुक्र है नायाब भाई, आज मेरे दाएं के लोग भी और मेरे बाएं के लोग भी बहुत अच्छे मिले हुए हैं। हुर का अकबर की अज़ा पे फैसला रखा गया, रात का सजदा सवेरे तक कज़ा रखा गया। अरे मुफलिसी ने दिल कभी मुफलिस नहीं होने दिया, घर था छोटा ताजिया लेकिन बड़ा रखा गया। देखा भाई, बोलता है मजमा। कमर इमाम भाई की ड्यूटी है कि जो बाहर खड़े हुए हैं उनको भेज दे अंदर जल्दी से। हुर का अकबर की अज़ा पे फैसला रखा गया, रात का सजदा सवेरे तक कज़ा रखा गया। अरे करबला तेरी बदौलत सर सजदे में है, बुत हटाकर सबके ज़हनों में खुदा रखा गया। इधर उधर ना देखा कर, मेरी तरफ। करबला तेरी बदौलत आज सर सजदे में है, बुत हटाकर सबके ज़हनों में खुदा रखा गया। कब्र बरहक की तरह मिलती नहीं कब्र यसीर। सर हिला क्यों रहे, बोल दीजिए मुझसे। कब्र मरहब की तरह मिलती नहीं कब्र यसीर, लापता के दुश्मनों को लापता रखा गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ऐसा ही सुनते रहे तो फिर नाज़िम की जरूरत क्या है मेहनत करने की। करबला तेरी बदौलत सर सजदे में है, बुत हटाकर सबके ज़हनों में खुदा रखा गया। एक शेर पढ़ रहा हूँ कशिश भाई, आपकी नजर कर रहा हूँ, एक शेर नया भाई के बुत हटाकर। अगर नौजवान दाद ना देंगे तो कोई बात नहीं, मगर जहां तक के शेर में पहुंचाना चाहे सरकार, अगर वहां से दाद नहीं मिली तो दिल में तकलीफ होगी। शेर बड़ा करबला तेरी बदौलत सर सजदे में है, बुत हटाकर सबके ज़हनों में खुदा रखा गया। शाम जब बाबे हरम पर दस्तकें देने लगी, नौजवान नहीं बोलेंगे कोई बात, मगर जहां तक के शेर पहुंचे वो लोग नहीं बोले। मैं निगाहों के अपने कैमरा बना। हाँ शाम जब बाबे हरम पे दस्तकें देने लगी, ताके काबा में चिरागे करबला रखा गया। शाम जब बाबे हरम पर दस्तकें देने लगी, हैरत हुई भाई हैरत हुई। शाम जब बाबे हरम पे दस्तकें देने लगी, ताके काबा में चिरागे करबला रखा गया। अरे मौत का ऐसा भी इस्तेक़बाल होता है कहीं, खंजरों की धार पर बढ़कर गला रखा है। हैदर हैदर हैदर।
बस यही तो निजामत है, और क्या निजामत है। देखिए फिर जुड़ गए लोग, सुनने लगे, है ना, फिर लोग जुड़ गए। शाम जब बाबे हरम पे दस्तके, अच्छा कुछ लोग चुप रहे तो शाम जब बाबे हरम पे दस्तके देने लगे, एक शेर याद आ गया बिलाल काज़मी साहब। ये दो शेर थे सरवर नवाब साहब के, एक शेर इसमें बिलाल काज़मी साहब का याद आया। लाज रख लेना भाई, ये थोड़ा ये लोग दिल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। नारे हैदरी, आधे लोग हाथ उठाए, सब लोग हाथ उठाएं, नारे हैदरी। शाम जब बाबे हरम पे दस्तके देने लगी, ताक़े काबा में चिराग़े करबला रखा गया। बिलाल काज़मी साहब ने कहा, अरे यूं तो सारे फैसले अल्लाह करता है, मगर शाह के हाथों में हुर का फैसला रखा। सुभान अल्लाह, सुभान हैदर 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 हैदर। हाँ शबाब भाई आ जाइए, तभी तो हम कहे दात है कब मिल रही है। आ जाए, जश्न कायम के रुए रवा है, उतनी दूर नहीं, उतनी दूर नहीं, नहीं आगे आगे आगे। अरे नहीं भैया, ये बहुत अजीम नहीं है बेटी। शाम जब बाबे हरम पर दस्तके देने लगे, ताकि काबा में चराग़े करबला रखा गया। कब्र मरहब की तरह मिलती नहीं कब्र यजीद, लापता के दुश्मनों को लापता रखा गया। ये शेर डॉक्टर नैयर जलालपुरी का था, मैंने बताया नहीं आपको। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, फिर बेहतरीन समातें हो चुकी हैं, बेहतरीन मजमा है, बेहतरीन अंदाज है सुनने का। अब कोई मुझे शक नहीं है कि कोई, अब ये मेरे दिल के अंदर खदशा नहीं है कि किसी शायर का कोई शेर अच्छा होगा तो कुर्बान चला जाएगा। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अब इस मकाम पर एक बेहतरीन तहत शायर यानी जनाब रेहान आज़मी साहब इंशाअल्लाह ताला आप हजरात समात फरमाएंगे। पहली मर्तबा आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह ताला एक कामयाब तरीन शायरों की फहरिस्त में नाम रखते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। अवलन आप सबके खिदमत में इस जश्न पर मुसर्रत की तहनीत व तबरीक पेश करता हूँ। वाक़ईन अगर सुनने के लिए आमादा हैं तो दोनों हाथों को बुलंद करके एक ऐसा नारा लगा लें ताकि कुछ पहुँचाने का दिल चाहे। दोनों हाथों को बुलंद करके गदीरी नारा पूरी क़ुव्वत समेट के नारा हैदरी। बहुत शुक्रिया। मैं यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। जाहिद भाई बार बार ये बता रहे थे कि हाँ शायरी सुनी जा रही है। मैं यहीं से देखता हूँ कि कुछ देर ज़रा सा मेरे साथ चलिएगा, इंशाअल्लाह कुछ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। मतलब सुने, मौत का उस तरफ असर देखा। मैं चाहता हूं अगर 20 मिनट बात करनी है तो 15 मिनट कम से कम उन्वान से बात की जाए। सुने खास तौर से, मौत का उस तरफ असर देखा, कोई जबरदस्ती नहीं, जब मिसरे पहुंचे तब बोलिएगा। मौत का उस तरफ असर देखा, मौत का जितना आप बोलते जाएंगे मैं उतना खुल के बढ़ता चला जाऊंगा। मौत का उस तरफ असर देखा, अबूजर भाई, मौत का उस तरफ असर देखा, मौत का उस तरफ असर देखा, रन में अब्बास ने जिधर देखा। मौत का उस तरफ असर, मौत का उस तरफ, इधर वाले भी जरा सा, मौत का उस तरफ असर देखा, मौत का उस तरफ असर देखा, रन्ने अब्बास ने जिधर देखा। पढ़ा लिखा मजमा शेर जाया नहीं होगा, मुलाहिदा फरमाए, उलमा से दुआएं मिल जाएंगी। खास तौर से सुने, मेरी नजर में कीमती है। मौत का उस तरफ असर देखा, मौत का उस तरफ असर देखा, रन्ने अब्बास ने जिधर देखा, हुर्सा पत्थर पिघल गया। शेर
शेर पढ़ने जा रहा हूँ, बाराबंकी की मोतबर समाते मेरी नजरों के सामने। हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हमने पानी में ये असर देखा। हुर्सा पत्थर पिघल गया, हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हमने पानी में ये असर देखा। भाई कामयाब, हमने कमर भाई कहाँ जा रहे हैं, रुक जाइए, 20 मिनट की बात है। हाँ आ जाइए, जल्दी से आ जाइए इधर। हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हमने पानी में ये असर देखा, हमने पानी में ये असर देखा। हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हमने पानी में ये असर देखा। देखना था जरी के चेहरे को, शेर सुने दिल में उतरेंगे जश्न अब्बास में बैठे हुए। हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हमने पानी में ये असर देखा। देखना था जरी के चेहरे को, फिर सुने मिसरा, देखना था जरी के चेहरे को, चांद को मैंने रात भर देखा। देखना था जरी के चेहरे को, देखना था, शेर पढ़ा मैंने, देखना था जरी के चेहरे, देखना था जरी के चेहरे, चांद को मैंने रात भर देखा। सारे नौजवान बैठे हुए, नौजवानों पर बोलना वाजिब होता है। इस सिलसिले का आखिरी शेर सुनिएगा। मौत का उस तरफ असर देखा, रन में अब्बास ने जिधर देखा, रन में अब्बास ने जिधर देखा। हुर्सा पत्थर पिघल गया फौरन, हमने पानी में ये असर देखा। देखना था जरी के चेहरे को, चांद को मैंने रात भर देखा, चांद को मैंने पल के न झपके। मेरी तरफ बहुत आराम से शेर पढ़ जाऊंगा, नौजवानों पर बोलना वाजिब होता है। देखना था जरी के चेहरे को, चांद को मैंने रात भर देखा, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। कितनी बार पढ़ूं मिसरा, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर पढ़ता हूं मिसरा, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। 100% मेरी तरफ, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर सुन, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। जिसने अकबर को एक नजर देखा, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। फिर उसे कुछ नजर नहीं आया, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया, फिर उसे कुछ नजर नहीं आया। जिसने अकबर को एक नजर देखा, जिसने अकबर को एक नजर देखा, रसूल हक की शरीयत को जिंदगी दे दी। अब यहाँ से जरा सा जुड़ते आइएगा। रसूल हक की शरीयत को जिंदगी दे दी, अली वली की विलायत को जिंदगी दे दी। रसूल हक की शरीयत को जिंदगी दे दी, अली वली की विलायत को जिंदगी दे दी। जरी से मांग के तलवार रोजे आशूरा, हुसैन तुमने कयामत को जिंदगी दे। जरी से मांग के तलवार रोजे आशूरा, जरी से मांग के तलवार, जरी से मांग के तलवार रोजे आशूरा, जरी से मांग के तलवार रोजे आशूरा। हुसैन तुमने, कारी भाई, हुसैन तुमने कयामत को जिंदगी दे। खास तौर से मुलाहिजा करो, हुसैन तुमने कयामत को जिंदगी दे दी। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, पल के न झपके मेरी तरफ, बहुत आराम से पढ़ूंगा मिसरे। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे। एक लम्हे के लिए भी इधर उधर होना हो, ये भाई इस वक्त सिर्फ हमारी तरफ देखिए। हाँ, किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे। आवाज आ रही है? अब आपकी आवाज मुस्तक आनी चाहिए। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे। प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। चौथा मिसरा सुनिएगा, देखता हूं कैसे खामोश रहते हैं। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही,
क्यों भाग पड़े, क्यों भाग पड़े, ऐसे ही पड़ जाऊंगा। किस तरह सजी जुल्म की सब देख रहे थे, प्यासे थे मगर अपना हदफ देख रहे थे। क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। अब्बास तो बस रन की तरफ देख रहे, क्यों भाग पड़े, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के, क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। बहुत शुक्रिया। क्यों भाग पड़े खौफ से लश्कर के सिपाही। भाई सुनिए, अब्बास तो बस रन की तरफ देख रहे थे, अब्बास तो बस रन की तरफ देख रहे थे। मिसरे सुने, आज के जश्न का पहला तोहफा मेरी जानिब से। दरबार सजा हुआ, बेगैरत तख्त पर है, मलका गैरत बोल। क्या बात है, जश्न में पहला तोहफा देने जा रहा हूं। दिल की धड़कनें ना बढ़ाइएगा, ये मेरे बंधे हाथ हैं। याद रह जाएंगे मिसरे, जब तक नहीं आऊंगा तब तक याद रखें। खास तौर से मंजर नजर में रखिए। दरबार सजा हुआ, खास तौर से उलमा से शोरा से दुआएं चाहिए। दरबार सजा हुआ, बेगैरत तख्त पर मलका गैरत बोल। अली की बेटी बोल, अली की बेटी बोल। जालिम तख्त पर कांपने लगे, बज़बाने जनाबे ज़ैनब सुनिए, दिल में उतरेंगे मिसरे। बीबी फरमाती हैं, तीसरे मिसरे तक एक लम्हे के लिए अपने आंसुओं की फुरात पर काबू रखिएगा, चौथा मिसरा रूह में उतर जाएगा। बीबी फरमाती हैं, है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के। पूरी कुव्वत समेट करके मिसरे पहुंचा। मौला मेरी ज़बान में तासीर अता करें कि दिल में उतार दूं। सुने खास तौर से, है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। अली की बेटी बोल, अली की बेटी बोल। जालिम तख्त पर कांपने लगा, मंजर नजर में रखिए, दिल में उतरेंगे मिसरे। बीबी फरमाती हैं, है जख्म अभी ताजा भाई से जुदाई के, ज़ैनब के नहीं दिल में अरमान रिहाई के। बीबी फरमाती हैं, बेकस ना समझ लेना, बेकस ना समझ लेना, आवाज अगर दे दूं आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के, आ जाएंगे दरिया से बाजू, आ जाएंगे हैदर 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 अली 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 जिंदाबाद। आ जाएंगे दरिया से, आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के, आ जाएंगे दरिया से बाजू मेरे भाई के। आया है, मतलब सुनिए, आया है लबे नहर अलमदार अकेला। शायरी सुने, ज़बान मुलाहिज़ा फरमाएं। आया है लबे नहर अलमदार अकेला, आया है लबे नहर अलमदार अकेला। सुने मतलब, आया है लबे नहर अलमदार अकेला, उस पार तो लाखों हैं ये इस पार अकेला। नहीं नहीं, जरा सा बोलते आइएगा, दिल में उतरेंगे मिसरे। आया है लबे नहर अलम, दो चार चेहरे ही देख के पढ़ लूंगा मैं। आया है लबे नहर अलमदार अकेला, उस पार तो लाखों हैं ये इस पार अकेला, उस पार तो लाखों हैं ये इस पार अकेला। इधर वाले भी जरा सजा गए। खत खींचा खत खींचा जरी ने, तो कहा शिमरे लई ने, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। खत खींचा जरी ने, तो कहा शिमरे लई ने।
सनद है। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमर लई ने, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। चाहे मौला गाजी की क्या बात की जाए, शेर सुनिए पहले। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमर लई ने, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। गाजी तो गाजी है, फिर भी शेर सुनिए। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमर लई ने, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। कितनों को कजा दे गया टापों से कुचल कर। नहीं जरा सजाइए, जश्न का माहौल बनाइए। कितनों को कजा दे गया, कितनों को कजा दे गया टापों से कुचल कर। मैदान में अब्बास का रहवार अकेला। कितनों को कजा दे गया, कितनों को कजा दे गया, वाह वाह वाह, कजा दे गया। कितनों को कितनों को कजा दे गया टापों से कुचल कर। मैदान में अब्बास का रहवार। मैंने इतना बड़ा मन्ना नहीं के बोला। कितनों को कजा दे गया टापों से कुचल कर, मैदान में अब्बास का रहवार। नहीं इधर वाले नाराज हैं क्या हमसे? हम 100% को साथ लेके चलते हैं। कितनों को कजा दे गया टापों से कुचल कर, मैदान में अब्बास का रहवार। हाँ, मैदान में अब्बास का रहवार। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पर इधर शाह का इनकार अकेला। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पर इधर, नेज़े पर इधर, नेज़े पर इधर। अब उधर भाई शेर सुनिएगा, आप हर बरस करबला जाते हैं, करबला बुलाए। खास तौर से शेर सुने, खास तौर से शेर मुलाहिजा फरमाए, मौला आप सबको करबला बुलाए। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पे इधर शाह का इनकार अकेला। एक चांद, बहुत आराम से पढ़ूंगा। एक चांद, एक चांद खास तौर से, एक चांद नया भाई, एक चांद मदीने का है और नाम है अकबर। नहीं धड़कने ना बढ़ाइएगा, जरा सा जागिए। एक चांद जगह में, एक चांद मदीने का है और नाम है अकबर। है करबला का वो जमींदार अकेला। एक चांद मदीने का है और नाम है अकबर। एक चांद मदीने का है और बिखर के नहीं, दोनों हाथों को बुलंद करके मिल करके नारा लगाए। जो जो अपने हाथों को मौला के नाम पे बुलंद करे, मौला उसे कभी किसी कम ज़र्फ़ का मोहताज ना बनाए। पूरी कुव्वत समेट के खदीजी नारा, नारा हैदरी। हाँ, जरा सा लगना चाहिए। आया है लबे नहर अलमदार। इस सिलसिले का आखिरी शेर शायद कि अपनी जगह पे बैठे ना रहे। आया है लबे नहर अलमदार अकेला, उस पार तो लाखों है ये इस पार अकेला। खत खींचा जरी ने तो कहा शिमर लई ने, जाए ना उधर कोई खबरदार अकेला। कितनों को कजा दे गया टापों से कुचल कर, मैदान में अब्बास का रहवार अकेला। बैयत के तलबगार उधर सैकड़ों खंजर, नेज़े पर इधर शाह का इनकार अकेला। एक चांद मदीने का है और नाम है अकबर। है करबला का वो जमींदार अकेला, है करबला का वो जमींदार अकेला। नौजवानों मेरी तरफ, है करबला का वो जमींदार अकेला। अरे छुप जाए, छुप जाए किसी गार में शबीर के कातिल। नहीं अपनी जगह पे बैठे रहे तो घर तक अफसोस होगा। छुप जाए, छुप जाए किसी गार में शबीर के कातिल, मारेगा उन्हें ढूंढ के मुख्तार, मारेगा उन्हें ढूंढ। हैदर हैदर हैदर, छुप जाए किसी गार में शबीर के कातिल, छुप जाए किसी। एक नारा खास है अब्बास है, अब्बास है। एक नारा खास है अब्बास है, हैदर का अलमास है अब्बास है, हैदरी मीरास है अब्बास है, हैदरी मीरास है अब्बास है, अब्बास है। इस तन में जब तक सांस है अब्बास है, अब्बास। इस तन में जब तक सांस है अब्बास है, जब नाज़े अली
फिर काहे काहिरा से अब्बास है अब्बास, वफा की ईसा से अब्बास है, वफा की ईसा से अब्बास है, दुश्मन के दिल की फांस है अब्बास है, दुश्मन के दिल की फांस है अब्बास है अब्बास, हम सबके आस पास है अब्बास है अब्बास, हम सबके आस पास है अब्बास है, नारा हैदरी बिखर के नहीं, मिलकर नारा हैदरी। छुप जाए किसी गार में शब्बीर के कातिल, छुप जाए किसी गार में शब्बीर के कातिल, मारेगा उन्हें ढूंढ के मुख्तार अकेला, मारेगा उन्हें ढूंढ के, फिर मतलब सुनिए, मारेगा उन्हें ढूंढ के मुख्तार अकेला। अली के बाप का एहसान मानने वाले, इतनी कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, सीधी सीधी सी बात है, खानदानी नमक हरामों की बात कर रहा हूँ, समझ जाइए। अली के बाप का एहसान मानने वाले, अली के बाप का एहसान मानने वाले, अली के बाप का एहसान मानने वाले, कहाँ ये बात मुसलमान मानने वाले? अली के बाप का एहसान मानने वाले, करीब आ जाए, अली के बाप का एहसान मानने वाले, अली के बाप का एहसान मानने वाले, कहाँ ये बात मुसलमान मानने वाले? मेरे सरकार दुआएं चाहता हूँ, कहाँ ये बात मुसलमान मानने वाले? ऐसे सुनेंगे, अली के बुग़्ज़ में, अली के, आराम से पढ़ देता हूँ, अली के बुग़्ज़ में, अली के बुग़्ज़ में पागल है एक जमाने से नबी के ज़ौफ़ को हिज़्यान मानने वाले, अली के बुग़्ज़ में पागल है एक जमाने से, अली के बुग़्ज़ में पागल है एक जमाने से, अली के बुग़्ज़ में, चाचा अली के बुग़्ज़ में पागल है एक जमाने से, नबी के ज़ौफ़ को कहीं भाई खास तौर से शेर लगाएगा, अली के बुग़्ज़ में पागल है एक जमाने से नबी के ज़ौफ़ को हिज़्यान मानने वाले। ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं, ज्यादा खुल के ना पढ़वाइए, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं, ये जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले। ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, टाइम मेरा पूरा हो रहा है, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, खास तौर से सुनो, ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, मिसरा पढ़ा था बाराबंकी, अफसोस न कराइएगा, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ गदीर का ऐलान मानने वाले, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ गदीर का ऐलान मानने वाले, बहुत शुक्रिया, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ गदीर का ऐलान मानने वाले, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की, जी सलामत सुने, खास तौर से कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ गदीर का ऐलान मानने वाले, जश्न गाज़ी शेर सुने, आराम से पढ़ता हूँ, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ गदीर का ऐलान मानने वाले, अभी मिले ही कहाँ हैं जरी के नेज़े से, मिसरा पढ़ा था शोरा की पूरी तवज्जो, अभी मिले ही कहाँ हैं जरी के नेज़े से, हवा के जोर को तूफान मानने वाले, अभी मिले ही कहाँ हैं जरी के नेज़े से, आखिरी शेर, 20 मिनट का वक्त था, मैं 21 नहीं होने दूंगा, 19 पे हट जाऊंगा, 21 नहीं होने दूंगा, आखिरी शेर मुलाहिज़ा करो,
खास तौर से सुन, इस सिलसिले का आखिरी शेर रहमत तमाम अली के बाप का पूरी कुव्वत समेट के शेर पहुंचाता हूं, मेरी तरफ देखते रहिएगा। अली के बाप का एहसान मानने वाले लगे कि हाँ जश्न हो रहा है, अली के बाप का एहसान मानने वाले, कहाँ ये बात मुसलमान मानने शायद कि अपनी जगह पे बैठ करके ना सुने। आप जाने गाजी का जश्न शहजादी के चाहने वाले तशरीफ फरमा है, अभी मिले ही कहाँ है जली के नेज़े से हवा के जोर को तूफान मानने वाले, अली के बुग़्ज़ में पागल है एक जमाने से, नबी के जोर को हिज़्यान मानने वाले। ये जितने लोग हैं सिफ़ीन के भगौड़े हैं, अली को छोड़ के कुरान मानने वाले। कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, दरगाह भाई बुजुर्ग भाई, कहाँ नया भाई, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ खदी नौजवानों मेरी तरफ जरा सा जागना, कहाँ सकीफ़ मिजाजी की खाक के पुतले, कहाँ खदीर का ऐलान मानने वाले। अरे नबी की बेटी का, नबी की बेटी का रोज़ा वो क्या बनाएंगे, अपनी जगह पे बैठे रहे मेरा अपना मुकद्दर। नबी की बेटी का रोज़ा वो क्या बनाएंगे, यहूदियों को मुसलमान मान, यहूदियों को मुसलमान। हैदर 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 जिंदाबाद पाइंदाबाद। रेहान आजमी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे, आप हजरात समात फरमा रहे थे। जो रूल है वो सबके लिए रूल रहेगा। हाँ, शुरा की फेरिस्त है, बेताब हल्लौरी साहब, सुहेल मस्तवी साहब भी आ चुके हैं, मगर कामयाब साहब आपको यहाँ होना चाहिए और मुजफ्फर इमाम साहब आपको भी यहीं होना चाहिए। जब आपका नंबर पढ़ने का आएगा तो वहीं चले जाइएगा, मगर अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाए आप लोग। और आप भी भाई, आप भी इधर ही आइए, इधर आइए, इसलिए कि दाएं बाएं देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अरे मुजफ्फर इमाम साहब बहुत अच्छी साहिब व्याजी करते हैं, मैंने देखा यूट्यूब पे, तो सामने आए ना, सामने आए। इसलिए आप भी जब चाहते हैं कि जब मैं पढ़ूं तो मजमा मेरे सामने हो, आप भी आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ, इधर ही आइए। अब जश्न हो रहा है, बहुत शानदार जश्न है। रेहान आजमी साहब ने क्या खूबसूरत शेर पढ़ दिए, खुदा की कसम। असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये कर्बो बला फतह बड़ी प्यार से होगी। असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये कर्बो बला फतह बड़ी प्यार से होगी। तो अब चांद न देखेंगे कभी अहले मदीना, अभी भी अकबर तेरे दीदार। दो शेर और इसके पढ़ना है, दो शेर और पढ़ना है, ऐसे ही जमे रहे, ऐसे ही जमे रहे। देखिए साल भर तक के इस महफिल का एहतमाम में लगे रहते हैं कशिश भाई, हमारे कमर इमाम साहब और इनका पूरा खानवादा और पूरा बाराबंकी साल भर इस महफिल के एहतमाम में लगे रहते हैं। कभी शायरों को फोन करना, कभी और काम करना कि जश्न कामयाब बनाया जाए। तो जश्न जब भी कामयाब हो सकता है, कोई दुनिया का नाज़िम जश्न को कामयाब नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का शायर कोई कामयाब नहीं कर सकता। जश्न को कामयाब करेंगे आप लोग, है ना, जश्न को कामयाब करेंगे आप लोग। पूरे साल की एक तरफ की इन लोगों की मेहनतें हैं और सिर्फ आपकी 3 घंटे अगर ऐसे ही बैठे रहे तो इंशाअल्लाह ताला इनके पूरे साल की मेहनतें कामयाब हो जाएगी। थोड़ा सा ऐसे ही बेदारी का सबूत देते रहे। बस 2 शेर में पढ़ता हूँ कि असगर के तबस्सुम, अख्तर सिरसिवी साहब के शेर, असगर के तबस्सुम तेरी झनकार से होगी, ये कर्बो बला फतह बड़ी प्यार से होगी। अब चांद ना देखेंगे कभी अहले मदीना, अब ईद भी अकबर तेरे दीदार से होगी। सहरा तेरे कातिल को सुकून मिल नहीं सकता, लानत तो हमेशा इसी रफ्तार से होगी। अगर अकीदा हो, अगर अकीदा हो, अगर अकीदा हो तो इंशाअल्लाह ताला नौजवान खड़े होकर इस्तेमाल करें शेर का। सहरा के तेरे कातिल को सुकून मिल नहीं सकता, लानत तो हमेशा इसी रफ्तार से होगी। तो ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, मौला से मुलाकात आज़ादार की हो। ये सोच के लोगों मेरी मैयत को सजाना, मौला से मुलाकात अज़ादार की होगी। मैंने फिर कहा
कि सिर्फ 3 और 3.5 घंटा, या अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं टाइम ओवर हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो मैं और शॉर्ट कर सकता हूँ। तो 20 मिनट है ना, अभी तो और शॉर्ट कर सकता हूँ, मगर आपकी मर्जी पे महफिल चलेगी। जब आप चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल के लिए मुलतवी हो जाएगी। मगर जितनी देर बैठे शायरों का इस्तेमाल करते रहें, 2-3 घंटा कोई बड़ी बात नहीं होती है। इंसान होटलों पर बैठ के काट देता है, इंसान चौराहों पे खड़े होकर काट देता है 2-3। ये तो जश्न अब्बास है, ये तो मुकद्दर की बात है, जिसके माँ ने पाक शीर पिलाया है और बाप ने पाकीज़ा खिलाई है, उसी को ये शरफ हासिल होता है कि जश्न अब्बास में फर्श पर आके बैठे। बहुत बड़ी इबादत की बात है, मगर 3-3.5 घंटे की रिक्वेस्ट है आप हज़रात से कि इतना मेरा साथ दे दे। इसलिए अभी सुहेल बस्तवी साहब आ चुके हैं, बेताब हल्दौरी साहब आ रहे हैं, और जनाब चंदन फैजाबादी साहब रास्ते में हैं, डॉक्टर नायाब हल्दौरी साहब यहाँ मौजूद हैं, मेरे मनक़बत जनाब सावन हल्दौरी साहब यहाँ मौजूद हैं, जनाब मुनव्वर जलालपुरी साहब मौजूद हैं। मगर यहाँ से एक मकामी शायर, एक बैरूनी शायर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आमिर बाराबंकवी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है, मगर बैठे रहें, इसके बाद फिर मैं एक शायर आपके दरमियान में बैरूनी पेश करूँ। इत्तेफाक से इस अंजुमन के इब्तिदाई दौर में मैं साहिब याद रहा हूँ, जो अंजुमन ये है अंजुमन गुलजार अब्बासिया, और मैं कशीफ साहब को बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मैं याद किया। आज आपके रूबरू हूँ, लेकिन अच्छा एक सवाल अलम दोष पर जो उठाए हुए हैं, अलम दोष पर जो उठाए हुए हैं, चरागे वफा वो जलाए हुए हैं, चरागे वफा वो जलाए हुए हैं। वफा के तराने जो गाती है दुनिया, वफा के तराने जो गाती है दुनिया, वो अब्बास के गुनगुनाए हुए हैं, अब्बास के गुनगुनाए हुए। वफा के तराने जो गाती है दुनिया, वो अब्बास के गुनगुनाए हुए हैं। नापत कोई आएगी उसके घर तक, नापत कोई आएगी उसके घर तक, जो परचम जरी का सजाए हुए हैं, जो परचम जरी का सजाए हुए। नाफत कोई आएगी उसके घर तक, नाफत कोई आएगी उसके घर तक, जो परचम जरी का सजाए हुए हैं। अजमल साहब शेर, खुशी में अलमदार करबो बला की, खुशी में अलमदार करबो बला की, लबों तक मेरे जाम आए हुए हैं, लबों तक मेरे जाम आए हुए हैं। चले आइए करबला से मौला, चले आइए करबला से मौला, गुलाम अपनी पलकें बुझाए हुए हैं, गुलाम अपनी पलकें हुए हैं। वक्त कम मिला है, मगर ये जब 10 मरना नहीं पढ़ूंगा
तो हम तो इसको चाहें तो 20 मिनट पढ़ सकते हैं लेकिन एक सलवात भेजिए। क्योंकि एक मिसरे को 10 मरता कहें तो हो जाएगा 20 मिनट। एक और सलवात भेजिए आप। मकामी लोगों के लिए 4 मिनट है। नजर आ रहे हैं जो ज़ेरे अलम वो नजर आ रहे हैं जो ज़ेरे अलम वो वफाओं की खुशबू लगाए हुए हैं, वफाओं की खुशबू लगाए हुए हैं। वो रोजा है अब्बास गाजी का काबा, वो रोजा है अब्बास गाजी का काबा, मलक भी जहां सर हुए मलक भी जहां, वो रोजा है अब्बास गाजी का काबा, मलक भी जहां सर झुकाए हुए हैं। अब ये खास तौर से कर लीजिए, निभाते हैं भाई का भाई से रिश्ता, निभाते हैं भाई का भाई से रिश्ता, जो गाजी को दिल में बसाए हुए जो गाजी को दिल में बसाए हुए हैं। बड़ी खास तौर सुनिए, जरी अलकमा को पदर की तरह से, जरी अलकमा को पदर की तरह से, हथेली पे अपने उठाए हुए हैं, हथेली पे अपने। जरी अलकमा को पदर की तरह से, हथेली पे अपने उठाए हुए। वो क्या खास तौर से वो क्या पार अब्बास का खत करेंगे, वो क्या पार अब्बास का खत करेंगे, जो लश्कर अजल के सताए हुए हैं, जो लश्कर अजल के सताए। वो क्या पार अब्बास का खत करेंगे, जो लश्कर अजल के सताए हुए हैं, जो लश्कर अजल के। वो महफूज मशकीज़ हैं जो अलम में, वो महफूज मशकीज़ हैं जो अलम में, ज़मानत चचा की जो पाए जो पाए। वो महफूज मशकीज़ हैं जो अलम में, ज़मानत चचा की वो पाए हुए हैं। और 2 शेर इसको मक्ता। असद आ रहा है वो हट जाए आदा, असद आ रहा है वो हट जाए आदा, कदम नहर पर जो जमाए, कदम नहर पर जो जमाए हुए हैं। और ये सबके लिए शेर है के लिए। सलामत रहे बस सलामत रहे वो, सलामत रहे बस सलामत रहे वो, जो गाजी की महफिल सजा, जो गाजी की महफिल सजाए हुए। यही वो जुलूस वफा है जो आमिर, यही वो जुलूस वफा है जो आमिर,
हमें टूटने से बचाए। जनाब आमिर बाराबंकी साहब सीनियर साहिब-ए-आज़ अंजुमन गुंजा मज़लूमिया आपके रूबरू थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ फिर एक मरतबा ऐलान समाअत फरमा लें। बैरूनी शुअरा के लिए 20 मिनट का वक्त है और मकामी शुअरा के लिए 4 मिनट का वक्त है। 4.5 मिनट तक पढ़ सकते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब आमिर बाराबंकी साहब पढ़ चुके हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब अयाज आलमपुरी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवार से इस्तकबाल करें। जनाब अयाज आलमपुरी साहब इनके फौरनी बाद एक बैरूनी शायर में पेश करूं। हजरात पर्चियों की जानिब से कुरानदाजी होगी महफिल के आखिरी में और तमाम मोमिन को इनाम तकसीम होगा। जो कुरानदाजी के जरिए से जिसका नाम आएगा उसको कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। पर्चियों के जरिए से जो पर्चियां नहीं लेंगे अभी थोड़ी देर के बाद पर्चियां तकसीम होगी। मोमिन से गुजारिश अपनी पर्चियां ले लें। कि हैबते अब्बास साहिल के हर एक जर्रे में है। हैबते अब्बास साहिल के हर एक जर्रे में है। सो रहा है शेर लेकिन अलकमा कब्जे में है। सो रहा है शेर लेकिन अलकमा कब्जे में है। और कर चुके तस्लीम मौला तुम अली को सबके सब। कर चुके तस्लीम मौला तुम अली को सबके सब। फिर बताओ क्या खराबी या अली कहने में है। कर चुके तस्लीम मौला तुम अली को सबके सब। फिर बताओ क्या खराबी या अली कहने में है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब दो तीन शेर फरमा ले कि दोनों जहां का मेरा नबी आफताब है। दोनों जहां का मेरा नबी आफताब है। जो आज आने वाला है वो महताब है। हर शय ये कह रही है कि बस लाजवाब है। इस्मत के गुलसिता में खिला जो गुलाब है। मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका बाब है। किस्सा नहीं ये कौले रिसालत माब है। मैं इल्म का शहर हूँ अली उसका बाब है। किस्सा नहीं ये कौले रिसालत माब है। इलियासो ईसा खिज्र पढ़े पेशवाई को। कुदरत भी मुस्कुरा के कहे लाजवाब है। कुदरत भी इलियासो ईसा खिज्र बढ़े पेशवाई को। कुदरत भी मुस्कुरा के कहे लाजवाब है। और ले जाएगी आयात ये कौसर के हौज तक। हुब्बे अली मेरे लिए ऐसी शराब है। जनाब अयाज बाराबंकी साहब आपके रूबरू थे। जैसा मैंने आपके वादा किया था कि मैं इस वक्त एक बैरूनी शायर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मगर ये बिखरे हुए लोग अगर कुछ लोग बाहर से अंदर आ जाते हैं तो कोई मकामी शायर पढ़ के जाता है। मकामी शायर भी मेहनत करता है ऐसी बात नहीं है। मकामी शुअरा और ज़्यादा मेहनत करते हैं बैरूनी शुअरा के बनिस्बत। मगर बैरूनी शुअरा कोई तमन्ना लेके आते हैं और वो तमन्ना ये होती है कि मैं फला शहर में जा रहा हूँ, फला इलाके में जा रहा हूँ। शबाब भाई यही बात है ना, फला इलाके में जा रहा हूँ तो कुछ लोग मुझे सुनने के लिए आएंगे। देखिए मोहिब मौलानवी साहब तशरीफ ले आए हैं। ये आपका इलाका कुछ लोगों को आप लेके आते तो मुझे और खुशी होती। मगर आपके पीछे कुछ लोग पैरवी करते हुए आ रहे हैं। जो बाहर चाय पी रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम जल्दी से अंदर आ जाएं। इस वक्त मैं एक बैरूनी शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ और मुसलसल हमारी फहरिस्त में एक और नाम बहुत खूबसूरत सा नाम जो पहली मरतबा बाराबंकी की सरजमीन पर तशरीफ
लाया है। अजमेर तारागढ़ की सरजमीन से जनाब एडवोकेट जुल्करनैन अजमेरी साहब तशरीफ लाए हैं। इंशाअल्लाह ताला उनको भी आप समाअत फरमाएंगे। मगर मेरी निगाहें मुसलसल चाय के स्टॉल की तरफ हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो वहाँ खड़े हुए हैं। अगर वो इधर आ जाते तो बात बन जाती, मगर कोई बात नहीं है। इतने लोग बस सुनने के लिए तैयार हो जाएं। थोड़ा सा मैं गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाएं। इतने लोग अगर सुनने के लिए तैयार हो जाएं तो थोड़ी मेहनत की जाए और किसी शायर को आवाज दी जाए। इतने लोग भी बहुत काफी हैं सुनने के लिए, मगर अगर आप लोग ने मन बना लिया कि हाँ हम सुनेंगे। शबाब भाई, लखनऊ शीश महल मिसरा हुआ कि मातमे सैयदे अबरार किया जाता है। ये मिसरा था लखनऊ में, क्या मातमे सैयदे अबरार किया जाता है। अब उसके मैं कुछ शेर पढ़ता हूं। ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है। आधे लोग बोले भाई अजमल भाई, हाँ ऊपर आ जाए, हमें सुन लिया। मिसरा क्या था? मातमे सैयदे अबरार किया जाता है। शेर पढ़ूं। ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है। मेहनत 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 का फल नहीं मिल रहा, मेहनत का फल नहीं मिल रहा। ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है, और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है। अरे जब तबस्सुम का पलटवार किया जाता है, तीर की जीत को भी हार किया जाता। देखिए मेरी भी एक फितरत है, दो लोग रहेंगे तब भी ऐसी निजामत करूंगा, है ना? ये नहीं कि काम चलाओ निजामत की चल, दो लोग रहो तब भी इतनी मेहनत करो। चाहे 2 लोग हो, चाहे 10 लोग हो, चाहे 100 लोग हो, चाहे 1000 लोग, मेहनत वही होगी। सुनिए, ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है, कमर इमाम भाई शेर सुने और ये मजमे को देखे। इतना मुख्तसर मजमा, इतना मोतबर था। ये अगर पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए तो ले आना, दिखा देना। इतना मुख्तसर मजमा, इतना मोतबर था, इतना मोतबर था। नया भाई, ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है। डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब ने कहा, अरे बीच में एक शबे आशूर का दरिया रखकर हुर को उस पार से इस पार किया जाता। अब 2 शेर और पढ़ना है, बात खत्म हो रही है। 2 शेर और, बीच में एक शबे आशूर का दरिया रखकर, सामने शेर सुनाता हूँ, बड़ा शेर। बीच में एक शबे आशूर का दरिया रखकर हुर को उस पार से, हुर को उस पार से, हुर को उस पार से इस पार किया जाता है। अरे बाद में आते हैं अब्बास सुए नहरे फुरात, मौत को पहले खबरदार किया जाता। हैदर हैदर हैदर, मजमा का मैं तो निजामत छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। मजमा का मैं तो निजामत छोड़ दूं, ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है। एक शेर बिलाल काज़मी साहब का सुनिए, ये 3 रात का मटेरियल है जो सुना रहा हूँ 3 मिनट में। ये जो मातम सरे बाजार किया, 3 रात जागना पड़ता है इतना शेर सुनने के लिए। ये जो मातम सरे बाजार किया जाता है और हुर है जिन्हें बेदार किया जाता है। बिलाल काज़मी साहब ने कहा, अरे इसलिए तुम गमे सरवर में नहीं रो सकते, अश्क को खून से तैयार किया जाता। इसलिए तुम गमे सरवर में नहीं रो सकते, इसलिए तुम गमे सरवर में नहीं रो सकते। अब इससे बड़ा शेर, अब इससे बड़ा शेर, इतना मजमा नौजवानों थोड़ा सा बेदार। इसलिए तुम गमे सरवर में नहीं
नहीं रो सकते। अश्क को खून से तैयार किया जाता है। अरे उसने नैज़े को किया देख तो हैरत क्या है, शाखे गुल को यहाँ तलवार किया जाता। शबाब भाई मेरी बात की गवाही देंगे कि ये शेर कम से कम 18 से 20 मरतबा पढ़वाया गया। जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ कम से कम 18 से 20 मरतबा लखनऊ की सरजमीन पढ़वाया गया। जबान देखे भाई भाई है ना। अब 3 रात मुकम्मल होने वाले, आखिरी शब है, एक अंजुमन आती है, नाम है आखिरी अंजुमन। सुने खुदा की कसम, शेर अगर पहुंचा लेंगे, हाँ नहीं तो पूरा पढ़ नहीं सकता, याद भी नहीं होगा पूरा। नहीं कहो सुनाओ। बाद में आते हैं अब्बास मौत को पहले खबरदार किया जाता है। सुरूर लखनवी साहब ने कहा कशिश भाई ये मोहब्बत, ये मोहब्बत, ये मोहब्बत जब तक सबके हाथ ना उठ जाए, मिसरा यही दोहराऊंगा, ये मोहब्बत किसी महबूब की किस्मत में नहीं, करबला जितना तुझे प्यार किया जाना। ये मोहब्बत किसी महबूब की किस्मत में नहीं, करबला जितना तुझे प्यार किया जाता है। मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, निजामत ऐसा ही होगी। हाँ नायाब भाई ने थोड़ा सा एडवाइस दिया है, उस पर इंशाल्लाह ताला अमल करूंगा। इसलिए बड़े निजामत सुनते नहीं हैं बल्कि निजामत का सबक सुनते हैं। ये निजामत का सबक इस वक्त सुन रहे हैं नायाब भाई कि कैसे चल रही निजामत, थोड़ी सी एडवाइस दी तो उस पर इंशाल्लाह ताला अमल होगा। मगर गुजारिश यही है, फिर नौजवानों से एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर किसी जरूरत के तहत आप गए हैं तो बेशक मगर फौरन वापस आ जाया करें। इसलिए कि जहाँ बहुत बड़ा मजमा होता है वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जहाँ मुख्तसर से लोग होते हैं, बिलखुसूस अंजुमन मुगलजा अब्बासिया के मेंबरान, अगर वो कहीं पर भी हैं तो बराए करम वो जश्न में शिरकत करें। आपका मेहमान शायर आपके रूबरू यानी मुनव्वर जलालपुरी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ ला रहे हैं, तरन्नुम का एक बेहतरीन शायर, आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोग बाहर हैं, मुझे यकीन है कि वो रफ्ता रफ्ता चूँकि मुझसे बहुत बेहतर पढ़ने वाले शुरा इकराम मौजूद हैं, मैं मोमिनीन को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई देखिए एक मतलब चंद अशार में सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में खूबसूरत नेक सीरत खुश अदा अब्बास है, खूबसूरत नेक सीरत खुश अदा अब्बास है, खूबसूरत नेक सीरत खुश अदा अब्बास है, जिसमें है अक्से अली वो आईना अब्बास है, जिसमें है अक्से अली वो आईना अब्बास है। अब शेर मुलाहिजा फरमाएं, मुसलसल में मदे हाजिर में शेर नजर समाज फरमाएं।
शेर हुआ है, जिसमें है अक्से अली वो आईना अब्बास है, देख कर अब्बास को डर है नुसैरी कह न दे, देख कर अब्बास को डर है नुसैरी कह न दे, है अली पगला खुदा और दूसरा अब्बास है अली पगला खुदा और दूसरा अब्बास है। शेर हुआ समात फरमाए तारीखी शेर, एक पर शाहिद है खंदक, एक पर नहरे फुरात, एक पर शाहिद है खंदक, एक पर नहरे फुरात, कुल्ले ईमान है अली कुल्ले वफा अब्बास है, कुल्ले ईमान है अली कुल्ले वफा अब्बास है, कुल्ले ईमान है अली कुल्ले वफा अब्बास है। अब शेर मौला अब्बास और मौला हुसैन, शेर मुलाजा फरमाए, खाने शबीर से मिलता है जन्नत का पता, खाने शबीर से मिलता है जन्नत का पता, खाने शबीर से मिलता है जन्नत का पता, ओ खाने शबीर का पूरा पता अब्बास है, खाने शबीर का पूरा पता अब्बास है। अब ये हासिल कलाम शेर मैं चाहता हूँ जो लोग इधर उधर है जरा जरा सा सिमट के आ जाएं। मैं एक मनकबत और पेश करूंगा, उससे पहले मैं ये शेर साहब देखिए जाहिद भाई शेर हुआ है, पास बासाका अलम बरदार शैदाए हुसैन, पास बासाका अलम बरदार शैदा ए हुसैन, नाज ये ज़ैनब को गए भाई मेरा अब्बास गए, ये ज़ैनब को गए भाई मेरा अब्बास गए, ज़ैनब को है भाई मेरा अब्बास है। एक आखिरी शेर समात फरमाए क्या है मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ना भाई शेर नजर कर रहा हूँ, समात फरमाए किबला मेरा साहब, ऐ वफा मालूम है तुझको तेरी तारीख में, ऐ वफा मालूम है तुझको तेरी तारीख में, ऐ वफा मालूम है तुझको तेरी तारीख में, इब्तिदा कोई हो लेकिन इंतहा अब्बास है, इब्तिदा कोई हो लेकिन इंतहा अब्बास है। सलवात
आप हजरात। हमारे छोटे भाई कामयाब, उनका मुसलसल हुक्म है इस मतले और दो शेर के लिए मैं करता हूँ समात फरमाए। अंजुमन आपकी अंजुमन है ना, तो ये लोग भी जरा सा मेरे साथ जुड़ जाएं भाई। समात फरमाए हुक्म में, तामिल हुक्म में। जश्न अब्बास मनाने की कसम खाई है। जरा जरा सा लगी मजमा मुख्तसर जरूर है मगर आप बोलते रहे। जश्न अब्बास मनाने की कसम खाई है, बिगड़े हालात बनाने की कसम खाई है, बिगड़े हालात बनाने की कसम खाई है। मिट नहीं सकते जमाने से आजादार हुसैन, इनको ज़गराने बचाने की कसम खाई है। हैदर 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 यार, जश्न अब्बास मनाने कसम खाई है, बिगड़े हालात बनाने की कसम खाई है। मिट नहीं सकते जमाने से आजादार हुसैन, इनको ज़हराने कसम खाई है। अब शेर नज़र करता हूँ, समात फरमाए। टूट जाता है फकत देख के जिल जिल का निकाह, ये अलम उनको दिखाने की कसम खाई है, ये अलम उनको दिखाने कसम, ये अलम उनको दिखाने की खाई है। एक शेर जश्न अब्बास अलैहिस्सलाम है और भाई कमर इमाम साहब जरूर सुन रहे हैं, तमाम मजमा इस वक्त सुन रहे हैं। मैं एक शेर अपनी कौम के उस मुजाहिद के नाम जब 2016 में मैंने नजफ में पढ़ा था, अब वो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, समात फरमाए। सारी दुनिया से ऐलाने हसन शेर सुनिए आखिरी। खुद को झूले से गिरा कर अली असगर ने कहा, खुद को झूले से गिरा कर अली असगर ने कहा, मैंने मैदान में जाने की कसम खाई है। हुरमुला सुन मेरे दादा भी अली, मैं भी अली, तेरी औकात बताने की कसम खाई है, तेरी औकात बताने की कसम खाई है, तेरी औकात बताने
कसम खाई है। एक सलवात पढ़े आप हज़रात। मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, मैं एक मतलब चंद अशआर और 10 मिनट हुआ है, बस ठीक है। हाँ, अब एक मतलब बोलना चाहता हूँ, इसमें एक आखिरी शेर के लिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए समाअत फरमाए। फिर सामने मुख्तार के वो आए हुए हैं, फिर सामने मुख्तार के वो आए हुए हैं, सज्जाद के खुतबे से जो घबराए हुए हैं, सज्जाद के खुतबे से जो घबराए हुए हैं। सुन नहीं रहे भैया, भाग दौड़ बहुत कर रहे हो। हाँ, जिम्मेदार लोग। अब शेर सुनिए जरा सी आमाद की, शेर बहुत कीमती। किस मुंह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, किस मुंह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं, किस मुंह से वो कहते हैं कि बिदअत है तबर्रुक, जो लोग खदीजा का नमक खाए हुए हैं। अब ये अकीदत का शेर अंजमन गुंजे अब्बासिया और तमाम लोग आलमपुर से भी आए हुए, बैठे हुए शोराए कराम की दुआएं। शेर किबला बहुत कीमती है नायब भाई। हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो, हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो, हम मौत से डरते नहीं, दुनिया को बता दो। शाबीर के रोजे से कफन लाए हुए हैं, शबीर के रोजे से कफन लाए हुए हैं। आपको 10 बार अभी और आना है, एक ही हुआ है। आप शेर सुनिए। भाई के छोटे भाई हमारे बैठे हुए हैं, शेर बहुत कीमती है। कशीफ साहब कसम खुदा की शेर कहते थे लई भाग चलो जान बचा कर, कहते थे लई भाग चलो जान बचा कर, दरिया पे सकीना के चचा हुए, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए हैं, कहते थे लई भाग चलो जान बचा कर, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए हैं। बस
आखिर में एक मजदूर के लिए हुक्म है, सिलसिले को जोड़ते हुए समाअत फरमाएं। एक शेर आज के बानियान के लिए पेश करने के लिए भाई रेहान साहब, मतलब झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं, झूठों को जो सिद्दीक बनाने में लगे हैं, वो रेत की दीवारें उठाने में लगे हैं, वो रेत की दीवार उठाने में लगे हैं। शेर सुनिए, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, शेर इतना आसान है, ये भी समझ जाएंगे। अल्लाह ने अलकाब अली को दिए, लेकिन अल्लाह ने अलकाब अली को दिए, लेकिन कुछ लोग फकत नाम चुराने में लगे हैं, कुछ लोग फकत नाम चुराने में लगे। अब ये शेर मैं भाई रेहान साहब की दुआओं के साथ नज़र कर रहा हूँ, चूंकि ये उनका पसंदीदा मौजू है और सभी शायरों का होना भी चाहिए जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। शेर सुनिए, शेर वाकई अपने आप में बहुत बड़ा है। हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत, हम उन पे भी दिन रात किया करते हैं लानत, जो कातिले ज़हरा को बचाने में लगे हैं, जो कातिले ज़हरा को बचाने में लगे हैं। बाराबंकी में भी हमारे एक रिश्तेदार बैठे हुए हैं, ये बैठे हैं। अब एक शेर मैं और पढ़ के उसके बाद आखिरी शेर इन्हीं के हवाले करके अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि जश्न मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का है, पूरी कमेटी की तरफ से ये जश्न होगा। पहले ये मदा का शेर सुनिए। उस घर की बुलंदी को भला कौन बताए, उस घर की बुलंदी को भला कौन बताए, जिब्रील जगह झूला झुलाने में लगे हैं, जिब्रील जगह झूला झुलाने में लगे हैं। पूरी अंजुमन अगर इस पे ना बोली तो मुझे भाई कामयाब शेर सुनो। ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत ही नहीं है, ऐ मौत ठहर जा, अभी फुर्सत ही नहीं है, हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे फुर्सत ही नहीं है, ऐ मौत ठहर जा भी
फुर्सत ही नहीं है। हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे गए, हम लोग अभी जश्न मनाने में लगे हैं। अब मक्ते का शेर, इतरत से न कुरान जुदा होगा मुनव्वर, इतरत से न कुरान जुदा होगा मुनव्वर, इतरत से न कुरान जुदा होगा मुनव्वर। शहनेज़े पे कुरान सुनाने में लगे गए, शहनेज़े पे कुरान सुनाने में लगे गए। भाई का वो सलाम के लिए वो आखिरी शेर पढ़ देता हूँ, समात फरमाए। कहते थे लई भाग चलो जान बचा कर, कहते थे लई भाग चलो जान बचा कर, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए गए, दरिया पे सकीना के चचा आए। मुनव्वर जलालपुरी साहब कहते थे नहीं भाग चलो जान बचाकर, दरिया पे सकीना के चचा आए हुए। एक मकामी शायर पेश करूंगा और अपनी फहरिस्त में सबसे दूर दराज सफर तय करके आया हुआ नौजवान शायर जो तारागढ़ अजमेर की सरजमीन से तशरीफ लाए। एक मकामी शायर के बाद उनको मैं पेश करूंगा, लिहाजा जो अंजुमन के जिम्मेदारान बाहर हैं उनसे तो गुजारिश है कि वो लोग अंदर तशरीफ ले आए। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ जनाब बाकर नकवी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब बाकर नकवी साहब। मगर जो अंजुमन के जिम्मेदार बाहर हैं तो उनसे गुजारिश है कि बराए करम अंदर तशरीफ ले आए। इनके फौरन ही बाद मैं तारागढ़ की सरजमीन से जनाब जुल्करनैन अजमेरी साहब जो पहली मर्तबा आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाए उनको आवाज दूंगा। कि मिली है जो अली को शादमानी देखते जाओ, मिली है जो अली को शादमानी देखते जाओ, जो पाई दीन ने वो कामरानी देखते जाओ, जो पाई दीन ने वो कामरानी देखते जाओ। बताती थी उसे औकात एक प्यासे ने पानी की, बताती थी उसे औकात एक प्यासे ने पानी की, जिसे फेंका था गाजी ने वो पानी देखते जाओ, जिसे फेंका था गाजी ने वो पानी देखते जाओ, जिसे फेंका था गाजी ने वो पानी देखते जाओ। जिसे फेंका था गाजी ने वो पानी देखते जाओ। और है यूसुफ की नजर माहे बनी हाशिम के चेहरे पर, देखिएगा है यूसुफ की नजर माहे बनी हाशिम के चेहरे पर, कहा किसने कि यूसुफ की जवानी देखते जाओ, कहा किसने कि यूसुफ की जवानी देखते जाओ। है यूसुफ की नजर माहे बनी हाशिम के चेहरे पर, कहा किसने कि यूसुफ की जवानी देखते जाओ। और ये बिछड़ा हुआ था कि लबे दरिया वफा की तर्जुमानी देखते जाओ। फरमाए
कि कहा किसने कि यूसुफ की जवानी देखते जाओ, यूसुफ कह दो अपने भाइयों से आके करबल में, यूसुफ कह दो अपने भाइयों से आके करबल में लबे दरिया वफा की तर्जुमानी देखते जाओ, लबे दरिया वफा की तर्जुमानी देखते जाओ। यूसुफ कह दो अपने भाइयों से आके करबल में लबे दरिया वफा की तर्जुमानी देखते जाओ। अगर तुम चाहते हो करम गाजी का बस तुम पर, शेर देखिएगा कि अगर तुम चाहते हो करम गाजी का बस तुम पर, तो तुम अब्बास गाजी की निशानी देखते जाओ, तो तुम अब्बास गाजी की निशानी देखते जाओ। और मक्ता भी समाअत फरमा ले कि तुम्हें बाकर शरफ अब्बास की मिदहत ने बख्शा है, तुम्हें बाकर शरफ अब्बास की मिदहत ने बख्शा है कि तुम अशार में खुद हक बयानी देखते जाओ, कि तुम अशार में खुद हक बयानी देखते जाओ, कि तुम अशार में खुद हक बयानी देखते जाओ। एक सलवात आप लोग मिलजुल के और पढ़ते हैं। कि भाई यहाँ से मतलब 2-3 शेर देखिएगा। कि मदह गाज़ी की कसीदे का मेरे उन्वान है, मदह गाज़ी की कसीदे का मेरे उन्वान है। होगा मक़बूल इलाही ये मेरा ईमान है, होगा मक़बूल इलाही ये मेरा ईमान है। और शबाब भाई शेर देखिए, होगा मक़बूल इलाही ये मेरा ईमान है। और शेर बतौर खास कि जश्न गाज़ी में जो आए ध्यान रखना मोमिनो, जश्न गाज़ी में जो आए ध्यान रखना मोमिनो। असल में वो हैदर करार का मेहमान है, करार का मेहमान है। असल में वो है दरे करार का मेहमान है। और शेर ये भी चचा देखिएगा कि बावफा को देख कर जे यजीदी ने कहा, बता चाहूंगा कि बावफा को देख कर फौज यजीदी ने कहा, अरे भागो भागो हैदर करार की, वाह
हजरत इस वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक बैरूनी शायर पेश करूंगा, मगर एक छोटा सा बच्चा है, बहुत छोटा वो बच्चा, मगर बच्चा छोटा है मगर उसके हौसले बड़े हैं इस वक्त। और हर शायर की तमन्ना होती है कि परवरदिगार मेरी नस्ल में शायरी को कायम रखना। तो ये तमन्ना जनाब सावन हल्लौरी साहब की परवरदिगार की बारगाह में मकबूल हुई और इंशाअल्लाह हल्लौरी साहब की शक्ल में ये बच्चा इंशाअल्लाह ताला आगे चलकर अपने वालिदैन का नाम रोशन करेगा। आप हज़रात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब इंशाअल्लाह। अबू तालिब की तरह लिम की तरह काबा भी तुम्हारा तालिब है, उन्नतन की तरह है शब तू पूरी तरह से गालिब है, तू पूरी तरह से गालिब है। मुर्दा जिंदा होके जय, मुर्दा जिंदा होके जय, सूझ भागा भागा जो तेरा इशारा। जिंदाबाद पाइंदाबाद। बहुत दूर दराज का सफर तय करके एक बैरूनी शायर और मेहमान शायर पहली मर्तबा आपके तैयारे मोहब्बत में यहाँ तक के तशरीफ लाए हैं। तो लिहाजा सिर्फ चंद 1-1.5 फीट की दूरी है, बस इतना तय करेंगे, इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए कि भाई अंजुमन की जानिब से जो खाने पीने का इंतज़ाम किया गया है वो ग़िज़ाए जिस्म का इंतज़ाम है और ग़िज़ाए रूह का इंतज़ाम यहाँ पर है ना। तो लिहाजा आप हजरात वहाँ से फारिग होकर यहाँ आ जाया करें, इसलिए कि आपके मेहमान शोरा हैं। और सर्दी को देखते हुए जो 25 साल जश्न होगा वो अप्रैल में होगा। अभी कशिश साहब ने मेरे कान में बताया कि आइंदा साल जो जश्न होगा ग्रांड जश्न 25 साल, तो वो अप्रैल में किया जाएगा कि मोमिनीन बाकायदा शिरकत कर लें, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल एक बैरूनी शायर को आवाज दे रहा हूँ, भाईजान थोड़ी देर के लिए यहीं आ जाइए, इसलिए कि बड़ी मेहनतें हैं उनकी। मैं एक मिसरे के कुछ शेर सुनाता हूँ। मिसरा हुआ था कि मुतमईन है कल्ब मुझको बख्शवाएंगे हुसैन। मिसरा क्या था? थोड़ा सा थोड़ी सी मैंने कभी नहीं सोचा कि कितने कम लोग हैं, कितने ज्यादा लोग हैं। मैंने सोचा कि मेहनत की जाए, तो महफिल बाकायदा हो रही है, बड़ी अच्छी हो रही है। मिसरा क्या था? मुतमईन है कल्ब। कशिश भाई ये बहुत बड़ा मुसालमा हुआ था मेरठ की सरजमीन पर, उसमें मिसरा हुआ था मुतमईन है कल्ब मुझको बख्शवाएंगे हुसैन। इससे बड़ा मुसालमा हमने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखा, हो सकता है तमाम लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी हो। बहुत अजीम शख्सियत है, उसका मतलब पड़ता
करता हूँ नसीर बाकरी साहब का कि जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन, जिंदगी दीने मोहम्मद की बचाएंगे हुसैन। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर बाराबंकी ऐसे ही इस्तेमाल करे तो ऐसे ही सुन ले। जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन, जिंदगी दीने मोहम्मद की बढ़ाएंगे हुसैन। प्रोफेसर नासिर नकवी साहब ने कहा, अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत हुर से गाजी बन गया, तेरे इस्तेमाल को खुद चल के जाएंगे हुसैन। अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत हुर से गाजी बन गया, तेरे इस्तेमाल को खुद चल के जाएंगे हुसैन। मौलाना रजा साहब ने शेर कहा कि करबला के वास्ते काबे को रोका जाएगा, आके जब पुश्ते नबी पर बैठ जाएंगे हुसैन। खुदा की कसम ऐसा मुसलमान हमने देखा नहीं। प्रोफेसर हसन साहब और डॉक्टर हसीम मुजफ्फर साहब हो, आगा सरोज हैदराबादी हो, मोहम्मद अली वफा हैदराबादी हो, ये सब एक ही मुसालमे में मौजूद थे। और वो उसके चुनिंदा शेर सुना रहा हूं भाई, सावन भाई इधर सुनिए। हाँ इधर भी नजर रहती है। जब शहादत को गले अपने लगाएंगे हुसैन, जिंदगी दीने मोहम्मद की बचाएंगे हुसैन। अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत हुर से गाजी बन गया। कामयाब शेर सुनो, अल्लाह अल्लाह तेरी किस्मत हुर से गाजी बन गया, तेरे इस्तेमाल को खुद चल के जाएंगे हुसैन। मौलाना नसीर आजमी साहब ने कहा, अरे हज को उम्रे से बदल कर जाएंगे करबला, सारी दुनिया हज करेगी, हज बचाएंगे हुसैन। हज को उम्रे से बदल कर जाएंगे करबला, सारी दुनिया हज करेगी, हज बचाएंगे हुसैन। नसीर मुजफ्फर साहब ने कहा, अरे क्या लिखेगा करबला का फैसला कोई यजीद, फैसला खुद नो के नेज़ा पर सुनाएंगे। एक शेर नया दान मिले या न मिले, बुजुर्गों की दुआ मिल जाए, शेर पहुंचा। एक शेर दान मिले न मिले कोई समझता नहीं, शेर बस शेर पहुंच जाए। ये मोहम्मद अली वफा हैदराबादी वहां से लाएगी सकीना शाम के जिंदान तक। भाई शेर पढ़ रहा हूं, दाद की तमन्ना नहीं, शेर इसीलिए मैं माइक से हट गया। शेर वहां से लाएगी सकीना शाम के जिंदान तक, तशनगी को जिस जगह पर छोड़ देंगे हुसैन। अरे क्या करूं, कहां जाऊं सुनाने से, कहां जाऊं। वहां से लाएगी सकीना शाम के जिंदान तक, तशनगी को जिस जगह पर छोड़ जाएंगे हुसैन। आगा सरोज हैदराबादी साहब ने कहा कि रोएगा रोएगा जब जुल्म रन में बेसबा से हार कर अपने असगर के लबों से मुस्कुराएंगे हुसैन। आखिरी के दो शेर। अपने असगर के लबों से दो शेर, एक शेर मारूफ सिलसिले साहब का और एक शेर अली जनाब मौलाना रईस जाफरी साहब का शेर। रोएगा जब जुल्म में बेसबा से हार, अपने असगर के लबों से, ज़बान देखिएगा, मुस्कुराएंगे हुसैन। इसको कहते हैं सखावत। ऐसे होते हैं, नहीं बोले तो अफसोस रहेगा, अफसोस रहेगा। इसको कहते हैं सखावत। ऐसे होते हैं सखी, खून के प्यासों को भी पानी पिलाएंगे हुसैन। इसको कहते हैं सखावत। ऐसे होते हैं सखी, हैरत हुई जो चुप रह गए नौजवान। ऐसे होते हैं सखी, खून के प्यासों को भी पानी पिलाएंगे हुसैन। तो करबला में देख की इज्जत पर जब आएगी नमाज, देख लेना सर नहीं सजदा बचाएंगे। कलेजे की ताकत सर्फ कर रहा हूं शेर। अगर थोड़ी सी आपकी आवाज निकल जाए तो मेहनत कामयाब। आखिरी शेर पर रोएगा जब जुल्म में बेसब। अफसोस रहती जब गर्दन हिलाते 2 इंच की जबान नहीं निकलती।
ये गर्दन हिलाने को हमारी शायरी की जबान में मिस कॉल बोला जाता है। तो मिस कॉल न मारे बल्कि मुंह से बोल दे, वहां अगर शेर पहुंचे वहां से लाएगी सकीना शाम के जिंदान तक, तशनगी को जिस जगह पर छोड़ जाएंगे हुसैन। ऐसे होते हैं सखावत, इसको कहते हैं सखावत, ऐसे होते हैं सखी, खून के प्यासों को भी पानी पिलाएंगे हुसैन। करबला में 1 दिसंबर जब आएगी नमाज, देख लेना पूरा मजमा खड़े होकर दादे दादी कहे, देख लेना सर नहीं सजदा बचाएंगे हुसैन। तो लाश अकबर की उठाकर शुक्र का सजदा किया, जुल्म समझा था कि हिम्मत हार जाएंगे। लाश अकबर की उठाकर शुक्र का सजदा किया, जुल्म समझा था कि हिम्मत हार जाएंगे हुसैन। आइए हजरात, बहरहाल आप लोग जुड़ के सुन रहे हैं, ये तो थोड़ा सा कुछ जुमले होते हैं जो कह दिए जाते हैं, और नहीं तो हम लोग सबसे ज्यादा मेहनत आप लोगों की, इसलिए कि हम लोग 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पढ़ते हैं, मगर आप मुसलसल 4-5 घंटा सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान का ज़हन थकता है, और ये फितरी बात है, इंसान थक जाता है। तो आप लोगों की ज़्यादा मेहनत है, मगर कामयाब भी आप ही लोग जश्न को बनाते हैं। मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि महफिल इसी तरीके से इसी लेवल पर चलती रहे, और इतने लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, यकीनन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं इस वक्त आवाज़ दे रहा हूँ दूर दराज का सफ़र तय करके आई हुई शख्सियत यानी सुल्तान अजमेरी साहब एडवोकेट, जो तशरीफ ला रहे हैं, एक खानकाह से जुड़ा हुआ इंसान, जो वहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ यही सोचता हुआ आया है कि मैं 12 में पहली मर्तबा जा रहा हूँ। अल्लाह जाने कैसा सुना जाए, अल्लाह जाने कैसे सामईन मिले, मगर मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि ये सैयदवाड़ा का मजमा है, ये बेहतरीन समातों वाला मजमा है, मुख्तसर सही मगर अच्छी समातें हैं। अगर शेर अच्छा हुआ तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी की मंजिलों को तय करेंगे। जनाब जुल्करनैन अजमेरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। इत्मीनान से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला आपको सलामत रखें और इंशाअल्लाह खिदमत करने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारे माशाअल्लाह आइडियल जिनको देख सावन भाई, हमारे नायब साहब, और मैं बस मेरी थोड़ी सी आदत है कि मैं कुछ मिस्टेक कभी भी होता है, अगर कुछ जहन में आ जाता है तो इजाफी कह लेता हूँ बतौर इस्लाह। मदे हाजिर में एक मतलब और एक शेर है, उसके बाद फिर आपके मिजाज के मिसरे सुनाएंगे इंशाअल्लाह। खिदमत करूंगा, एक छोटा हुक्म भी है, हुजूर आप रुकेगा इंशाअल्लाह, आपकी नजर करूंगा वो मिसरे पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल नए मिसरे हैं, समाज समाए। ये जश्न बावफा का है, शबीर आए हैं। मेरी तबीयत खराब है, आपकी नहीं है भाई कमर साहब। ये जश्न बावफा का है, शबीर आए हैं। हमने ज़मीन पे फर्श नहीं दिल बिछाए हैं, हमने ज़मीन दिल बिछाए हैं। हमने ज़मीन पे फर्श नहीं दिल बिछाए हैं। पहले वफा ने सब्र की मिदहा सराय की, पहले वफा ने सब्र की मदहा सराय की, फिर सब्र ने वफा के कसीदे सुनाए, फिर
सलामत रखे, मौला सलामत, मौला सलामत रखे। बस मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। पहले वफा ने सब्र की मदहा सराय की, फिर सब्र ने वफा के सुनाए हैं। क्यों तेरा दम निकलता है ऐ दुश्मने अज़ा, क्यों तेरा दम निकलता है ऐ दुश्मने अज़ा। ये मातमी तो अपने ही खून में नहा। जागिएगा, मैं सादात की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा आवाज खोलिए। क्यों तेरा निकलता है ऐ दुश्मने अज़ा, ये मातमी तो अपने ही खून में नहा। ये मातमी तो अपने ही खून में नहा। तो पामाल तुमने की है सदाहुल मते हरम, पामाल तुमने की है सदाहुल मते हरम। एहराम में तुम्ही ने तो खंजर छुपा। एहराम में इसके पास जा रहा हूं तो आवाज आ रही, थोड़ा खोलिए। पामाल तुमने की है सदाहुल मते हरम, एहराम में तुम्ही ने तो खंजर। मेरे साथ जागना, थोड़ा वक्त लूंगा, तबीयत मेरी खराब है आपकी नहीं। नारा हैदरी, खंजर छुपाए हैं, खंजर छुपाए हैं। तो शजरा तुम्हारा मिलता है उस खानदान से। देखिए, शजरा तुम्हारा मिलता है उस खानदान से, वो जिसने सैयदों के कलेजे चबाए हैं। कलेजे चबाए हैं, वो जिसने कलेजे चबाए हैं। समाज फरमाइए, बहुत ये ताजा ताजा गरम गरम अशार भेज रहा हूं मैं आपकी तरफ। वो जिसने सैयदों के कलेजे चबाए हैं। समझेगा कौन वक्त की हुज्जत की मसलहत, समझेगा कौन वक्त की हुज्जत की मसलहत। शहने दिया बुझाया है सूरज उगाए हैं, शहने दिया बुझाया है सूरज उगाए हैं। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। हजरत, क्योंकि मुझे हाजिर भी है, मौला अब्बास का भी जिक्र करना है। और देखिए, थोड़ा सा अगर आप जाग जाएंगे तो मैं थोड़ी आपकी खिदमत कर सकूं। मुझे मालूम है बाराबंकी कैसे सुनता है, बहुत वीडियोस देखी हैं। तो बस मैं अगर 1000 किलोमीटर से यहाँ के जोर से पढ़ सकता हूँ, तो आप 5-7 किलोमीटर से बैठ के जोर से तो सुन सकते हैं ना इंशाल्लाह। मैं ये जमीन में नहीं चुनता, मेरे भाई मनोवर साहब ने इसी जमीन में पढ़ा है, लेकिन मुझे एक शेर सुनाना था। हालांकि शेर सभी अच्छे हैं, तो वो मैं भेज देता हूँ। ये समझ लीजिए कि इनके साथ साथ मैं आप तक आ रहा हूँ, ठीक है। मैं पेश करता हूँ, समाज फरमाइए। हम मादर सरवर को मनाने में लगे हैं। सुनिए, हम मादर सरवर को मनाने में लगे हैं,
अश्के गम शबीर बहाने में लगे, वो अपना अलग रंग जमाने में लगे हैं, वो अपना अलग रंग जमाने में लगे हैं, गीदड़ को भी जो शेर बनाने में लगे हैं, वो अपना अलग रंग जमाने में लगे हैं, गीदड़ को भी जो कौन जो सुनना कामयाब लगे हैं। हाजिर है मजे हाजिर है हालात हाजिर है बुजुर्ग भाई कि ईरान ने मुल्कों की औकात बता दी, लगे ये सुबह हक है नहीं सुने मेरे अली वाले बैठे हैं सब यहाँ पे, दबना तो काम, ये सुबह हक है, बातिल की अंधेरी शाम थोड़ी है, जहां में इससे शीरी और कोई जाम थोड़ी है, ये बोले मौत की आंखों में आंखें डालकर मीसम, अली से इश्क करना बुज़दिलों का काम थोड़ी। मैंने कहा ज़हरा के कातिल पे हो लानत, बस मैंने कहा ज़हरा के कातिल पे हो लानत, और मेरे सभी तीर निशाने हैदर 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 हैदर। बस मैंने कहा ज़हरा के कातिल पे हो लानत। देखिए भाई अगर आप मुझे ऐसे देखेंगे तो मैं पेशखानी की तरह बैठ के पढ़ूंगा, जान मैं भी लगा रहा हूँ। देखिए बिल्कुल हमारे नाज़िर साहब कहते हैं कि रखोगे जो हैदर से इश्क़ हक़ीक़ी, शजर इश्क़ हैदर का फलने लगेगा, सुनोगे जो ज़िक्र अली बन के मीज़न, रगों में लहू खुद उछलने लगेगा। बस मैंने कहा ज़हरा के कातिल पे हो लानत, और मेरे सभी तीर, बोलो ना, और मेरे सभी तीर, सर का दर्द ठीक है, और मेरे सभी तीर हर मुल्क में, हर शहर में, हर शहर में, हर मुल्क में कुछ हिंदा सिफत लो, हर मुल्क में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर शहर में, हर गाँव में, हर शहर में, हर शहर में, हर मुल्क में कुछ हिंदा सिफत लो, मजलूम कलेजों को ली मौला, ली मौला, हर मुल्क में, हर शहर में कुछ हिंदा सिफत लो, मजलूम कलेजों को मैं वहां भी आऊंगा, चबाने में लगे हैं। बस उतने ही लम्हों में
बना हुर का मुकद्दर। मैं देखना चाहता हूं कि सैयद वाला बाराबंकी शेर कैसा सुनता है। बस उतने ही लम्हों में बना हुर का मुकद्दर। बस उतने ही लम्हों में बना हुर का मुकद्दर। वो लम्हे जो फितर उसके पराने में लगे हैं। बोला सलामत रखिए। लम्हों में बना हुर का मुकद्दर। वो लम्हे जो फितर उसके पराने में, बस अपनी मंजिलों के करीब इंशाल्लाह टर्न लूंगा, पराने में लगे हैं। तो निकला ही नहीं है अभी खैमे से अलमदार। निकला ही नहीं है अभी खैमे से अलमदार। मक्तल में उदू जान बचाने में लगे हैं। निकला मोहम्मद सल्लल्लाहु निकला ही नहीं है अभी खैमे से अलमदार। मक्तल में उदू जान बचाने में लगे हैं। अजदाद थे जिन लोगों के तारीखी भगोड़े। अजदाद थे जिन लोगों के तारीखी भगोड़े। वो मौत से शियों को डराने में एक नारे हैदरी, एक आवाज़े बुलंद सलवा मोहम्मद जज़ाकल्लाह मौला सलामत। अजदाद थे अजदाद थे जिन लोगों के तारीखी भगोड़े। वो मौत से शियों को शेर पढ़ देता हूँ। आज की इस महफिल का तोहफा इंशाल्लाह याद रहेगा मेरे बुजुर्गों की दुआ के साथ और इस्लाह। देखिए लगे हैं आँखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र। जैसे चाहे वैसे सुनिए। आँखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र। आँखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र। अब्बास अभी मश्क बचाने में लगे हैं। आँखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र। अब्बास अभी मश्क बचाने में लगे।
मिसरा हमें जनाब शम्स तबरेज़ साहब थे, शायद एक रिश्ते से कानपुर से हमें हासिल हुआ। हुसैन इब्ने अली ने प्यास का चेहरा बनाया है। मैं पेश करता हूँ एक बार तो 2-3 शेर फिर टर्न लूंगा इंशाल्लाह। मिधत में जो मजा है ना वो मजा है ही नहीं। और आप जैसा सुन रहे हैं माशाल्लाह मुझे अभी लग रहा है कि ये खालिस मजमा है माशाल्लाह। आँखों का कोई दर्द न हाथों की कोई फिक्र, आँखों का कोई दर्द। हैदरी हैदरी आँखों का कोई दर्द ना हाथों की कोई फिक्र, अब्बास अभी मश्क बचाने में अब तो बोले लगे हैं। देखिए मेरे लिए ये सादत है कि जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है ना उस पूरे पूरी दुनिया जिसके लिए खड़ी होती है उन्होंने आके मुझे दाद दी है, तो इससे बड़ी दाद आई थिंक सो मुझे नहीं मिल सकती। और आपकी दुआएं अब शामिल हाल रहेंगी यहाँ से। कोई दर्द ना हाथों की कोई फिक्र, बचाने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। बस मैं एक मतलब 2-3 शेर पढ़ूंगा इंशाल्लाह, ये भी एक तोहफतन रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ शेर कहा है इसमें मैंने समाप्त फरमाया था। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। हुसैन इब्ने अली ने प्यास का चेहरा बनाया, जितनी याद आना पड़ता हूँ। हुसैन इब्ने अली ने प्यास का चेहरा बनाया है। हमारी हसरतों ने देखिए तो क्या बनाया है। हमारी हसरतों ने देखिए जल्दी जल्दी तो क्या बनाया है। हमारी हसरतों ने देखिए तो क्या बनाया है। अज़ा खाने में दिल के शाह का रोज़ा बनाया है। अज़ा खाने माशाल्लाह दिल के शाह का रोज़ा बनाया है। तो खुदा ने हुक्म आदम को दिया है, बाद में पहले खुदा ने हुक्म आदम को दिया है, बाद में पहले हुसैन इब्ने अली के इश्क में सजदा बनाया। अली मौला मौला सलामत है कि खुदा ने हुक्म, सबसे पहला सजदा आदम ने किया, लेकिन उससे पहले अगर सजदा बना तो किसके इश्क में। मौला सलामत है खुदा ने हुक्म आदम को दिया है, बाद में पहले हुसैन इब्ने अली के इश्क में क्या बना सजदा बनाया है। उड़ा ले जाएगा तूफान इनको नाम गाजी का, उड़ा ले जाएगा तूफान इनको नाम गाजी का। ये जिन तिनकों से तुमने नहर पर पहरा बनाया है, उड़ा ले जाएगा तूफान इनको नाम गाजी का। ये जिन तिनकों से तुमने नहर, ये शेर अगर याद रह जाए दुआ में, देखिए अगर सुभान अल्लाह की तस्बीह नहीं पढ़
सकते हैं तो हाथ बुलंद कीजिएगा। अबूजर भाई अभी आपकी जिम्मेदारी, कैमरा घुमाइए। जितनी जान में लगा रहा हूँ, 12 बंकी लगा रहा है कि लगा रहा। अगर नया ख्याल हो, हमारे उस्ताद मौजूद है, दुआ से जरूर नवाजिएगा। मैं जान लगा रहा हूँ, मुझे मालूम है मेरी तरफ से 100% इस बीमारी में उड़ा ले जाएगा तूफान इनको नामे गाजी का। ये जिन तिनकों से तुमने नहर पर पहरा बनाया है कि जनाबे हजरते अब्बास ने ये खत नहीं खींचा। जनाबे हजरते, अब जो बैठा रह जाए उसकी मर्जी। जनाबे हजरते अब्बास ने ये खत नहीं खींचा। जनाबे हुर के आने के लिए रास्ता रास्ता मुझे मालूम है अभी मजमे में जान बाकी है। नारे हैदरी। अरे जनाबे हजरत अब्बास ने ये खत नहीं खींचा। जनाबे हुर के आने के लिए रास्ता बनाया है। जनाबे हुर शेर, मैं तस्मीन पढ़ रहा हूँ, शहनशाह तस्मीन के सामने, और तरुण में पढ़ रहा हूँ शहनशाह। दो देखो शहनशाह तरुण में सावन साहब भी है, नायब साहब। इनको देख देख के सीखा है। जब तारागढ़ आते थे इनकी खिदमत में रहते थे, जो भी इनकी खिदमत होती थी हम समझते साथ पढ़ रहे हैं, हमारी सादत है। जनाबे हजरत अब्बास ने ये खत नहीं खींचा। जनाबे हुर के अब तो बोलिए हुर के आने के लिए। तस्वीर पढ़ता हूँ। हुसैन इब्ने अली ने प्यास का चेहरा बनाया है। जनाबे हुर के आने के लिए रास्ता बनाया है। अली असगर का खून चेहरे पे अपने हाथ से मलकर। अली असगर का खून चेहरे पे अपने हाथ से मलकर। हुसैन इब्ने अली ने प्यास का चेहरा बनाया का चेहरा बनाया है। मोहम्मद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाबे हजरत अब्बास ने ये खत नहीं खींचा। साथ दीजिए। जनाबे हजरत अब्बास ने ये खत नहीं खींचा। जनाबे हुर के आने के लिए रास्ता बनाया है। एक और नया तोहफा देने जा रहा हूं। समा फरमाए के गले पर एक मिसरा जनाब बेताब अल्लाहरी साहब का लॉकडाउन दादा हिजाब गैब में अब्बास की तलवार रखी है। सबने शेर कहे, हमने भी कहे। एक मतलब 2 शेर सिर्फ सुनाऊंगा। नया शेर अगर हो तो अबूजर भाई कैद कर लीजिएगा कैमरे में, हम भी कुछ नया सुनाने लगे। समा फरमाए के गले पर इसलिए जालिम ने ये तलवार रखी है। मेरे लब पर सनाए हैदरे करार रखी है। मेरे लब पर सनाए हैदरे करार रखी है। मेरा ईमान ईमाने अबूजर का मुकल्लिद है। मेरा ईमान ईमाने अबूजर का मुकल्लिद है। मेरी किस्मत मेरे ईमान ने बेदार रखी है। तो सकीफाई लुटेरों की तरह जबरन नहीं पहनी।
सकीफाई लुटेरों की तरह जबरन नहीं पहनी, मोहम्मद ने अली के सर पे खुद दस्तार रखी। मोहम्मद ने अली, अच्छा बाराबंकी ऐसा ही सुनता है। शेर पढ़ता हूं, लुटेरों की तरह जबरन नहीं पहनी, मोहम्मद ने अली के सर पे खुद। ये शेर अगर नया हो फिर दुआ चाहूंगा अफजल भाई, इसको तो अब आपकी जिम्मेदारी रखी है तो अलग है, अलग है हैदर ज़हरा का अंदाज़े ज़िगा, लेकिन अलग है हैदर ज़हरा का अंदाज़े ज़िगा, लेकिन जहां चक्की है ज़हरा की वहीं तलवार। चक्की है ज़हरा की वही तलवार रखी है, कोई मैदान हो करनैन में खाली नहीं लौटा, मेरे अल्लाह ने इज्जत मेरी हर बार रखी है, मेरे अल्लाह। पहले शायर का नाम बता दूं, जिसका नाम मैं लेने जा रहा हूं ना, बिल्कुल उठिएगा नहीं, मैं बहुत अजीम शख्सियत को आवाज देने जा रहा हूं। कहो तो पहले बता दूं कैसा सुन में रखो जैसा बता। और दो शायर के लिए ऐलान हो रहा है कि दो शायर बस करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर पे हैं, जनाब मौलाना शरफ नदवी साहब और जनाब सुहेल बस्तवी साहब, बस करीब आपके दायरे मोहब्बत में तशरीफ लाने वाले हैं। मैं जानते हो किसको बुलाने जा रहा हूँ, डॉक्टर नायाब लौरी साहब को। अब बता दिया ना, अब सुकून मिला ना। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ और दो शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि अभी आप वो तो अभी जुल्फ़िकार अजमेरी साहब कह रहे थे कि बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। देखिए राहुल सिंह हुसैनी बिल्कुल रेडी है। कामयाब कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब यहाँ से तो अच्छा नायाब भाई से बताने गए कि नायाब भाई मेरे ये फेवरेट कलाम पढ़ देना कि जिसको भी मोहम्मद का वसीला नहीं मिलता, जन्नत तो बड़ी बात है रास्ता नहीं मिलता, नस्लों का लहू मांगता है इश्क मोहम्मद, ये इश्क किसी दौर में सस्ता नहीं मिलता, जैसा कि मोहम्मद के नवासे ने किया है ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता, ऐसा कहीं तारीख में सजदा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। ये आले मोहम्मद है कि पोशाक में जिनके पेबंद तो मिल जाते हैं, धब्बा नहीं मिलता। तो हम फातिमा ज़हरा का जो कुछ लोग न खाते, दुनिया में मुसलमान कोई भूखा नहीं मिलता। तो जिस रोज से है नहर पास का कब्जा, भूखे तो बहुत मिलते हैं, प्यासा नहीं। जिंदाबाद, आपकी समातों को सलाम है, आपकी समातों को सलाम। जितना अच्छा मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उससे अच्छा सुन रहे हैं। 4 मिसरे पढ़ता हूँ इसलिए कि मुझे ये 4 मिसरे याद आए कि जो करबला मोहल्ला में जमींदारे करबला का जश्न आप 5 शाबान को देख रहे हैं, उसके मुनक्किद करदा जनाब डॉक्टर नायाब हल्लौरी साहब हैं, जो वहाँ पे मुनक्किद हुआ जश्न, इसका नाम भी जनाब नायाब हल्लौरी साहब ने जश्न का नाम भी दिया और वहाँ पे जो जश्न हो रहा है उन्होंने किया। मगर इस साल उस 5 शाबान को 4 मिसरे ऐसे पढ़े गए जो पूरी दुनिया में इतना कोई वायरल ही नहीं हुई 10 सालों में। वो 4 मिसरे जितने वायरल हुए, कोई शेर इतना वायरल नहीं हुआ जितना मौलाना बिलाल काज़मी साहब का ये 4 मिसरे वायरल हुए। मुझे यकीन है कि वैसे ही मजमा सुनेगा, वैसे ही सुनेगा जैसे ही हर जगह सुना जाता है कि मैं थक चुका हूं, नसीरो मोइन भी दे दे। अगर ऐसे सुने तो कलेजा फट जाएगा। अब निगाहें देखो कि कैसे दाद दे रहा है। मैं थक चुका हूँ, नसीरो मोइन भी दे दे, कि नींद आती है फर्शे हसीन भी दे दे। ये इल्तिजा है
जमींदार करबलाए हुसैन कफन दिया है तो 2 गज जमीन भी दे दे। ये इल्तिजा है जमींदार करबलाए हुसैन कफन दिया है तो 2 गज जमीन भी दे दे। आइए हजरात, बिल्कुल बेदार हैं आप हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहंशाह तरन्नुम मीर मरहबत शहंशाह तस्मीम जनाब डॉक्टर नायाब लाहौरी साहब से कि तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवार से इस्तकबाल। चार्म से हाजिर कर रहा हूँ शबाब भाई, इस बरस जहाँ और जितने जैसे हमने पढ़े हैं सबकी इब्तिदाई इन्हीं मिसरों से की है, यहाँ भी हाजिर कर रहा हूँ। अबू ज़र जरगान भाई माशाअल्लाह। मौला रज़ा के हैदर के दीवाने जीत गए। मौला रज़ा के हैदर के दीवाने जीत गए। जिन पर बंधी थी नादेली वो सारे शाने देख ले दुनिया करे वो बला की पुष्ट पनाही काए देख ले दुनिया करे वो बला की पुष्ट पनाही बम के धमाके हार गए तस्बीह के हैदर हैदर देख ले दुनिया के वो बला की पुष्ट पनाही काए बम के धमाके हार गए तस्बीह के दाने जीत गए। वाह 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 सुभान अल्लाह वाह 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 वाह।
जुल्करनैन साहब ने बहुत अच्छे अच्छे यकीनन शबाब भाई और बहुत अच्छे फिक्र बहुत अच्छे अशार सुनाए। मैं भी सोच रहा हूँ उन्हीं के अशार से मुतासिर होकर एक मतला एक शेर मैं भी बाराबंकी की इस मखसूस समाज की नज़र कर रहा हूँ। देखिए इरशाद फौजे सितम का तोड़ के पहरा लबे फुरात समात फौजे सितम का तोड़ के पहरा लबे फुरात गाजी टहल रहा है अकेला लबे तशरीफ फरमा है। देखिए ये शेर मैं हाजिर कर रहा हूँ, इसमें लबे फरार खास तौर से समाप्त करें। मैंने रदीफ का बिल्कुल मिजाज ही बदल दिया है, हाजिर कर रहा हूँ। भर ली है सारी ताजगी गाजी ने मश्क में भर ली है सारी ताजगी गाजी ने मश्क में अब खुश्क ही रहेंगे हमेशा लबे फुरात भर ली है सारी ताजगी गाजी ने मश्क में अब खुश्क ही रहेंगे हमेशा लबे मौला मौला आप लोगों की एक मुसद्दस की चंद बंद हाजिर करना चाह रहा हूँ। वो उसका उन्वान है वफा। चूंकि ये जश्न बावफा है इसलिए मैंने इंतखाब किया इसका। वफा की कहानी वफा की ज़बानी। मैं वफा हूँ 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 मुझको इमरान ने बच्चों
बच्चों की तरह पाला है। मुझको इमरान ने बच्चों की तरह पाला है। खालिक़े नहज बलागा मेरा रखवाला है। रब ने अब्बास के पैकर में मुझे ढाला है। मेरी परवाज़ तो जिब्रील से भी वाला है। आलम सुए तूबा बशरफ देखता है और तूबा मेरे चेहरे की तरफ मैं वफा हूँ। जुलशीरा में जो बुरा था वो एहसास में अपने आका के हर एक अहद की अक्कास में। कहीं शबनम कहीं शोला तो कहीं प्यास में। और अब खादिम हजरत अब्बास हजरत अब्बास में हुर की आंखों में जो आया था वो पानी मैं हूँ। और हबीब इब्ने मज़ाहिर की जवानी। मैं वफा हूँ। शुक्रिया भाई। मैं वफा कहीं कहीं साजिद कहीं सजदा कहीं मसजूद हूँ मैं। बंदे हक के लिए तोहफ़े माबूद हूँ मैं। बनी हाशिम की हर एक फर्द में मौजूद। बनी हाशिम की हर एक फर्द में मौजूद मैं। भूल कर भी न समझ लेना कि महदूद हूँ मैं। सोती हूँ बिस्तर हिजरत पे मैं सोना बनकर। हाँ मगर घर में रहा करती हूँ फिजा। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह वाह भाई वाह 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 वाह। मैं वफा मिलकर अज़मत बाबुल हवाइज पर एक बावाज़ बुलंदा मिलके आज भी अब्बास आज भी अब्बास निखरा हुआ है वफा का चेहरा। आज भी अब्बास मिलता है हर गम का मदावा। आज भी अब्बास मिलता है हर गम का मदावा। आज भी अब्बास मिलता है हर कौम को सदका। आज भी मिलता है हर कौम को सदका। आज भी अब्बास हर मुश्किल का दम है निकलता। आज भी अब्बास हर मुश्किल का दम है निकलता। आज भी अब्बास फटता है दुश्मन का कलेजा। आज भी फटता है दुश्मन का कलेजा। आज भी अब्बास सहमा हुआ हर एक है दरिया। आज भी अब्बास सहमा हुआ हर एक है दरिया। आज भी अब्बास नारा है
वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ। आज भी जिंदा हूँ शब्बीर के मकसद की तरह। जिंदा हूँ शब्बीर के मकसद की तरह, दिल में रहती हूँ आज़ादारों के मशहद की तरह। सारे रोज़ों पर चमकती हूँ मैं गुंबद की तरह, सारे रोज़ों पर चमकती हूँ मैं गुंबद की तरह। मेरा आका भी है अपने जदे अमजद की तरह। अहले ईमान के अज़हान पर मैं गालिब हूँ, सच तो ये है कि मैं ईमान अबू मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा। देखिए वफा की मुकम्मल कहानी पेश कर रहा हूँ, समाप्त करें। मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ। कैसे दिखलाऊं तुम्हें चुभते हुए वो मंजर, कैसे दिखलाऊं तुम्हें चुभते हुए वो मंजर। जब भटकती थी सहारे के लिए मैं दर दर, दोनों आलम में न मिल पाया कोई एक बशर, दोनों आलम में न मिल पाया कोई एक बशर। जो ये कह देता तेरे बाग का माली मैं हूँ, तेरे मुरझाए हुए चेहरे की लाली मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ। आखिरश बहरे अमा बज़्म नबूवत में गई, लेके फरियाद फुगा शहर हिफाजत में गई। होके खुश सरहद उम्मीद रफ़ाक़त में गई, मुख्तसर ये के सहाबा की जमात में गई, मुख्तसर ये के सहाबा की जमात में गई। मैंने सोचा था कि शायद ये बड़ा काम किया, लेकिन इन लोगों ने तो और भी बदनाम। मैं वफा हूँ। अब देखिए अबूजर भाई किस तरह से बदनाम किया है इन लोगों ने। दीन इस्लाम से मुंह मोड़ के भागाए थे, किस्मत फतह ज़फ़र फोड़ के भागाए थे। शीशे दे वफा तोड़ के भागाए थे, लोग मैदान में मुझे छोड़ के भागा, लोग मैदान में मुझे छोड़ के भागाए थे। ढो रही हूँ इन्हीं गद्दारों की लाशें अब
जंगे ओहद की है खराश, मैं वफा हूँ, मैं वफा। जख्म पर जख्म सहे फिर भी नाहें निकली, अश्क पी पी के रही और न कराहें निकली। एक सहारे के लिए जब मेरी बाहें निकली, डरे अब्बास से उम्मीद की राहें, मेरी आवाज को अब लौह कलम चूमते हैं, आसमां भी मेरे आका का आलम चूमते हैं। मैं वफा हूँ, मैं वफा हूँ। अब ये मक्ते का बंद आखिरी बंद। काम यूं आ गई नायाब इबादत मेरी, काम यूं आ गई नायाब इबादत मेरी, अब है अब्बास के रोज़े पर सुकूनत मेरी। यही दुनिया है मेरी और यही जन्नत मेरी, हर वफादार को पड़ती है जरूरत मेरी। खत जो लिखना तो मेरा इतना पता लिख देना, तुम लिफाफे का फकत कर वो भला एक मनक़बत के कुछ अशार पेश कर रहा हूँ और इसमें एक पैगाम है जो ज़रूरी है और हमारे शबाब भाई ने बहुत ज़्यादा सराहा, इसे मैं हाजिर कर रहा हूँ। एक बहुत मशहूर ज़माना गज़ल है भाई कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। मैं हाजिर कर रहा हूँ, देखें इरशाद। हमारी प्यास का गर्क ताज़िया न लगे, हमारी प्यास का गर्क ताज़िया न लगे, तो नहर क्या है समंदर कभी पता न लगे, हमारी प्यास का गर्क ताज़िया न लगे। जब पाप भी खाके नजफ मला कीजिए, जब पाप आइए, जब पाप तशरीफ ला रहे हैं ना सल्लल्लाहु खास तौर से इंतखाब किया है। जब पाप भी खाके नजफ मला कीजिए, जो चाहते हैं कि चेहरा कभी बुरा न लगे,
की लुगत में है उसका नाम अली। वाह। पैगंबरों की लुगत में है उसका नाम अली। जो सारे काम खुदा के करे खुदा न लगे। सारे काम खुदा के और ये देखें, फरिश्तों ऐसा सजाओ दरे अबू तालिब। फरिश्तों ऐसा सजाओ दरे अबू तालिब के दूर ही से मोहम्मद का समधिया न लगे। सजाओ दरे अबू। ये देखें, अली के हो, अली के हो तो अली की तरह करो खैरा। के एक हाथ से दो एक को पता न लगे। आजकल हमारी कौम को पता नहीं क्या हो गया, उछलना कूदना और खड़े कुछ दिन बाद जो है आप शेर पढ़ेंगे ताली भी बजाएंगे, ताली बजा के वाह वाह करेंगे। ऐसा ऐसा लग रहा है आजकल का तकद्दुस कसम खुदा की ऐसा पामाल हो रहा है। शहजादी ज़हरा समझे क्या बात है। शेर हाजिर कर रहा हूं बतौर पैगाम। दुआए फातिमा ज़हरा हो तुम ख्याल रहे। दुआए फातिमा ज़हरा हो तुम ख्याल रहे। किसी भी रुख से ये महफिल मुशायरा न लगे। दुआए फातिमा ज़हरा हो तुम ख्याल रहे। किसी भी रुख से ये महफिल मुशायरा न दुआए फातिमा ज़हरा हो तुम ख्याल रहे। और नायब नायब भाई फिर एक बार वाह क्या पैगाम है भाई। दुआए फातिमा ज़हरा हो तुम ख्याल रहे। किसी भी
रुख से ये महफिल मुशायरा न लगे। आखिरी शेर है, कहा हुसैन ने असगर से ऐसा वार करो। वाह। कहा हुसैन ने असगर से ऐसा वार करो जिसे समझने में दुनिया को एक ज़मान लगे। जिसे समझ दुनिया को एक ज़मान लगे। मख्ता हाजिर है खिदमत में। अली के इश्क में बीमार ही रहूं नाया। दुआ करो कि मुझे कोई भी दवा न अली के इश्क में बीमार ही रहूं नाया। दुआ करो कि मुझे कोई भी दवा न लगे। और आखिर में सिर्फ दो हमारे भैया की फरमाइश है और बस इसी के साथ मैं करबो बला हूँ। आप लोग भी साथ दें। मैं करबो बला हूँ। मैं करबो बला मैं करबो बला। सिर्फ दो बार। शब्बीर अगर कह दे नमख़्वार है मेरा, बस नाम वही लेने का हकदार है मेरा। मेयार भी हैरान है वो मेयार है मेरा। शहज़ादे शब्बीर जमींदार है मेरा। सींचा है मुझे फातह खैबर के लहू ने, आबाद किया है अबू तालिब की बहू ने। मैं करबो बला हूँ। मैं करबो बला अकबर से जवानी की सनद पाई है मैंने। अकबर से जवानी की सनद पाई है मैंने। अब्बास के परचम की हवा खाई है मैंने। असगर की हंसी होठों पर लहराई है मैंने। तब जाके ये दीवार सितम ढाई है। तब जाके ये दीवार सितम ढाई है मैंने। तब जाके ये दीवार सितम ढाई है।
देखिए हजरत, जब तक कि मैं निजामत में शेर पढ़ रहा था, कभी अपने आप को देख रहा था, कभी इस फहरिस्त को देख रहा था, कभी डाइस में शोरा की मौजूदगी देख रहा था। उस मौजूदगी में थोड़ा सा वक्त आपका ज़्यादा लिया, इसलिए कि शोरा को दूर दराज का सफ़र तय करके यहाँ तक मौजूदगी, यहाँ तक तशरीफ लाना था, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा शेर पढ़ने लगा। मगर कभी कभी हालात भी देखना चाहिए। अगर जब हालात साजगार हों तो नाज़िम को शेर पढ़ना चाहिए, नहीं तो रुक जाना चाहिए। इस वक्त मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त बाकायदा डाइस पर तशरीफ फरमा है आली जनाब मौलाना शरण नकवी साहब, जनाब सुहेल बस्तवी साहब, जनाब सावन हल्लौरी साहब और जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास साहब किबला, ये बिहानी की सरजमीन से तशरीफ लाए। तो इतने शुअरा भी बहरूनी हैं, तो अब नाज़िम को अपने आप को रोक लेना चाहिए, अपनी निजामत के दामन को समेट लेना चाहिए। बेहतरी यही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अजमल की तूरी साहब से कि तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल कर। हजरत मोमिनीन जो अंदर बैठे हैं और जो बाहर खड़े हैं, सबको सलाम अलैकुम। और अव्वलन मैं अंजुमन गुंजा अब्बासिया के मेंबरान का शुक्रगुजार हूँ कि इतने बड़े प्रोग्राम में मुझ जैसे को भी सवाब हासिल करने का शरफ अता किया। बस सिर्फ जल्दी जल्दी दो मतले और दो शेर हाजिर करता हूँ, समात फरमाएं। जाहिद भाई सिर्फ दो मतले और दो शेर और जहमत तमाम। नायब भाई मतला हाजिर खिदमत है। आज करता हूँ कि बहुत खूबसूरत पैगाम दिया नायब भाई ने और उसके साथ नसीहत भी। दुआए फातिमा सहरा हुई है ख्याल है, किसी भी रुख से ये महफिल मुशायरा ना लगे। क्या शेर पढ़ दिया जवाब मतला समात फरमा ले। दो मतले और दो शेर बस जहमत तमाम। अर्ज करता हूँ कि पत्थरों के शहर में एक शीशा घर पैदा करें, पत्थरों के शहर में एक शीशा घर पैदा करें, यानी अब बंजर जमीनों में शजर पैदा करें। वाह! यानी अब बंजर जमीनों में शजर पैदा करें। दूसरा मतला समात फरमाए कि गैर को अपना बनाने का हुनर पैदा करें, गैर को अपना बनाने का हुनर पैदा करें, गुफ्तगू में कम से कम इतना असर पैदा करें। गैर को अपना बनाने का हुनर पैदा करें, गुफ्तगू में कम से कम इतना असर पैदा करें। और शेर समात फरमाएं कि बुग़्ज़े हैदर है तो एक आयत समझ सकते नहीं, बुग़्ज़े हैदर है तो एक आयत समझ सकते नहीं, हाफिज़े कुरान चाहे उम्र भर पैदा करें। बुग़्ज़े हैदर है तो एक आयत समझ सकते नहीं, हाफिज़े कुरान चाहे उम्र भर पैदा करें। और आखिरी शेर मक्ता हाजिर करता हूँ कि आपके शेरों में अजमल कुछ तो नुदरत चाहिए, आपके शेरों में अजमल कुछ तो नुदरत चाहिए, काम तो थोड़ा सा मुश्किल है मगर पैदा करें। अजमल किंतूरी साहब। अब इनके बाद गुजारिश है जनाब डॉक्टर मोहिब मौरानवी साहब से तशरीफ लाएं। आप हजरात से गुजारिश है नारे सलवात से इस्तकबाल करें जनाब डॉक्टर मोहिब मौरानवी साहब। इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। देखिए मकामी शुअरा के लिए सिर्फ 4 से 5 मिनट का वक्त दिया गया है। 4:30 और उससे पहले ही अपनी गुफ्तगू में मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। हमारे छोटे भाई जो अदनान साहब थे और उनके हमनवा, उन्होंने एक फरमाइश की थी 3-4 शेरों की, बस वही मैं हाजिर करता हूँ। सुनिए मुलाहिज़ा।
कि नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे। देखिए सुनिए, थोड़ा सा अगर आप लोग मुनज़्ज़म हो जाएं तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे कि नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे कि हम खुशी में भी मौसम अज़ा के रख देंगे। नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे, नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे कि हम खुशी में भी मौसम अज़ा के रख देंगे। बवक्ते असर खुदा होगा और हम होंगे। सुनिएगा, बवक्ते असर खुदा होगा और हम होंगे। फरिश्ते अर्श का पर्दा हटा के रख देंगे। अब यहां से शेर सिलसिलेवार सुनिएगा। फरिश्ते अर्श का पर्दा हटा के रख देंगे। फरिश्ते अर्श का पर्दा हटा के रख देंगे। सितम के शहर से कहता है नेज़े अब्बास। सितम के शहर से कहता है नेज़े अब्बास। सरों का वज़्न बदन से घटा के रख देंगे। नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे कि हम खुशी में भी मौसम अज़ा के रख देंगे। बवक्ते असर खुदा होगा और हम होंगे। फरिश्ते अर्श का पर्दा हटा के रख देंगे। सितम के शहर से कहता है नेज़े अब्बास। सरों का वज़्न बदन से घटा के रख देंगे। अब यहाँ से सिलसिलेवार 3 शेर और इंशाअल्लाह ये 3 शेर आज के जश्न अब्बास के तबर्रुक साबित होंगे। इंशाअल्लाह मुलाहिजा करें, मिसरा हाजिर कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह महसूस होंगे। अपने जज्बात को, अपने जज्बों को मेराज बख्शिए और मिसरा सुनिए, मुलाहिजा करें कि नजारे जश्न में करबो बला के रख देंगे कि हम खुशी में भी मौसम अज़ा के रख देंगे। सितम के शहर से कहता है नेज़े अब्बास। सरों का वज़्न बदन से घटा के रख देंगे। वो देखो प्यासे की माँ आ रही है महफिल में। वो देखो प्यासे की माँ आ रही है महफिल में। हम आज अश्कों को ज़मज़म बना के रख देंगे। सितम के शहर से कहता है नेज़े अब्बास। सरों का वज़्न बदन से घटा के रख देंगे। वो देखो प्यासे की माँ आ रही है महफिल में। हम आज अश्कों को ज़मज़म बना के रख देंगे। अगर वो फातिमा इज़्ने क़िसास दे दे हमें, अगर वो फातिमा इज़्ने क़िसास दे दे हमें, सितम के जितने भी दर हैं जला के रख देंगे। सितम के जितने भी दर हैं जला के रख देंगे। आखिरी शेर और सहमत तमाम। सितम के जितने भी दर हैं जला के रख देंगे। कसम हुसैन की मुख्तार के गुलाम हैं हम। सुनिएगा, सितम कसम हुसैन की मुख्तार के गुलाम हैं हम। कोई भी शिम्र हो मिट्टी चटा कर हजरत अभी 2 मकामी शायर और पढ़ूंगा किसी वजूहात के तहत। उसके बाद में मुसलसल 3 शायरों को बैरूनी पढ़वाऊंगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जाकिर इमाम साहब से तशरीफ लाएं। जनाब जाकिर इमाम साहब, बिल्कुल जितने लोगों के पोस्टर में नाम है वो बिल्कुल आमादा रहे, फौरन ही बुलाऊंगा। और इनके बाद जनाब शरफ बाराबंकी साहब आमादा रहे।
हज़रात सामईन अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले आप सभी को इस अज़ीमुश्शान जश्न हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के 24वें दौर की मुबारकबाद तमाम मोमिनीन जो यहाँ आए हुए हैं और तमाम अरकान अंजुमन को उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। नया कलाम है जश्न के हवाले से हर साल की तरह नया कलाम हाजिर कर रहा हूँ। सरकार बाबुल हवाइज की बारगाह में समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह सभी को पसंद आएगा। मतलब हाजिर खिदमत है, समाअत फरमाइएगा। वफ़ाएं कहती है, वफ़ाएं कहती है, एक सखी के आंगन में। मतलब हाजिर खिदमत देखिएगा कि वफ़ाएं कहती है, एक सखी के आंगन में। वफ़ाएं कहती है, ये एक सखी के आंगन में, कि वफ़ाएं कहती है, अली अली मिले हैं अली के आंगन में। अली अली मिले हैं अली के आंगन में। वफ़ाएं कहती है, ये एक सखी के आंगन में। अली अली ही मिले हैं अली के आंगन में। और शेर हाजिर समाअत फरमाइएगा, देखिएगा मेरी कोशिश यही है कि आप सबकी निगाहें मेरी कुर्ते से ज्यादा मेरे शेर पे होने चाहिए, क्योंकि नया कलाम है। कि जहां तुलू हुआ सब रोज़ब्त का सूरज, जहां तुलू हुआ सब रोज़ब्त का सूरज, कि जहां तुलू हुआ सब रोज़ब्त का सूरज, वफ़ा का चांद भी उतरा उसी के आंगन में। वफ़ा का चांद भी उतरा उसी के आंगन में। और ये शेर देखेगा खूबसूरत समाअत फरमाइएगा कि अगर हो मौत में हिम्मत, तो इस तरफ देखे। अगर हो मौत में हिम्मत, तो इस तरफ देखे। अगर हो मौत में हिम्मत, तो इस तरफ देखे। लिखा है नामे जरी जिंदगी के आंगन में। लिखा नामे जरी जिंदगी के आंगन में। और ये इस जश्न के कामयाबी की सबूत के हवाले से ये शेर आप लोग समाअत फरमाइएगा, जश्न की कामयाबी के सबूत से। कि अलम से लिपटी हुई माशकी दे रही है सदा। अलम अलम से लिपटी हुई
मश्क दे रही है सदा, अलम से लिपटी हुई मश्क दे रही है सदा, वफाए फूली फली है जरी के आंगन में, वफाए फूली फली है जरी के आंगन में। और आखिरी शेर समाप्त फरमाइएगा कि नहीं है हाथों में जिनके अलम दिलावर का, नहीं है हाथों में जिनके अलम दिलावर का, कि नहीं है हाथों में जिनके अलम दिलावर का, रखे हैं पाओ वो सब खुद खुशी के आंगन में, रखे हैं पाओ वो सब खुद खुशी के आंगन में। और जाते जाते मक्ता हाजिर खिदमत है, समझ फरमाइएगा, क्योंकि हमेशा से जमीन पे रहा हूँ, कोशिश करता हूँ कि जमीन पे ही रहूँ, तो इस मक्ते में बहुत ही गहरी बात कहने जा रहा हूँ कि अभी मैं ठीक से जाकिर नहीं बनाऊंगा, समाज समझिएगा, अभी मैं ठीक से जाकिर नहीं बनाऊंगा, अभी मैं ठीक से जाकिर नहीं बनाऊंगा, अभी नया हूँ बहुत शायरी के आंगन में, अभी नया हूँ बहुत शायरी के आंगन में, वफाएं कहती है ये सभी के आंगन में। बावली बुलंद नारी सलवात जज़ाकल्लाह। इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन की दुआ आपके साथ है, बेहतरीन शायर बने, बेहतरीन जाकिर बने, बेहतरीन खतीब बने, मौला सलामत रखे आपको। बहुत अच्छा लहजा है, बहुत प्यारा अंदाज है और अशार भी माशाअल्लाह खूब है। और इससे शेरों से ये पता चलता है कि बिल्कुल नए शेर हैं, इसलिए कि ये मिसरा भी 16 शाबान को हल्लौर में हुआ था, नायाब हल्लौरी साहब ने मिसरा दिया था कि वफाएं फूली फली हैं जरी के आंगन में, निजामत हम ही कर रहे थे इसलिए याद है। तो ये नए शेर अभी सुना रहे थे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शरफ बाराबंकी साहब से, जनाब शरफ बाराबंकी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रीन, सबसे पहले आप सभी की कामयाब साहब कहाँ हैं, तशरीफ ले आओ। इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर रेहान काज़मी साहब का और कमर भाई का, जिन्होंने मुझे इस बड़ी महफिल में पढ़ने का मौका दिया। मैं अपने तारुफ दहर है जिससे उस चमन के तक आ गए, यानी गुलजारे वाह, दहर है जिससे उस चमन तक आ गए, यानी गुलजारे शहंशाहे तक आ गए, यानी गुलजारे शहंशाहे ज़मन तक आ गए। तो वो भी सुन्नी हम भी सुन्नी, हाँ मगर ये फर्क है 3 तक वो रह गए, हम 5 तक आ गए। वो भी सुन्नी हम भी सुन्नी, हाँ मगर ये फर्क है 3 तक वो रह गए, 3 तक वो रह गए, हम 5 तक आ गए, 3 तक वो रह गए, हम 5 तक आ गए। हैदर से मोहब्बत का मजा
हैदर से मोहब्बत का मजा और ही कुछ है, इस रूहे इबादत का मजा और ही कुछ है। हैदर से मोहब्बत का मजा और ही कुछ है, इस रूहे इबादत का मजा और ही कुछ है, इस रूहे इबादत का मजा और ही कुछ है, इस रूहे इबादत का मजा और ही कुछ है। तो तारीख में मलऊन बहुत सारे हैं, लेकिन उन तीनों पे लानत का मजा और ही कुछ है। तारीख में मलऊन बहुत सारे हैं, लेकिन उन तीनों पे तारीख में मलऊन बहुत सारे हैं, लेकिन उन तीनों पे लानत का मजा और ही कुछ है। और एक ये भी कथा देखिएगा कि इसके दिल को काला करके बुग़्ज़े हैदर कर्रार से अपने ईमानो अक़ीदे की चमक तक खा गए। दिल को काला करके बुग़्ज़े हैदर कर्रार से अपने ईमानो अक़ीदे की चमक तक खा गए। तो मजलिसे वो कहते हैं हराम, अरे बाप दादा जिनके मिलजुल कर फिदक तक खा गए। मजलिसे वो कहते हैं हराम, बाप दादा जिनके मिलजुल कर फिदक तक खा गए। और सरकार देखिए जिसका उन्वान है सलामे हिंद हुज़ूर सैयदुल शुहदा। देखिएगा बसद खुलूस व अक़ीदत सलाम कहता है। देखिए कि वो दर है जहाँ पर हर मकतबे फिक्र के लोग आते हैं, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, हर फिक्र के लोग आते हैं। देखिएगा कि बसद खुलूस व अक़ीदत सलाम कहता है, तुम्हें ये राम का भारत सलाम कहता है। बसद खुलूस व अक़ीदत सलाम कहता है, तुम्हें ये राम का भारत सलाम कहता है। साहिब भाई देखिएगा कि सलाम कहती है तुमको ये लखनऊ की फजा, सलाम कहती है तुमको ये लखनऊ की फजा, सलाम कहते हैं तुमको ये काशी और मथुरा, सलाम कहता है गौतम का तुमको बोध गया, सलाम कहता है तुमको, सलाम कहता है गौतम का तुमको बोध गया, सलाम कहता है तुमको ये शहर नालंदा जहाँ पे फैली है वेदों पुराण की खुशबू, सलाम कहता है तुमको हुसैन विश्व गुरु, सलाम कहता है तुमको हुसैन विश्व गुरु, और सलाम कहता है तुमको ये झरनों का कलकल, सलाम ये झरनों का कलकल, सलाम कहती है तुमको ये मौजूदी हलचल, सलाम कहता है तुमको ये झरनों का कलकल, सलाम कहती है तुमको ये मौजों की हलचल, सलाम कहते हैं झीलों में मुस्कुराते कंवल, सलाम कहते हैं झीलों में मुस्कुराते कंवल, सलाम कहता है तुमको हुसैन गंगा जल, सलाम कहता है तुमको हुसैन गंगा जल, ये रुद्राक्ष के माले सलाम कहते हैं, हुसैन तुमको शिवाले सलाम कहते हैं, ये रुद्राक्ष के माले सलाम कहते हैं, हुसैन तुमको शिवाले सलाम कहते हैं। और ये भी बन वाज़ा फरमाया कि ये नर्मदा, ये नर्मदा, ये वितस्ता, ये राप्ती का सलाम, ये नर्मदा, ये नर्मदा, ये वितस्ता, ये राप्ती का सलाम, ये सिंध और ये कोशी, ये ताप्ती का सलाम, ये सिंध और ये कोशी, ये ताप्ती का सलाम, ये सिंध और ये कोशी, ये ताप्ती का सलाम, ये कृष्णा और ये चंबल, ये गोमती का सलाम, ये कृष्णा और ये चंबल, ये गोमती का सलाम, सलाम ये कृष्णा और ये चंबल, ये गोमती का सलाम, तुम्हें ये गंगा जमुना सरस्वती का सलाम, तुम्हें ये गंगा जमुना सरस्वती का सलाम, सलाम कहती है सरयू, चनाब और झेलम, सलाम कहता है
कहता है प्रयाग का, तुम्हें संगम और ये भी बंद देखिए कि सलाम कहती है तुमको ये वादी कश्मीर, सलाम कहती है तुमको ये वादी कश्मीर, सलाम कहती है तुमको ये खुल्द की तस्वीर, सलाम कहती है तुमको ये खुल्द की तस्वीर, सलाम कहते हैं तुमको ये शहर गालिबो मीर, सलाम कहते हैं तुमको ये सूफी संत फकीर, सलाम कहते हैं तुमको ये सूफी संत फकीर, फरीदो चिश्तियो नानक और वारिसे देवा, सलाम कहते हैं तुमको कबीर और मीरा, सलाम कहते हैं तुमको कबीर और मीरा। और ये भी मुलाज़म है कि सलाम कहते हैं तुमको मसूरी के पर्वत, सलाम कहते हैं तुमको मसूरी के पर्वत, सलाम कहती है कोहे हिमालय की रिफात, सलाम कहते हैं तुमको मसूरी के पर्वत, सलाम कहती है कोहे हिमालय की रिफात, सलाम कहती है दरियाए गंगा की अजमत, सलाम कहती है ये वादी महाभारत, वो भूमि करते हैं जिस पर के देवता विश्राम, सलाम कहते हैं तुमको हुसैन चारों धाम, सलाम कहते हैं तुमको हुसैन चारों धाम। और ये भी बंद देखिए कि हुसैन तुमको हड़प्पा की सभ्यता का सलाम, हुसैन तुमको हड़प्पा की सभ्यता का सलाम, हुसैन तुमको हमारी अखंडता का सलाम, तुम्हें पटेल की नेहरू की एकता का सलाम, हुसैन तुमको भगत सिंह की वीरता का सलाम, अरे सलाम कहते हैं सुखदेव बिस्मिलो आजाद, सलाम कहता है गांधी का ये अहिंसावाद, सलाम कहता है गांधी का ये अहिंसावाद। और ये मक्ते कभी बंद फरमाइएगा कि हुसैन सिप्ते रसूले खुदा सलाम अलैह, हुसैन सिप्ते रसूले खुदा सलाम अलैह, हुसैन इब्ने अली मुर्तजा सलाम अलैह, हुसैन लख्ते दिले फातिमा सलाम अलैह, हुसैन अखिये हसन मुजतबा सलाम अलैह, हकीर मदह सराय शहे नजफ का सलाम, कबूल कीजिए मौला दिले शरफ का सलाम। गुजारिश है जनाब मुजफ्फर इमाम साहब से, दो शेर पढ़ दिए, शिरकत तो हो कम से कम, हाँ शिरकत हो जाए। ये तो मालूम है कि मतलब आप लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं और ये बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है, मगर कम से कम जश्न में मौला अब्बास की शिरकत होनी चाहिए, ये दरिया दिली का सबूत है। मुजफ्फर इमाम साहब, इसके बाद मुसलसल बैरूनी शोरा पढ़ेंगे। मिलकर हज़रत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर सलवात पढ़ते हज़रात। एक मिनट कि जश्न अब्बास होने वाला है, सुनिए जरा बतौर खास, बस एक रहमत जहाँ भी चलाते हैं कि जश्न अब्बास होने वाला है, जश्न अब्बास होने वाला है, यानी ईमान जगने वाला है, यानी ईमान जगने वाला है। तो सुने शेर बतौर खास कि बावफा सारे मुस्कुराएंगे, बावफा सारे मुस्कुराएंगे, बेवफा आज रोने वाला है, बेवफा आज रोने वाला है। और ये भी शेर बतौर खास सुने हज़रात कि रोने वाला तुम्हारा रहबर है, सुने हज़रात जहाँ भी हज़रात है कि रोने वाला तुम्हारा रहबर है, मेरा हिजरत में सोने वाला है, मेरा हिजरत में सोने वाला है। एक से बाबा हज़रात बस ये चार मिसरे हज़रात समाप्त होना बतौर खास, चार मिसरे भी कहा गया। सुने हज़रात जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है तमाम मोमिन के हवाले कि शहरे बाराबंकी में, शहरे बाराबंकी में जश्न हम मनाते
शहरे बाराबंकी में जश्न हम मनाते हैं, बेवफाओं को मिलकर हम सभी जलाते हैं, को मिलकर हम सभी जलाते हैं। बतौर मिश्रा बतौर हजरत की सख्तियां हजारों हो या खिंची हो दीवारे, बावफा की महफिल में बावफा ही आते हैं, बावफा की महफिल में। सल्लल्लाहु मुसलसल 1 2 3 4 शायर, मुसलसल 4 शायर यहाँ से पढ़ेंगे। तो अब बहुत देर तक आप लोग आराम कर लिए, इसीलिए मैंने भी सोचा था कि मोमिनीन जो किसी ज़रूरत के तहत बाहर गए हैं वो एकदम ज़रूरियात से फारिग हो जाएं, उसके बाद में यहाँ से मुसलसल मैं 4 शायरों को आवाज़ दूंगा। और शायरों को भी वक्त का पता है, अब यहाँ से कोई पाबंदी और कैद की ज़रूरत नहीं कि शायरों पर कोई पाबंदी लगाई जाए कि इतनी देर पढ़ना है उतनी देर पढ़ना है। वो शायर ही नहीं है जिसके अंदर सेंस ना हो। तो शायर बाकायदा जानता है कि मुझे कितनी देर पढ़ना है, मगर आप लोगों से गुजारिश है जो अभी 2 4 10 लोग बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम अंदर आ जाए। और भाई ये सिमट के यहाँ सामने आ जाए, कैमरा ये सामने है, तो कैमरे में जब तस्वीर जाए कल तो ये पता चले कि लोग महफिल में थे। उठ के आ जाए इधर सामने, हाँ इधर सामने आ जाए सब लोग, ऐसे बैठे तो अच्छा लगेगा भाई, थोड़ा सा सिमट के आ जाए। हाँ ये अच्छी बात है। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, आ जाओ आ जाए। हाँ थोड़ा सा सिमट जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि कैमरे में कल तस्वीर अच्छी आए बाराबंकी की। हाँ बहुत अच्छा। और मैं यहाँ से तरन्नुम के बेहतरीन शायर को आवाज दे रहा हूँ, और जो लोग बाहर अभी भी हैं उनसे गुजारिश है जल्दी से आ जाएं। इसीलिए मैं एक मतलब 3 शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि अजब जहादे लबे शीर खार होता है। सब बोल सकते हैं और तेज बोल सकते हैं, खाने का इंतजाम भी अंजुमन ने किया। अजब जहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। ऐसे बोले तो जश्न लगे कि यहाँ जश्न हो रहा है। 1000 अजब जहादे लबे शीर खार होता है। कशिचा शेर पढ़ रहा हूँ। अजब जहादे लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। तो निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, सभी से पहले फलक सोगवार होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे हैदरी। 1000 लोग रहे ना सुने, मैं एक इलाके का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 500-600 लोग रहते हैं मगर इतनी दाद नहीं मिलती। उसका नाम नहीं लूंगा, नहीं तो ऑनलाइन चल रहा है, सुन लेंगे तो फिर नाराज हो जाएंगे। सावन भाई जान गया, शरर भाई जान गया, सोहेल साहब जान गया, मुनव्वर भी जान गया, जो शोरा मुसलसल पढ़ने जान गया। 2 शेर। अजब जहाद है लबे शीर खार होता है, 1000 सर है मगर एक वार होता है। वो कहते आब हो सजदा हो या तवस्सुल, वो कहते आब हो सजदा हो या तवस्सुल हो, यहाँ जो होता है वो पहली बार होता है। अरे इसीलिए तो दोबारा नहीं हंसे असगर कि मौजिज़ा तो फकत एक बार। आखिरी शेर। थकता होता नहीं हूँ शेर पढ़ने में, मगर सामने सुनना शुरू करे। हाँ ऐसे ही नहीं बैठे रहिए। कोई बहुत अच्छा सुनेंगे। आखिरी शेर।
अजब जिहाद लबे शीर खार होता है, हजार सर है मगर एक बार होता है। निकल के चांद खबर देता है मुहर्रम की, समी से पहले फलक सोगवार होता है। इसीलिए तो दोबारा नहीं हंसे असगर के मौजिज़ा तो फकत एक बार होता है। तो दबा के तवज्जो, दबा के दांतों में दरिया चले हैं यूं अब्बास कि जैसे शेर के मुंह में शिकार। दांतों में दरिया चले, फिर मजमा बेदार है। मुट्टू भाई जल्दी से अंदर आ जाइए। देखिए मजमा 3 बजने वाला है, उसके बाद दाद दे रहा है। जब शेर अच्छे पढ़े जाएंगे तो बिल्कुल दाद मिलेगी। अब किसी शायर को शिकायत नहीं होने वाली। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब सावन हल्लौरी साहब से तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवा से इस्तकबाल। और आगे बोलूं? अस्सलाम वालेकुम। सारी शोराए कराम की हालत सामईन से बेहतर कौन जान सकता है। बहरहाल में जो टूटा फूटा इरशाद क़ल्ब ज़हरा कछ लिख देना, क़ल्ब ज़हरा कछ लिख देना, नाज़िशे वालिदैन लिख देना। जिंदाबाद। क़ल्ब थोड़ा सा मुझे भी अपनी मोहब्बत दे दीजिए, ऐसा न लगे कि मैं वाकई क़ल्ब ज़हरा कछ लिख देना, नाज़िशे वालिदैन लिख देना। सुने गुड्डू भाई, मर भी जाऊं तो दफन करके मुझे कब्र पर या हुसैन लिख देना। थोड़ा बेदार माशाअल्लाह। क़ल्ब ज़हरा कछ लिख देना, नाज़िशे वालिदैन लिख देना। मर भी जाऊं तो दफन करके मुझे कब्र पर या हुसैन। एक सलवात के साथ मुकामी समझ के आप हम लोगों को जो बचे सुन लीजिए। मैं 4 मिसरे और हाजिर करता हूं समाज में। दुनिया में उस बशर की अलग शान होती है, जिस पर रसूल दी मेहरबान होती। सुने नारा अली का सबसे लगाया ना जाएगा, जिक्र अली से नस्ल की पहचान। और एक 4 मिसरे और समात कर ले। ज़ुहूरे वारिसे दुल्दुल सवार जब होगा, हमें हयात उन्हें मौत बांट जाएगी। देखिए हज़रात, एक
तरफ जमाना है, कुछ न कुछ तो किसी की दस्तार जरूर है। कोई मासूम तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ ग्रेस मार्क है, जो एक तरफ जमाना है, एक तरफ बुजुर्ग है। ज़ुहूरे वारिस दुल्दुल सवार जब होगा, हमें हयात उन्हें मौत बांट जाएगी। जो बदकलामियां करते हैं खामनाई पे, बांट जाएगी। जो लोग कहते हैं क्या है ये भी समय तमाम, ज़बान देखना उन सब की काटी जाएगी। जिनके घर पर चमे अब्बास सजाया न गया, भाई भाई में वहां प्यार भी पाया। सुनिएगा गाजी अब्बास का जिक्र, उनका दम उनके गले में ही अटकते देखा, जिनसे मजलिस का तबर्रुक कभी खाया। और चार मिसरे और समाप्त करें। कुछ लोग अपने लोग हैं जो सेध लगाए हैं, समाप्त करें। अपने लोग ही तो बहुत से हैं जो किसी ने किसी जो बुग़्ज़ शाह में अपनी ज़बान खोलते हैं, वो लोग अपनी शराफत में जहर घोलते हैं। हलाल ज़ादों की पहचान है ज़ादारी, हराम ज़ादे अज़ा के खिलाफ बोलते। एक सलवात और पढ़ दीजिए हज़रात। गाजी अब्बास के हवाले से एक बदला दो तीन शेर हज़रात की तबीयत थोड़ा नासाज है, इसलिए जो अंदाज है शेर शेर आप सुन रहे हैं। जीत कर लम्हों नहरे अलकमा, सुनिए अब्बास ने जीत कर लम्हों में नहरे अलकमा, अब्बास ने मैं अली का शेर हूँ बतला दिया। अब्बास ने सूखे पत्तों की तरह उड़ने लगी फौजे यजीद, यूं चलाई टूटे नेज़े की हवा। अब्बास ने बस तुम में जो भी मर्द हो वो हाथ मेरा रोक ले, करके ये ऐलान मुश्किज़ा भरा। अब्बास ने जो ये कहता था हुसैन इब्ने अली बैत करो, तो लानत का उसे पहना दिया। अब्बास ने मैं का शेर और हमारे बड़े भाई ने वफा
अब्बास का जिक्र किया, सबने अपने तरीके से शेर कहे हैं, एक ये भी लिख लीजिएगा। कह रहा है सर झुकाकर आज भी लफ्ज़े वफा, मुझको पाला है सकीना के चचा। बोली थोड़ा अब्बास ने, और ये भी शेर समाप्त करें, हजरत यूसुफ ये मंजर देख कर हैरान है, उम्र भर शबीर को आका कहा। अब्बास ने अब कोई इस नहर पर पहरा लगा सकता नहीं, बहते पानी पर ये खून से लिख दिया। ख्वाहिशे दीदारे जन्नत क्यों हो है सावन मुझे, जब दरे शबीर पर बुलवा लिया। अब्बास ने आवाज बहुत गिरफ्ता है, एक सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहमद फराज की गजल है, मैं एक शेर पढ़ दे रहा हूँ, बहुत मशहूर ज़माना गजल है। रास्ते याद नहीं, राहनुमा याद नहीं, मतला अपना कोई मामला नहीं, हदीस रसूल है, इस झेल में ये मतला समाप्त करें। कितना इत्तेफाक आप समाप्त, थोड़ा सा मेरे ऊपर रहम खाइए, थोड़ा सा आवाज, मेरा अंदाज दूसरा है लेकिन थोड़ा सा शेर ही से। क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? कितने समाज के, क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? क्या मुसलमानों को, क्या मुसलमानों को, थोड़ा सा, क्या मुसलमानों को ये कौले नबी याद नहीं? वो हलाली ही नहीं जिसको अलिया, वो हलाली ही नहीं जिसको, भाई देखिएगा, नहीं मालूम अज़ा खाने का रास्ता जिनको, नहीं मालूम, नहीं मालूम अज़ा खाने का रास्ता जिनको, इसका मतलब उन्हें जन्नत की गलियां। वाह वाह, मिलके सुने, जिनका ये शेवा है घर से निकलते हैं इंशाल्लाह जरूर दादो तहसीन से दुआओं से नवाजेंगे। मुश्किलों गौर से सुन लो मेरी जान ना बढ़ो, मुश्किलों गौर से सुन लो मेरी जान ना बढ़ो, उसको ढूंढो के जिसे नामे अलिया, उसको ढूंढो के। हम भी कई मुसद्दस रखते हैं अपने जहन में, 10-12 मुसद्दस पढ़ते हैं, मशहूर ज़माना है, लेकिन ये हुस्न इत्तेफाक है कि थकावट की वजह, तबीयत की वजह से समाज दो शेर इसके लिए अच्छा पढ़ रहे हैं समाज। इसलिए शेख के सजदों की कोई कदर नहीं, वाह,
इसलिए शेख के सजदों की कोई कदर नहीं, रब तो है याद मगर रब का वलिया। वाह नारे हैदर, रब तो है याद मगर। और दो शेर इस पे तो यहाँ पे तो अपने लोग बैठे हुए हैं, दूसरे लोग भी दादो तहसील से नमाज़ थोड़ा सा बोल लीजिए, सर्दी की रात है, बोलना बहुत जरूरी है। समात इरशाद हर सबक याद है। इमाम हुसैन का गम मनाने वाला आपको कभी आतंकवादियों की लिस्ट में नहीं मिलेगा। समातों के हवाले बंद पेश कर रहा हूँ। मौला अब्बास के मानने वाले बैठे हुए हैं, अपने हाथ की बाजुओं की मछलियों को खोलिएगा और अपने लबों को देखिएगा। जब कभी अहले अज़ा घर में सजाते हैं, जब कभी अहले अज़ा घर में सजाते हैं अलम, दुश्मने शह के कलेजे को जलाते हैं अलम। जब कभी अहले अज़ा घर में सजाते हैं अलम, दुश्मने शह के कलेजे को जलाते हैं अलम, दुश्मने शह के कलेजे को जलाते हैं अलम। अरे रास कब नस्ले यजीदी तुझे आते हैं अलम, सिर्फ दुनिया में वफादार उठाते हैं। रास कब नस्ले यजीदी तुझे आते हैं अलम, सिर्फ दुनिया में वफादार उठाते हैं, सिर्फ दुनिया में वफादार उठाते हैं अलम, सिर्फ दुनिया में वफादार उठाते हैं अलम। इसकी अजमत के कसीदे भी लिखे जाते हैं, चूमने इसके फरेरे को फलक आते हैं। कसीदे भी लिखे जाते हैं, चूमने इसके फरेरे को फलक आते हैं, चूमने इसके फरेरे को मलक आते हैं। समातों के हवाले मत्ता पेश खिदमत है कि कामयाबी की अलामत है जरी तेरा अलम, कामयाबी की अलामत है जरी तेरा अलम, दहर में बाइसे राहत है जरी तेरा अलम। वाह कामयाबी की अलामत है जरी तेरा अलम, दहर में बाइसे राहत है जरी तेरा अलम। अरे देखना भी तो इबादत है जरी तेरा अलम, देखना भी तो इबादत, देखना भी तो है जरी तेरा अलम। अब भी तस्वीर हिफाजत है जरी तेरा अलम, अब भी तस्वीर हिफाजत है जरी तेरा अलम। नज़्म जिस घर पे जरी तेरा अलम होता है, उसको बस हजरत शब्बीर का गम होता है। नज़्म जिस घर पे जरी तेरा अलम होता है, उसको बस हजरत शब्बीर का गम होता। नारे हैदरी। देखिए कामयाब साहब और अच्छा पढ़ते हैं, मैं वाकिफ हूँ इन चीज़ों से, इसलिए कि रोज़ का काम मेरा यही है निजामत करना। तो मैं देखता रहता हूँ इतनी मेहनत करने के बाद मुज़फ़्फ़र साहब, कामयाब साहब, ये लोग शेर पढ़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और नहीं तो ये जस्ट एक दिन का मेहनत का नतीजा नहीं, कई दिन की मेहनत का नतीजा है। तो आँखों की सुर्खी बता रही है कि कई रातों से इस जश्न की फिक्र में सोए नहीं ये बच्चे। मौला इनकी मेहनतों को कामयाब करे। और कबूलियत जश्न की ये नहीं है कि बहुत मजमा हो, बहुत लोग सुन रहे हो, लोग खड़े हो गए हो, एक हंगामा हो रहा हो। कबूलियत जश्न की हम जिसके लिए जश्न कर रहे हैं वो कबूल करें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि शहजादी कौनैन इसको अपनी बारगाह में कबूल करें, इन बच्चों की मेहनतों को, और इनको दिन दूनी रात चौगनी दौलत दें कि जश्न और बेहतर हो सके। अब दो शायर मेरी फेहरिस्त में हैं और एक उस्ताद शायर मेरी फेहरिस्त में है। मैं सबसे पहले एक तरन्नुम के शायर को आवाज़ दे रहा हूँ इस वक्त, एक तरन्नुम का शायर। उसके बाद में यहाँ से तीन शख्सियतें मैं बता दूँ। उस्ताद शायर जनाब अशरफ संदेलवी साहब हैं, और आली जनाब मौलाना अशरफ नकवी साहब हैं, और जनाब सुहेल बस्तवी साहब। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त शेर पढ़ने का भी कोई मौका महल नहीं है, तो मैं ये चाहता हूँ कि
इस वक्त आवाज दी जाए जनाब मोहतरम सुहेल बस्तवी साहब को। तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन जश्न सलामुन अलैकुम। एक बेहद ही कामयाब जश्न की मुबारकबाद और दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आप सबको शादोबाद रखे। ये भी वक्त नहीं कि मैं कहूँ कि इधर आइए, जो जहाँ बैठा है और ये दुआ है, ये यकीनन और अभी जाहिद भाई कह रहे थे आंखें बता रही हैं अंजुमन और इनके अराकीन और मोमिनीन क्या मेहनतें हैं। इस वक्त तक जो बैठे हुए हैं मौला अब्बास आप सबको शादोबाद रखें। शहजादी आप सबसे राजी हूँ, शरद भाई मौजूद हैं, मैं बस 15 से 16 मिनट में हिम्मत है एक कलाम और अभी अलम क्या बेहतरीन मुसद्दस पेश कर रहे थे। कामयाब सल्लल्लाहु मौला को सलामत रखे। ये परचम लगा हुआ है और ये मौला अब्बास के गुलाम और मौला अब्बास का अलम उठाने वाले मौजूद हैं। जिस इलाके में हम रहते हैं अलम उठाने का एक तरीका है, वो आपने देखा होगा जो अलमदारी करते हैं, मंजर आंखों में रखिए जगह सलवार पढ़ते मोहम्मद बाबा मतलब देख ले। हाथों में हम जरी तेरा परचम उठाए हैं, हाथों में हम जरी तेरा परचम उठाए हैं। ऐसा लगा वफा को गले से लगाए हैं, हाथों में हम जरी तेरा परचम उठाए हैं। ऐसा लगा वफा को गले से लगाए हैं। ऐसा लगा वफा को गले से लगाए हैं। परचम से उतरे फूल फरिश्ते उठाए हैं। परचम से उतरे फूल फरिश्ते उठाए हैं। बाग़े जिनाने उनसे तबर्रुक मंगाए हैं। बाग़े जिनाने उनसे तबर्रुक मंगाए हैं। रहता है अपने हाथों में अब्बास का अलम, हम वो नहीं के जिनके कदम लड़खड़ाए हैं। ऐलान जल्दी जल्दी सुन ले, ऐलान हो गदीर का या मजलिसों का हो। कुछ लोग खुद ही कान को बहरा बनाए हैं। निकले शेर सुन ले, निकले हैं लेके कांधों पर सरवर का ताजिया। निकले हैं ले
महसूस हो रहा है कि काबा उठाए हैं, महसूस हो रहा है कि काबा उठाए हैं। बड़ी बहस होती है, बहुत बहस होती है, लेकिन ये क्यों माने? उन बेवफा सहाबियों से हमको क्या गरज, उन बेवफा सहाबियों से हमको क्या गरज, मैयत तलक रसूल की जो छोड़ आए हैं, मैयत तलक रसूल की जो छोड़ आए हैं, हाथों में हम जरी तेरा परचम उठाए हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए यहाँ से एक मतलब और 3-4 शेर और समाप्त कर ले आखिर में। देखिए मिसरा था कि करबला करबला जन्नत करबला के सामने, जन्नत करबला के सामने। ये सादे सादे शेर हैं, उसे तज़मीन के लिए सलवात पढ़ें तो मैं कोशिश करूँ कुछ पढ़ने के लिए। देखिए मौला अब्बास का जश्न है और अलमदार बैठे हुए हैं, आप सबको शामिल कर रहा हूँ। अकीदा का मतला है, आप सबकी तरफ से आपका अकीदा है। आखिर कोशिश करा सलवात पढ़ें, मैं हाजिर कर देता हूँ। परचमे अब्बास हाथों में उठा के सामने, चंद अशार की हिम्मत शरर भाई के लिए एक माहौल बन जाए। परचमे अब्बास हाथों में उठा के सामने सामने, हम यूं ही महशर में जाएंगे खुदा के सामने। परचमे अब्बास हाथों में उठा के सामने। दुनिया हैरान है, अंगुष्ठ बदंदा है, कौन लोग हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में, जुलूसों में। लेकिन क्या बात है, अरे क्यों भला झुक जाएंगे जुल्मो जफा के सामने, क्यों भला झुक जाएंगे जुल्मो जफा के सामने। हम चरागों को जलाते हैं हवा के सामने, हम चरागों को जलाते हैं हवा के सामने। देखे इस जमीन पे पिछले 1-2 महीने में तमाम उलमाए कराम और उस्ताद शुरा ने देख एक कोशिश, एक शेर जो मुझे बेहद अजीज है, देख ले। करबला जन्नत की जन्नत करबला के सामने, हम चरागों को जलाते हैं हवा के सामने। मेरी आँखों गमे दुनिया में आंसू छान कर, गमे दुनिया में आंसू छान कर, मुझको शर्मिंदा ना करना फातिमा के सामने।
मुझको शर्मिंदा न करना फातिमा के सामने। अरे मुस्कुराना है कयामत, जब मुस्कुराना है कयामत, होता क्या फिर सोचिए। खुल के कर बेशीर हंसता हुरमुला के सामने, खुल के कर बेशीर हंसता हुरमुला के सामने, खुल के गर बेशीर हंसता हुरमुला के सामने। शामियों गर तुमको लगता है कि बूढ़े हैं हबीब, शामियों गर तुमको लगता है कि बूढ़े हैं हबीब, शामियों गर तुमको लगता है कि बूढ़े हैं हबीब, देख लो कुछ देर को मक्तल में जाके सामने, देख लो कुछ देर को जाके सामने। शब आशूर एक खैमे का मंजर है, सामने यूं वेगा करना, यूं इब्ने साद को ललकारना, यूं वेगा करना, यूं इब्ने साद को ललकारना। बच्चों को ज़ैनब सिखाती है बिठा के सामने, बच्चों को ज़ैनब सिखाती है बिठा करबला जन्नत करबला के सामने। यूं वेगा करना, यूं इब्ने साद को ललकारना, बच्चों को ज़ैनब सिखाती है बिठा के सामने। करबला जन्नत के सामने ये संवरती रहती हैं एक दूसरे को देख कर, ये संवरती रहती हैं एक दूसरे को देख कर। करबला जन्नत के जन्नत करबला के सामने, मनक़बत अरे मनक़बत पढ़ता नहीं हूँ, वाह वाही को सुहेल, मनक़बत पढ़ता नहीं हूँ, वाह वाही को सुहेल। बस मेरे अशआर पहुँचे फातिमा के सामने, बस मेरे अशआर पहुँचे फातिमा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये संवरती रहती है एक दूसरे को देख कर। करबला जन्नत के जन्नत करबला के सामने, मनक़बत पढ़ता नहीं हूँ, वाह वाही को सुहेल। बस मेरे अशआर पहुँचे फातिमा के सामने। न मस्जिद में अज़ा होती, न सजदों का पता होता, अगर एक पल को भी
तस्बीह का पहरा हटा होता उतरती आयत ही किसकी शान में आखिर किसे उम्मे अबीहा मुरसले दीने कहा होता फरिश्ते रोटियों को मांगने फिर किस के घर जाते कहा रिजवान ने हसनैन का कपड़ा सिला होता कहा फिर पंजतन के नाम की महफिल सजी होती कहा तोहफा किसा सा हम गरीबों को मिला नबी से अली से हसन इनसे हुसैन इनसे अगर ज़हरा नहीं होती तो फिर दुनिया क्या होता। नारे हैदरी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदर सुहेल बस्तवी साहब बारगाह मौला में खिराज अकीदत पेश फरमा रहे थे। मैं सोच रहा था कि पहले भी इतना ही मजमा होता तो अच्छा होता, इसलिए कि शायरी अब सुनी जा रही है, बाकायदा बैठे हुए हैं लोग और बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब दो शायर मेरे दरमियान में बचे हुए हैं, एक जनाब कशिश संदेलवी साहब हैं और दूसरे अली जनाब मौलाना शरन नकवी साहब। तो मैं 4-5 शायरों तो पढ़वा चुका हूँ, कुछ शेर नहीं पढ़ा, मगर ये सुहेल साहब जब कलाम पढ़ रहे थे तो मुझे मौलाना का मिसरा याद आ गया कि फातिमा जब बाल खोलेंगी खुदा के सामने, ये मिसरा याद आ गया। उसमें शुअरा की तादाद कम थी, मौलवियों की तादाद ज़्यादा थी। हमारे इमाम भाई कुछ कहना चाहेंगे? इनाम जो तकसीम होंगे, पर्चियाँ बढ़ चुकी हैं, वो भी जो है इनाम लेके जाएंगे। जो वो तो पर्चियाँ जो ले चुके हैं, मेरे ख्याल से भी इसमें जाने वाला कोई नहीं है कमर भाई, ये सब मर्द मुजाहिद हैं और ये बैठे हुए हैं, ये शेर सुन के जाएंगे। मुझे यकीन है जो पर्चियाँ बढ़ चुकी हैं तो अपने जो इनामात तबरुकात तकसीम होंगे वो अपने तबरुकात तब लेके जाएं। मिसरा क्या हुआ था कि मौआना में मिसरा हुआ था, फातिमा जब बाल खोलेगी खुदा के सामने, तो इसमें मौलवी ज़्यादा थे, शायरों की तादाद थोड़ी कम थी, मौलवियों की तादाद ज़्यादा थी। तो मीसम सईदी साहब ने मतलब कहा कि दुश्मने मातम को महशर में बुला के सामने फैसला होगा तमाम अहले अज़ा के सामने। कोई बात नहीं, ऐसे ही सुनिए, इसकी दाद ले चुका हूं मैं पूरे हिंदुस्तान में। दुश्मने मातम को महशर में बुला के सामने फैसला होगा तमाम अहले अज़ा के सामने। उरूजुल हसन मीसम साहब ने कहा कि फातिमा से करबला तक, करबला से आज तक हम जलाते ही रहे शब में हवा के सामने। थोड़ा मन बना ले, शेर पढ़ो। फातिमा से करबला तक, करबला से आज तक हम जलाते ही रहे शब में हवा के सामने। मौलाना दिलकश गाजीपुरी साहब ने कहा मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। जब मौलवी शेर कहते हैं तो ऐसा ही शेर कहते हैं शरन नकवी साहब को, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। बस तीन शेर, मैं सिकंदर तो नहीं, मैं हूं अज़ादारे हुसैन। हाथ खाली मैं न जाऊंगा खुदा के सामने। कलीम असगर साहब का एक शेर बहुत बड़ा था कि सुबह आशूरा सितम का रास्ता रोके हुए, सुबह आशूरा सितम का रास्ता रोके हुए, सबसे पहले हुर खड़ा था हुरमुला के सामने। एक शेर पढ़ता हूँ धीरे से और उसके बाद 2 शेर बात खत्म। सुबह आशूरा सितम का रास्ता रोके हुए,
हाफिज कासिम जरवली साहब का शेर पूछे मूसा अली से जो गुजर कर आई हो सांस भी लेता नहीं मैं उस हवा के साथ। दाद दे सकते हैं, शेर बड़े हैं। पूछे मूसा अली से जो गुजर कर आई हो। हिलाल नकवी साहब कहता इसलिए बोलता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला, इसलिए बोलता हूं मैं चेहरे पे खाके करबला। मुंह दिखाना है मुझे एक दिन खुदा के सामने। बिलाल कासमी साहब ने कहा अरे मस्जिदों ने कह के ये रुखसत किया सवार को, ये दुआ मांगेंगे हैदर की दुआ के। ये शेर सबसे बड़ा था, माइक से हट गया। कामयाब जश्न शेर सुन लेना मुजफ्फर भाई, वाकई बहुत अच्छा पढ़ा। शेर सुनना, मौलाना कौन आ रहे हैं? अब्बास इरशाद शेर पढ़ने के लिए आ रहे हैं। एक शेर सुनाता हूं उनका, दूसरा वाला नहीं सुनाऊंगा, लखनऊ में सुनाऊंगा, दूसरा वाला वही सुनाया जा सकता, मगर ये शेर सुना रहा हूं कि मस्जिदों ने कह के ये रुखसत किया सवार को, ये दुआ मांगेंगे हैदर की दुआ के सामने। शेर अपने वजूद से बड़ा दाद दे या न दे, मस्जिदों ने कह के ये रुखसत किया सवार को, ये दुआ मांगेंगे हैदर की दुआ के सामने। तो झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत, सजदे शबीर जब पहुंचा खुदा के साथ। झुक गई सब मस्जिद, झुक गई सजदे में सारी मस्जिदें काबे समेत, सजदे शबीर जब पहुंचा खुदा के सामने। आइए हजरात, मैं गुजारिश कर रहा हूं, मैं हूं नब्बाज़े अदब, राज़े अदब जानता हूं, फिक्र को शेर बना देने का ठप जानता हूं, कौन सी बात का वक्त आता है कब जानता हूं, मैं तो लफ्ज़ों का हसब और नसब जानता हूं। मेरा दम है जो ये तूफ़ान हुआ करते हैं, वरना अल्फाज तो बेजान हुआ करते हैं। मैंने पहले कहा था कि शेर पढ़ के महफिल में कामयाब हो जाना, किसी महफिल को कामयाब कर देना, ये मुकम्मल शायरी की दलील नहीं है। शायर का असली राज जब खुलता है जब वो किताब पर शाया होता है ना। तो जब किताब आ जाए मंजर आम पे तो मुस्तनद शायरों की फहरिस्त में आता है। यहाँ पे दो शायर ऐसे हैं जो साहिब किताब हैं, आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब, ये साहिब किताब, बल्कि एक किताब तो इन्होंने हमको ऐसी दिखाई और हदिया फरमाया कि मैंने शायरी भी नहीं शुरू की थी, मैंने निज़ामत भी नहीं शुरू की थी, तब इनकी किताब शाया हो चुकी है। ऐसी शख्सियतें हैं। जनाब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त, जनाब शरर नकवी साहब तो नहीं है, नहीं देख रहा था, कोई बचा तो नहीं है अभी, नहीं कोई कामयाब पढ़ चुके हैं, कोई बचा नहीं है। कशिश संदेलवी साहब को आवाज़ इसलिए दे रहा हूँ और दोहरी मुबारकबाद के साथ, एक ये कि जश्न में बहुत खूबसूरत फहरिस्त बनाई, ये अलग बात है कि जब अपने भाई शाना हटा लें तो कोई बड़ी से बड़ी बिल्डिंग गिरने के तही आमादा हो जाती है। तो कोशिश इन लोगों की भरपूर है, कोशिश में कमी नहीं। कोई बानियान में से कोई महफिल को नहीं कामयाब कर सकता। बानी अच्छे शायर बुला सकते हैं, अच्छी लाइटें लगवा सकते हैं, अच्छा डाइस लगवा सकते हैं, अच्छा माइक लगवा सकते हैं, मगर जश्न को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी शहर के लोगों की होती है, आवाम के लोगों की होती है, और सबसे पहले पड़ोसियों की जिम्मेदारी होती है। अगर एक रात जाग जाते तो क्या ऐसा नहीं था कि एक साल की बीमार हो जाते, ऐसा नहीं था, मगर खैर जिसका जैसी मर्ज़ी है उस तरीके से जागता है। अल्लाह तौफीक दे सबको जश्न में आने की। कशिश साहब और कमर इमाम साहब और आपकी पूरी टीम के लोगों की मेहनतें कामयाब हैं। ऐसा नहीं है कि दो लोग आएँ तो जश्न नहीं होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त जनाब कशिश संदेलवी साहब उस्ताद शायर तशरीफ़ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हमारे शहर के लोग नहीं मौजूद हैं, लेकिन लखनऊ से तशरीफ़ लाए जनाब शहबाब साहब, जिनको लोग नारा मंत्री कहते हैं, अपने नारों से महफिलों को जगह देते हैं, वो मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी में समझता हूँ कि शहर मौजूद है। जबकि बड़ी कुर्बानी है, जिसने ज़ैनब छोड़ दिया जी, बहुत बड़े है, उनकी मोहब्बत है। अभी पढ़ रहे थे
सामने कुछ जो है काफिया बदला हुआ, लेकिन सामने 4 मिसरे कि जिक्र अली किया जो अहले दिल के सामने, जिक्र अली किया जो अहले दिल के सामने, कुरान पढ़ रहा था मैं महफिल के सामने। जिक्र अली किया जो अहले दिल के सामने, कुरान पढ़ रहा था मैं महफिल के सामने। और जिसने अली का नाम लिया एहतराम से, जिसने अली का नाम लिया एहतराम से, गुम करदा रहा आ गए मंजिल के सामने, गुम करदा रहा आ गए मंजिल के सामने, गुम करदा रहा आ गए मंजिल के सामने। और एक होता रदीफ में भी जाहिद भाई ने पढ़ा था, एक मतलब एक शेर उसी रदीफ पे उसी में है कि उसी के दोष पे उम्मत का बार होता है, उसी के दोष पे उम्मत का बार होता है, बशर जो दोषे नबी पर सवार होता है, बशर जो दोषे नबी पर सवार होता है, बशर जो दोषे नबी पर सवार होता है। ये कह के कर दिया इनकार शहन बैत से, ये कह के कर दिया इनकार शहन बैत से। यहाँ तो फैसला बस एक बार होता है, यहाँ तो फैसला बस एक बार, यहाँ तो फैसला बस एक बार होता है, यहाँ तो फैसला बस एक बार होता है। शबाब भाई ये शेर से मुझे बहुत अजीज है, देखिएगा कि तुम्हारे तीर में अय हुरमुला ये काट नहीं, तुम्हारे तीर में अय हुरमुला ये काट नहीं, जिगर के पार तबस्सुम का वार होता है, जिगर के पार तबस्सुम का वार होता है। तुम्हारे तीर में अय हुरमुला ये काट नहीं, जिगर के पार तबस्सुम का वार होता है। मैं जल्दी जल्दी कुछ शरफ साहब के बीच में हायल ले होना चाहता, लेकिन बाकर नकवी साहब कहे गए हमेशा की तरह आप वो 4 मिसरे पढ़ते हैं वो पढ़ दीजिए। शरफ भाई बहुत दिन के बाद है कि ये हमेशा पढ़ देता हूँ मैं, जब हालात ऐसे होते हैं कि अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम। अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, अजब अदा से वो महफिल का एहतमाम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम करे, जला के शम्मा अंधेरों का कत्लेआम करे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन जमीर बेच के हरगिज़ न कोई काम करे, जमीर बेच के हरगिज़ न कोई काम करे, जमीर बेच के हरगिज़ न कोई काम करे। बहुत जरूरी है बढ़ना हयात में, लेकिन जमीर बेच के हरगिज़ न कोई काम करे, जमीर बेच के हरगिज़ न कोई काम करे। ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे। ये कह के बेटे ने ठुकरा दिया हुकूमत को, तेरे गुरूर को कब तक कोई सलाम करे। जो महफिल ऑर्गेनाइज करते हैं उनके हवाले से ये बख्ता कि दुआएं उनकी यकीनन कबूल होंगी कशिश, दुआएं उनकी यकीनन कबूल होंगी कशिश। वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे, वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे, दुआएं उनकी यकीनन कबूल होंगी कशिश। वो आदमी जो बुजुर्गों का एहतराम करे। शबीर भाई मैं हर साल एक कसीदा लिखता हूँ मौला अब्बास के हवाले से। अब मिसरा समाज फरमा लें, चंद अशार हैं जल्दी जल्दी से। मतलब समाज में बतौर खास शरफ भाई देखिएगा, तो भाई देखिए मौलाना देखिएगा कि जब पुश्त पनाही में वफाओं का खुदा हो, जब पुश्त पनाही में वफाओं का खुदा हो, क्यों मेरे चिरागों को भला खौफे हवा हो, क्यों मेरे चिरागों को भला खौफे हवा हो। जब पुश्त पनाही में वफाओं का खुदा हो, क्यों मेरे चिरागों को भला खौफे हवा हो। शेर देखिएगा तो जाहिद भाई शेर देखिएगा कि टूटे हुए नेज़े से भी लड़ता है बहादुर, टूटे हुए नेज़े से भी लड़ता है बहादुर, है शर्त मगर खाना हैदर में पला हो, है शर्त मगर खाना, है शर्त मगर खाना हैदर में पला हो।
टूटे हुए नेज़े से भी लड़ता है बहादुर, टूटे हुए नेज़े से भी लड़ता है बहादुर, है शर्त मगर खाने हैदर का पला हो, ये तुमको अज़ा खाने सरवर से मिलेगा, ये तुमको अदा खाने सरवर से मिलेगा। अरे मजलिस का तबर्रुक हो कि परचम की हवा हो, मजलिस का तबर्रुक हो कि परचम की हवा हो, ये तुमको अदा खाने सरवर से मिलेगा, मजलिस का तबर्रुक हो कि परचम की हवा हो। अब ये शेर मुझे बहुत अजीज शरर भाई देखे, खास तौर से देखे डाइस पे जितने लोग हैं, कि खुल जाए अगर परचम अब्बास दिलावर, खुल जाए अगर परचम अब्बास, खबर शेर देखो, कि खुल जाए अगर परचम अब्बास दिलावर, ये अर्श जो नीला है अभी पल में हरा हो, ये अर्श जो नीला है अभी, ये अर्श जो नीला है अभी पल में हरा हो, खुल जाए अगर परचम अब्बास दिलावर, ये अर्श जो नीला है अभी पल में हरा हो। अब यहाँ से 2-3 शेर समाज फरमाने कि झोंके भी उधर जुल्म सितम के नहीं जाते। जाहिद भाई शेर देखिएगा कि झोंके भी उधर जुल्म सितम के नहीं जाते, गादी ने जिधर तेग से खत खींच दिया हो, गादी ने जिधर तेग से खत खींच दिया हो। ये भी बतौर खास से देखें कि लाजिम है कि मौजों को भी आवाज़, लाजिम है कि मौजों की भी आवाज़ न निकले, लाजिम है कि मौजों की भी आवाज न निकले, जब नहर पे हैदर का पितर बोल रहा हो, जब नहर पे हैदर का पितर बोल रहा हो, लाजिम है कि मौजों की भी आवाज न निकले, लाजिम है कि मौजों की भी आवाज न निकले, जब नहर पे हैदर का पितर बोल रहा हो। अपनी अंजुमन के हवाले से एक शेर में हर साल लिखता हूँ, ये शेर भी समाज फरमा ले कि ज़हरा से दुआ करते हैं अब्बास के नौकर, ज़हरा से दुआ करते हैं अब्बास के नौकर, हर साल इसी शान से ये जश्न वफा हो, हर साल इसी शान से ये जश्न वफा हो। ज़हरा से दुआ करते हैं, ज़हरा से दुआ करते हैं अब्बास के नौकर, ज़हरा से दुआ करते हैं अब्बास के नौकर, हर साल इसी शान से ये जश्न वफा हो। मुख्ता भी समाज फरमा लें, वो घर नहीं छुपता कभी दुनिया की नज़र से। देखें वक्ता भी देखें सरकार कि वो घर नहीं चुपता कभी दुनिया की नजर से, जिस घर पे कशिश परचम अब्बास लगा हो, जिस घर के कशिश परचम अब्बास लगा हो। शुक्रिया। आइए हजरात, अपनी फहरिस्त के आखिरी शायर को आवाज़ दूं तो 3 शेर पढ़ के आवाज़ देता हूं, और ऐसे धीरे धीरे एक मतलब पढ़ूंगा तनवीर नगरवी का, एक शेर पढ़ूंगा बिलाल काज़मी साहब का, और आखिरी शेर पढ़ूंगा, ये अभी तक मैंने खुद नहीं सुना है मगर पढ़ने जा रहा हूँ, कि मंजर में नहीं है पसे मंजर में नहीं है। ये मैंने खुद नहीं पढ़ा है अभी तक, ये ना सुना है। मंजर में नहीं है पसे मंजर में नहीं है, असगर का सिपाही कोई लश्कर में नहीं है। मंजर में नहीं है पसे मंजर में नहीं है, असगर सा सिपाही कोई लश्कर में नहीं है। अकबर की अज़ा दे गई कुछ ऐसा सवेरा, अब शाम कोई हुर के मुकद्दर में नहीं है। अब एक शेर पढ़ रहा हूं बिलाल काज़मी साहब का, और एक शेर पढ़ूंगा सरकार का। हाँ, असगर में मंजर में नहीं है पसे मंजर में नहीं है, असगर सा सिपाही कोई लश्कर में नहीं है। अकबर की अज़ा दे गई, ये भी लखनऊ की शब्बेदारी थी, अकबर की अज़ा दे गई कुछ ऐसा सवेरा, अब शाम कोई हुर के मुकद्दर में नहीं है। एक शेर याद आ गया नैयर जलालपुरी साहब का कि 9 लाख के 9 लाख तो हैरान है, लेकिन 9 लाख के 9 लाख परेशान है, लेकिन हैरान कोई 172 में नहीं है। 9 लाख के 9 लाख परेशान है, लेकिन 9 लाख। अब बिलाल काज़मी साहब कहते हैं कि अब्बास के होते हुए जो चैन से सोए। शेर पढ़ रहा हूं, इसका मतलब नहीं मोमिन का मैं तो जाया कर रहा हूं, मगर शेर कुछ लोग सुन रहे हैं, मगर सुन तो रहे। अब्बास के होते हुए जो चैन से सोए, इतना तो जिगर शाम के लश्कर में नहीं। अब 2 शेर आपके पढ़ देता हूं, एक शेर धीरे से एक तेज के
अब्बास के होते हुए जो चैन से सोए, इतना इसके आओ सब शेर सरवर नवाब साहब के, सुरूर साहब के कभी दिखाऊंगा। हाँ, अब्बास के बाद में सुनाऊंगा कभी। अब्बास के होते हुए जो चैन से सोए, इतना तो जिगर शाम के लश्कर में नहीं है। शेर पढ़ रहा हूं कि जो काट सके मौलाना शरर नकवी साहब को दाद दीजिए। ये कहीं पढ़ा नहीं, खुदा की कसम, के दरिया पे कहा जो काट सके मकसद शब्बीर का चेहरा, इधर दाद दीजिएगा, जो काट सके मकसद शब्बीर का चेहरा, वो धार किसी शिमर के खंजर में नहीं। जो काट सके, अब तारीखी दाद होना चाहिए, आखिरी शेर, जो काट सके। शरर भाई ने भी ये शेर नहीं सुना होगा, अब हम ही से सुना है, इसलिए कि जब अंजुमन पढ़ती तब ये मजलिसें पढ़ा करते हैं, तो अब इनके पास सुना कहाँ होगा, अभी सुना कि कैसा है शेर, कि जो काट सके मकसद शब्बीर का चेहरा, इतना तो वो धार किसी शिमर के लश्कर में नहीं है। तो दरिया पे कहा शेर ने, आए भागने वालों, क्या मर्द कोई शाम के लश्कर में नहीं? हैदर, हैदर, क्या मर्द कोई? आइए हजरात, गुजारिश है, ये पहली बार पढ़ के मैंने भी ट्राई कर लिया कि चलेगा ये शेर, है ना, कि दरिया पे कहा शेर ने, भागने वालों, क्या मर्द कोई शाम के लश्कर में नहीं है। शरर नकवी साहब एक शायरी का एक है, उन्होंने शेर कहा, पहुंचाएंगे दोज़ख में तुझे तेरे मुसल्ले। भूल गया था शेर सरकार आपका। पहुंचाएंगे दोज़ख में तुझे तेरे मुसल्ले, फरसे गमे शब्बीर अगर घर में नहीं। पहुंचाएंगे दोज़ख में तुझे तेरे मुसल्ले, फरसे गमे शब्बीर अगर घर में नहीं है। आइए हजरात, गुजारिश है, आली जनाब मौलाना शरर नकवी साहब तशरीफ ला रहे हैं, नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हजरात, सबसे पहले आप तमाम हजरात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और कमर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और इस अंजुमन गुंचा अब्बासिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इबादत में शामिल किया। ये भी कलाम मैंने भी पहली मर्तबा सुना है इनसे। तो लेकिन मुझे शेर याद आ गया, क्या मर्द कोई शाम के लश्कर में नहीं है, चूँकि गाजी का जश्न है। शेर सुनिए, अब्बास को छोड़ेगा तो मर जाएगा पानी, अब्बास को छोड़ेगा तो मर जाएगा पानी, मुर्दा है वो कतरा जो समंदर में नहीं है। अब्बास को छोड़ेगा तो मर जाएगा पानी, मुर्दा है वो कतरा जो समंदर में नहीं है। चार मिसरों से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ कि गैब से जब आएंगे मौला तो आएगी सदा। गैब से आप अयाम अज़ाए फ़ातिमिया माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मजालिस शहज़ादी के हवाले से होती हैं। अगर आपने वो मजालिस सुनी है और मसाइब आपकी नज़र में है तो मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह यादगार हो जाएंगे। गैब से जब आएंगे मौला तो आएगी सदा, जिनका जैसा जुर्म है वैसी सजाएं पाएंगे। गैब से जब आएंगे मौला तो आएगी सदा, जिनका जैसा जुर्म है वैसी सजाएं पाएंगे। दिल ये कहता है मेरा तस्बीह ज़हरा की कसम, कातिल ज़हरा के पहले हाथ काटे जाएंगे। दिल ये कहता है मेरा तस्बीह ज़हरा की कसम, दिल ये कहता है मेरा तस्बीह ज़हरा की कसम, कातिल ज़हरा के पहले हाथ काटे जाएंगे। आप रात भर मौला अब्बास के फज़ाइल सुनते रहे, मैं मौला अब्बास की इबादत सुनाता हूँ। मिसरे अगर पहुंच जाए
तो गुजारिश है मिल के बोलिएगा, मौला आपको सलामत रखे। कातिल ज़हरा के पहले हाथ काटे जाएंगे, जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। अपनी खिलकत के न मकसद से फिरेंगे अब्बास। बहुत अच्छा शलवा। जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। अपनी खिलकत के न मकसद से फिरेंगे अब्बास। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा, सर के बल इसलिए घोड़े से गिरेंगे अब्बास। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा। आखिरी वक्त भी आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा। जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। जिसकी मस्जिद में शहादत थी उसी की है दुआ। अपनी खिलकत के न मकसद से फिरेंगे अब्बास। अपनी खिलकत के न मकसद से फिरेंगे अब्बास। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा, सर के बल इसलिए घोड़े से गिरेंगे अब्बास। अल्लाह का सजदा होगा, मौला को सलामत रखे। आखिरी वक्त भी अल्लाह का सजदा होगा, सर के बल इसलिए घोड़े से गिरेंगे अब्बास। दरे बतूल पर जो आने जाने लगते हैं, दरे बतूल पर जो आने जाने लगते हैं, दरे बतूल पर जो आने जाने लगते हैं, वो सूरजों से भी नजरें मिलाने लगते हैं। दरे बतूल पर जो आने जाने लगते हैं, वो सूरजों से भी नजरें मिलाने लगते हैं। हलाल ज़ादों की पहचान एक ये भी है, अली के जिक्र पर ये मुस्कुराने लगते हैं। जो आने जाने लगते हैं, दरे बतूल दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु दरे बतूल पर जो आने जाने लगते हैं, वो सूरजों से भी नजरें मिलाने लगते हैं। हलाल ज़ादों की पहचान एक ये भी है, अली के जिक्र पर ये मुस्कुराने लगते हैं। अली के जिक्र पर ये मुस्कुराने लगते हैं। अज़ा का चांद नमूदार जब भी होता है, अज़ा का चांद नमूदार जब भी होता है, तो हम जमीन पर जन्नत सजाने लगते हैं। अज़ा का चांद नमूदार जब भी होता है, तो हम जमीन पर जन्नत, शेर सुनिए, सुभान अल्लाह, तो हम जमीन पर जन्नत सजाने लगते हैं। करीब आते हैं जब दिन अज़ाए सरवर के, अगर शेर पहुंच जाए तो दुआएं चाहता हूँ। करीब आते हैं जब दिन अज़ाए सरवर के, करीब आते हैं जब दिन अज़ाए सरवर के, तो हम भी तेजी से पैसा कमाने लगते हैं। करीब आते हैं जब दिन अज़ाए सरवर के, करीब आते हैं जब दिन अज़ाए सरवर के, तो हम भी तेजी से पैसा कमाने लगते हैं। अरे सभी लगती है जब जब, तो नामे असगर पर हमारे बच्चे भी पानी पिला रहे। सभी लगती है जब जब, तो नामे असगर पर, सभी लगती है जब जब, तो नामे असगर पर हमारे बच्चे भी पानी पिलाने लगते हैं। शेर मुलाहिजा फरमाइए, हमारे बच्चे भी पानी पिलाने लगते हैं, पानी पिलाने लगते हैं। मेरी ज़बान पर आता है जब भी नामे हुसैन, मेरी ज़बान पर आता है जब भी नामे हुसैन, जब भी नामे हुसैन, मेरे गुनाह फरिश्ते मिटाने लगते। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ज़बान पर आता है जब भी नामे हुसैन, मेरे गुनाह फरिश्ते
फरिश्ते मिटाने लगते हैं, मेरे गुनाह फरिश्ते मिटाने लगते। नमक के आदाद 110 हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम के आदाद भी 110 हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ, मेरे गुनाह फरिश्ते मिटाने लगते हैं, मेरे गुनाह शुमार होता है उनका बुलंद लोगों में जो शाह के दरे दौलत पर आने लगते हैं। शुमार होता है उनका बुलंद लोगों में जो शाह के दरे दौलत पर आने लगते हैं। मैं जब अली के फजाइल बयान करता हूँ, मैं जब अली के फजाइल बयान करता हूँ, नमक हराम सभी दिल मिलाने लगते हैं। मैं जब अली के फजाइल बयान करता हूँ, नमक हराम। अब शेर सुनिए, इस वक्त शायरी सुनने वाले लोग बैठे, मैं शेर पढ़ता हूँ और आपकी समाज का इम्तिहान है। मैं बिल्कुल ये सोच के नहीं पढ़ रहा कि आखिर में पढ़ रहा हूँ, मैं ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि इब्तिदा में पढ़ रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे सुने, मगर कुछ शेर सुना के जाऊंगा ताकि आपको याद रह जाए। मौला आपको सलामत रखे। मेरे गुनाह फरिश्ते मिटाने लगते हैं। शेर सुनिए, मेरे गुनाह फरिश्ते मिटाने लगते हैं, मेरी जबान पर आता है जब भी नामे हुसैन। मेरे गुनाह फरिश्ते मिटाने लगते हैं, जो रोया शाम का लश्कर तो मुस्कुराते हुए, जो रोया शाम का लश्कर तो मुस्कुराते हुए, कहा सगीर ने ऐसे निशाने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, जो रोया, भाई शेर सुनिए, अब शेर सुनिए, जो रोया शाम का लश्कर तो मुस्कुराते हुए, कहा सगीर ने ऐसे निशाने लगते। शेर सुना रहा हूँ, मेरी जिंदगी का तो बहुत बड़ा शेर है और मैं कोशिश करता हूँ कि हर मजमे में ये शेर न पढ़ूं, इसलिए कि बड़ी कैफियत का शेर है। मैंने शेर बनाया, इसमें काफिया सुनिएगा, जो लोग शायरी करते हैं उनसे खास तवज्जो, काफिया मैंने बनाने की कोशिश की है। शेर सुनिए भाई, शेर सुनिए भाई, मौला आपको सलामत रखे। जो रोया शाम का लश्कर तो मुस्कुराते हुए, कहा सगीर ने ऐसे निशाने लगते हैं, कहा हुसैन ने अब्बास जानते थे ये राज, कहा हुसैन ने अब्बास जानते थे ये राज, खुदा का दीन बचाने में शाने लगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, या अब्बास, मौला आपको सलामत रखे। कहा हुसैन ने अब्बास जानते थे ये राज, खुदा का दीन बचाने में शाने लगते हैं, खुदा का दीन बचाने में शाने लगते हैं, खुदा का दीन बचाने में शाने लगते हैं। अली की तेग बिफरती है दश्त में जिस दम, तो मौत के भी कदम डगमगाने लगते हैं। सुभान अल्लाह, तो मौत के भी कदम डगमगाने लगते हैं। अलग 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 ही होते हैं मेरे अली के दीवाने, ये सूलियों को भी मिंबर बनाने लगते हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अलग ही होते हैं मेरे अली के दीवाने, ये सूलियों को भी मिंबर बनाने लगते हैं। सुकून फातिमा ज़हरा हुसैन का वारिस। देखिए सुबह का वक्त है, मैं चाहता हूँ कि इमाम वक्त के लिए कुछ शेर सुन लें आप। सुकून फातिमा ज़हरा हुसैन का वारिस, उलटने वाला है पर्दा हुसैन का वारिस। सुकून फातिमा ज़हरा हुसैन का वारिस, उलटने वाला है पर्दा हुसैन का वारिस। जिना से आएंगे यूसुफ उतारने सदका, कि जब दिखाएगा चेहरा हुसैन का वारिस। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रहे। जिना से आएंगे यूसुफ उतारने सदका, कि जब दिखा, शेर सुनिए, कि जब दिखाएगा चेहरा हुसैन का वारिस। जहां जहां हुसैन का सजदे में सर उतारा गया, जहां हुसैन का सजदे में सर उतारा गया, करेगा फिर वही सजदा हुसैन का। हैदर हैदर
नारे जहां हुसैन का सजदे में सर उतारा गया, करेगा फिर वही सजदा, करेगा फिर वही सजदा हुसैन का वारिस, करेगा फिर वही सजदा हुसैन का वारिस। मैं जब भी रोता हूँ सरवर को दिल ये कहता है, मैं जब भी रोता हूँ सरवर को दिल ये कहता है, मेरे करीब है बैठा हुसैन का वारिस। मैं जब भी रोता हूँ सरवर को दिल ये कहता है, मेरे करीब है बैठा हुसैन का वारिस, मेरे करीब है बैठा हुसैन का वारिस। मैं जब भी रोता हूँ सरवर को दिल ये कहता है, मेरे करीब है बैठा हुसैन का वारिस। ये बात जाके बता दो सितम की हिंदा को, सुभान अल्लाह, ये बात जाके बता दो सितम की हिंदा को, करेगा चाक कलेजा हुसैन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जाके बता दो सितम की हिंदा, ये बात जाके बता दो सितम की हिंदा को, करेगा चाक कलेजा हुसैन का वारिस, करेगा चाक कलेजा। ये बात जाके बता दो सितम की हिंदा को, करेगा चाक कलेजा। रदीफ याद रखिएगा, हुसैन का वारिस पढ़ेगा कुल के फजाइल सितम की बस्ती में, नहीं करेगा तकैया हुसैन का वारिस। भाई सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, पढ़ेगा खुल के फजाइल सितम की बस्ती में, नहीं करेगा तकैया, नहीं करेगा तकैया हुसैन का वारिस। अरे नहीं गवारा, जहां जिक्र मेरे मौला का वहीं लगाएगा नारा हुसैन का। वहीं लगाएगा नारा हुसैन का वारिस। कसूर क्या था जो रोजा गिरा दिया उनका, सवाल ये भी करेगा हुसैन का वारिस। कसूर क्या था जो रोजा गिरा दिया उनका, सवाल ये भी करेगा हुसैन का वारिस, सवाल ये भी करेगा हुसैन का वारिस। कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कि जब बनाएगा रोजा हुसैन का वारिस। कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कि जब बनाएगा रोजा हुसैन का वारिस। वो कल जिन्होंने अज़ियत बतूल को दी थी, वो कल जिन्होंने अज़ियत बतूल को दी थी, उन्हें जलाएगा जिंदा हुसैन का वारिस। माशाअल्लाह, रोज इमामे पर्दादार आएगा इंशाअल्लाह, एक रोज इमामे पर्दादार आएगा इंशाअल्लाह, हाथों में लेके जुल्फ़िकार आएगा इंशाअल्लाह, खूने नबी का विरसादार आएगा इंशाअल्लाह, ज़हरा के दिल का एतबार आएगा इंशाअल्लाह, आबिद शब जिंदादार आएगा इंशाअल्लाह, वो शहीद दुल सवार आएगा इंशाअल्लाह, अस्करी का गुलाजार आएगा इंशाअल्लाह, होगी जब दिल से पुकार आएगा इंशाअल्लाह, ईसा को जिसका इंतजार आएगा इंशाअल्लाह, खुद मुंतजर को इंतजार आएगा, नारा हैदरी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब बनाए कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कि जब बनाएगा रोजा। वो मेरे साथ रहिए आप, ये कलाम मैंने इसलिए सुनाया है आपको कि इस कलाम में मौला अब्बास भी है। कहेंगी फातिमा ज़हरा जियो मेरे मेहदी, कि जब बनाएगा रोजा। भाई बोलिए, जितने लोग बहुत है, अगर ये सब लोग बोल जाएं तो जरूरत नहीं है कि जब बनाएगा रोजा हुसैन का वारिस। वो कल जिन्होंने अज़ियत बतूल को दी थी, उन्हें जलाएगा जिंदा, उन्हें जलाएगा जिंदा हुसैन का वारिस। वो पहले हजरत अब्बास को बुलाएगा, वो पहले हजरत अब्बास को बुलाएगा, फिर उसके बाद लड़ेगा हुसैन का।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। वो पहले हजरत अब्बास ज़ुहूर के बाद का मंजर नज़्म करने की कोशिश की है कि मौला का जब ज़ुहूर होगा तो उसके बाद क्या मंजर होगा। वो पहले हजरत अब्बास को बुलाएगा, फिर उसके बाद लड़ेगा हुसैन का वारिस। सजेगा जंग का मैदान, फिर पसे गैबत। सजेगा जंग का मैदान, फिर पसे गैबत। सितम से छीनेगा दरिया हुसैन का वारिस। सजेगा जंग का मैदान, फिर पसे गैबत। सितम से छीनेगा दरिया हुसैन का वारिस। हुसैन हुसैन आपके प्यासे सहाबियों के लिए भरेगा मश्क सकीना हुसैन का। आपको सलामत रखे। वो पहले हजरत अब्बास को बुलाएगा, फिर उसके बाद लड़ेगा हुसैन का वारिस। सजेगा जंग का मैदान, फिर पसे गैबत। सितम से छीनेगा दरिया हुसैन का वारिस। हुसैन आपके प्यासे सहाबियों के लिए भरेगा मश्क सकीना हुसैन का वारिस। सदा ये आएगी, सदा ये आएगी, हसरत निकाल लो अब्बास, नाज रोकेगा मौला हुसैन का। सदा ये आएगी, हसरत निकाल लो अब्बास। सदा ये आएगी, हसरत निकाल लो अब्बास, नाज रोकेगा मौला हुसैन का वारिस। ये बात सच है, शरर नकली हर मुसीबत से हमें बचाता है आका हुसैन का वारिस। अच्छा, यहाँ से एक चंद बंद पढ़ देता हूँ जिसका उन्वान है मातम। सारे मातमदार बैठे हुए हैं, मैं पढ़ता हूँ। मातम क्या है? अहले गम अहले विला अहले अकीदत सुनिए, अहले गम अहले विला अहले अकीदत सुनिए, मैं बयां करता हूँ एजाज़े मोहब्बत सुनिए, ये भी कुरान मवद्दत की है आयत सुनिए। आज शब्बीर के मातम की फजीलत सुनिए, आज शब्बीर के मातम की फजीलत सुनिए। दीन इस्लाम का, दीन इस्लाम का गद्दार नहीं कर सकता, और शेख का मातम कोई मक्कार नहीं कर सकता। दीन इस्लाम का गद्दार नहीं कर सकता, शेख का मातम कोई मक्कार नहीं कर सकता। अब हमारे बच्चों से सवाल होता है कि ये मातम कहाँ से लाए आप लोग, ये मातम कहाँ से आ गया? तो सुनिए मातम कहाँ से आया। देख हाबील का आदम ने किया है मातम। भैया याद करने वाली शायरी है, याद कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे मातम कब से आया तो कहिए जनाब आदम ने जनाब हाबील का मातम किया। अबुल बशर जो आपके भी बाप हमारे भी बाप, इसका मतलब ये है कि जो लायक औलाद होगी वो मातम करेगी। ना 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 मेरा साथी नहीं है। देख हाबील का आदम ने किया है मातम, और याकूब के घर में भी बपा है मातम, खानाए नूर में हमजा का हुआ है मातम। फिर भी तू पूछता है हमसे कि क्या है मातम, फिर भी तू पूछता है हमसे कि क्या है मातम। जज्बे इश्क के आसार दिखा देता है, और शेख का मातम भी तो शजरों का बता देता है। जज्बे इश्क के आसार दिखा देता है, शेख का मातम भी तो शजरों का बता देता है। मातम, मातम में 4 हर्फ, मीम अलिफ ते मीम। मीम कहता है कि मेराज की जा है मातम, मीम कहता है कि मेराज की जा है मातम, और अलिफ कहता है इंसान की बका है मातम। ते पुकार उठा के तौकीर आता है मातम, मीम फिर बोला मोहम्मद से वफा है मातम। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मीम कहता है कि मेराज की जा है मातम, और अलिफ कहता है इंसान की बका है मातम। ते पुकार उठा के तौकीर आता है मातम, मीम फिर बोला मोहम्मद से वफा है मातम। हाथ शब्बीर के मातम में उठाते रहना, और हो मोहम्मद के वफादार बताते रहना। हाथ शब्बीर के मातम में नारा हैदरी,
के मातम में उठाते रहना। हो मोहम्मद के वफादार, बताते रहना। उनकी गर आंख नहीं नम तो ताज्जुब क्या है, उनकी गर आंख नहीं नम तो ताज्जुब क्या है, दिल में सरवर का नहीं गम तो ताज्जुब क्या है, और सर पर नहीं परचम तो ताज्जुब क्या है, वो नहीं करते हैं मातम तो ताज्जुब क्या है, वो नहीं करते हैं मातम तो ताज्जुब क्या है शरीफों की शराफत का नतीजा मातम, है शरीफों की शराफत का नतीजा मातम। उमर साद के बच्चों से न होगा मातम, उमर साद के बच्चों से न होगा मातम। अब ये तो उमर साद के बच्चे थे, अब शियों के बच्चे सुनिए आप। उमर साद के बच्चों से न होगा मातम, गौर से कौम के बच्चों के सुनो अब हालात, गौर से कौम के बच्चों के सुनो अब हालात। चलना भी आता नहीं, कर भी नहीं सकते हैं बात, इतने कम सीने के माँ बाप नहीं छोड़ते साथ, फिर भी उठ जाते हैं मातम के लिए नन्हे से हाथ। भाई ये ऐसी बात तो नहीं है जो किताबी बात हो, मैंने पढ़ी हो आपने ना पढ़ी हो। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, सारे बच्चे के जो माँ की जबान नहीं जानते, वालिद की जबान नहीं जानते, जैसे नन्हे नन्हे बच्चे जुलूसों में आते हैं, जैसे नौहों की सदा सुनते मुन्ने मुन्ने हाथ उठ जाते हैं मातम के लिए। किसने मातम सिखाया इन बच्चों को? गौर से कौम के बच्चों के सुनो अब हालात, चलना भी आता नहीं, कर भी नहीं सकते हैं बात, इतने कम सिन है कि माँ बाप नहीं छोड़ते साथ, फिर भी उठ जाते हैं मातम के लिए नन्हे से हाथ। हो आजादारे शहीदीन बताया होगा और इनको मातम अली असगर ने सिखाया होगा। आजादारे शहीदीन बताया होगा, इनको मातम अली असगर ने सिखाया होगा। अब पता नहीं, हमें नहीं पता, आप बताइएगा कि 12 में लॉकडाउन लगा था? अच्छा, मैं मिस्र पढ़ता हूँ। है खबर सबको कि हर संत कज़ा छाई थी, है खबर सबको कि हर संत कज़ा छाई थी, जिंदगानी जहां मौत से घबराई थी, रास्ते बंद थे, बाजारों में तन्हाई थी, सबको मालूम है 2 साल वबा आई थी। जिसने ये अमल किया हो फकत वो बोले, जिसने लॉकडाउन में ये अमल नहीं किया उससे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि बिल्कुल चुप बैठा रहे, ताकि मुझे पता चल जाए कि किसने ये अमल नहीं किया। कैमरे वाले जरा कैमरा घुमा दीजिएगा ताकि ये महफूज हो जाए कि किसने अमल किया है और किसने ये अमल नहीं किया। है खबर सबको कि हर संत कज़ा छाई थी, जिंदगानी जहां मौत से घबराई थी, रास्ते बंद थे, बाजारों में तन्हाई थी, सबको मालूम है 2 साल वबा आई थी। कैद थे घर में, कैद थे घर में, मगर सिलसिलाए गम न रुका और रुक गया सारा जहां, शाह का मातम न रुका। कैद थे घर में मगर सिलसिलाए गम न रुका, कैद थे घर में मगर सिलसिलाए गम न रुका, रुक गया सारा जहां, रुक गया सारा जहां, शाह का मातम न रुका। अब बच्चों का मातम सुना दिया मैंने, अब एक मातम सुनिए बुजुर्गों का। एक दिन मैंने ये काशी के मौला से कहा, सिल रसीदा है बहुत आप, मुझे है ये पता, आपके जिस्म में रहता है मुसलसल राशा, कप कपाते हुए जाता है दहन तक लुकमा, आपके हाथों में आ जाता है ये दम कैसे, आप कर लेते हैं शब्बीर का मातम कैसे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। एक दिन मैंने ये काशी के मौला से कहा, यानी 24 घंटे के अंदर में ये तीसरा प्रोग्राम था। कल पहले मजलिस पढ़ी बिलग्राम में, बिलग्राम मजलिस पढ़ के फिर जौनपुर पढ़ा, जौनपुर पढ़ के यहाँ पढ़ रहा हूँ, अब यहाँ पढ़ के फिर मुझे सुल्तानपुर मजलिस पढ़ना है, सुल्तानपुर मजलिस पढ़ने के बाद रात में सियासत पढ़ना है।
मौला आपको सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आया हूँ तो थोड़ा सा हक अदा कर दूँ, जितने लोग भी हैं कुछ लेके जाएं, ताकि मख्ताए महफिल तक आप यहाँ पर ठहरे हैं तो कुछ मिलना चाहिए। मौला आपको सलामत रखे। एक दिन मैंने ये आशिक़ मौला से कहा, बुड्ढे नहीं, हमारे बुड्ढे नहीं, सिन रसीदा है बहुत आप, मुझे है ये पता, आपके जिस्म में रहता है मुसलसल राशा, कप कपाते हुए जाता है दहन तक लुक़मा, आपके हाथों में आ जाता है ये दम कैसे, आप कर लेते हैं शब्बीर का मातम कैसे, बोले वो खूने हलाली की ग़िज़ा है मातम। वाह वाह सुभान अल्लाह। बोले वो खूने हलाली की ग़िज़ा है मातम और पाकीज़ा अक़ीदों की दवा है मातम। सबकी किस्मत में कहाँ शैतान लिखा है मातम, जिनको ज़हरा ने चुना उनको मिला है मातम, जिनको ज़हरा ने चुना उनको मिला है मातम। सब बराबर हैं, ज़मानों का यहाँ राज नहीं और इश्क़ शब्बीर किसी उम्र का मोहताज नहीं। सब बराबर हैं, ज़मानों का यहाँ राज नहीं। सब बराबर है, ज़मानों का यहाँ राज नहीं। इश्क़ शब्बीर किसी उम्र का मोहताज नहीं। जश्न अब्बास है, बन सुनिए। यूं है अब्बास अलमदार का दिल पर कब्जा, यूं है अब्बास अलमदार का दिल पर कब्जा, जब अलम आता है बढ़ जाती है मातम की सदा। वाह वाह वाह। 8 मुहर्रम को ये मिसरा याद कीजिएगा। 8 मुहर्रम को जब गाजी का अलम निकलता है ना, अलग जोश होता है जवानों में। यूं है अब्बास अलमदार का दिल पर कब्जा, जब अलम आता है बढ़ जाती है मातम की सदा। उस घड़ी होती है हर समत क़यामत बर्पा, बैठ जाते हैं जो हम थक के सरे फर्शे आज़ा, बैठ जाते हैं जो हम थक के सरे फर्शे आज़ा। अरे मातमियों के बहुत नाज उठाते हैं हुसैन, मातमियों के बहुत नाज उठाते हैं हुसैन। दिल ये कहता है हमें दिल से लगाते हैं हुसैन, मातमियों के बहुत नाज उठाते हैं हुसैन। दिल ये कहता है हमें दिल से लगाते हैं हुसैन। ये हाथ का मातम सुना, अब सुनिए पलकों का मातम। जब आपके हाथ में अलम होता है तो दोनों हाथ तो मसरूफ हैं, फिर आप मातम कैसे करते हैं? हाथ आशिक़ अब्बास के अब कर दो कलम, ये कहा ज़ुल्म ने फिर कैसे मनाएगा ये गम। मुस्कुरा कर ये पुकार उठे मेरे दीदाए नम, तुम समझते हो कि बस हाथ करेंगे मातम। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। हाथ आशिक़ अब्बास के अब कर दो कलम, ये कहा ज़ुल्म ने फिर कैसे मनाएगा ये गम। मुस्कुरा कर ये पुकार उठे मेरे दीदाए नम, तुम समझते हो कि बस हाथ करेंगे मातम। पल के बोली दिल एहसास का मातम होगा और हाथ कटवा के भी अब्बास का मातम हो। पल के बोली हाथ कटवा के भी, पल के बोली दिल एहसास का मातम होगा, हाथ कटवा के भी अब्बास का मातम होगा। अब ये बन मुलाहिज़ा फरमाएं, इस बंद का मैंने उन्वान रखा है VIP शिया। जो कहते हैं हम शिया हैं, मगर जब जुलूस निकलता है तो कोने में खड़े होकर ऐसे मातम करते हैं। हाँ, ये VIP शिया है। जबकि ये शिया अगर अपनी अम्मा से पूछें कि अम्मा जान ये बताइए कि हम दुनिया में कैसे आए, तो अम्मा कहेंगी बेटा मेरी शादी हुई थी, मैंने मौला अब्बास से मौला हुसैन से अज़ा खाने में जाके दुआ मांगी, मौला एक बेटा दे दे, मौला ने बेटा दे दिया। फिर दुआ मांगी मौला इसको सेहत दे दे, मौला ने सेहत दे दी। मौला इसको तालीम दे दे, मौला ने तालीम दे दी। मौला कामयाब कर दे, कामयाब हो गया। मौला इसे नौकरी दे दे,
नौकरी मिल गई, और जब पैसे कमा लिए तो जुलूस में आके किनारे खड़े। आपके पास है जो कुछ भी है इस गम की अता, आपके पास है जो कुछ भी है इस गम की अता। मत करो भाई तकल्लुफ से ये मातम शहदा, हमको मालूम है मौला ने दिया है पैसा, हमको मालूम है मौला ने दिया है पैसा। वक्त है खुल के करो मातम सरवर, वरना आपके हाल को बेहाल भी कर सकता है, और जिसने बख्शा है वो कंगाल भी कर सकता है। आपके हाल को नारे हैदरी, एक नारे सलावत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके हाल को बस खत्म हो गया, मुसद्दस मुल्तवी हो गया, आपके हाल को बेहाल भी कर सकता है। जिसने बख्शा है, जिसने बख्शा है वो कंगाल भी कर सकता है। खुद पर जंजीर चलाते हैं मगर जिंदा है, खुद पर जंजीर चलाते हैं मगर जिंदा है। कम्मा भी सर पर लगाते हैं मगर जिंदा है। जख्म जिस्मों पर सजाते हैं मगर जिंदा है। खून हम अपना बहाते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह सलामत रखे उन लोगों की माओ को कि जो जिंदा हैं सेहत के साथ, और जो दुनिया से चली गई है परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ, बैत आपके समाज के हवाले करता हूँ कि खून हम अपना बहाते हैं मगर जिंदा हैं, कम्मा भी सर पर लगाते हैं मगर जिंदा हैं, जख्म जिस्मों पर सजाते हैं मगर जिंदा हैं। खून हम अपना बहाते हैं मगर 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 जिंदा हैं। जिसमें खाकी को बिखरने नहीं देती जहरा, और हम आजादारों को मरने नहीं देते। जिसमें खाकी को बिखरने नहीं देती जहरा, हम आजादारों को आखिरी बार हम आजादारों को मरने नहीं देती जहरा। शह के मातम के मुखालिफ पह जहरा का आजाद, शह के मातम के मुखालिफ पह जहरा का आजाद। ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। शह के मातम के मुखालिफ पह जहरा का आजाद, ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। कभी अपनों कभी गैरों से करता है खिताब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। कैसे करते मातम? ऐसे ऐसे, ये हाथ उठा और ये सीने पे गया। ये सीना है, सीने में दिल है, दिल में धड़कन है, धड़कन में हुसैन है। बैत सुनिए बैत, शह के मातम के मुखालिफ पह जहरा का आजाब। ये उलटता है सितमगारों के चेहरों से नकाब। कभी अपनों कभी खैरों से ये करता है खिताब। ये वो मातम है जो देता है सवालों के जवाब। लोग 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 जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शबीर, हाथ मातम का बताता है यहाँ है, यहाँ है शबीर। हाथ मातम का बताता है। लोग जब पूछते हैं हमसे कहाँ है शबीर, हाथ मातम का बताता है यहाँ है शबीर। हक़ हैदर ही पढ़ूं बस ये हदफ है मेरा। मक्ता सुनने और आपसे इजाजत। हक़ हैदर ही पढ़ूं बस ये हदफ है मेरा। एक काबा है तो एक क़िबला नजफ है मेरा। हक़ हैदर ही पढ़ूं बस ये हदफ है मेरा। एक काबा है तो एक क़िबला नजफ है मेरा। हाँ ये दिल साक़ी कौसर की तरफ है मेरा। हाँ ये दिल साक़ी कौसर की तरफ है मेरा।
करबलाई हूँ मैं, ये भी तो शरफ है मेरा। हाँ ये दिल साकी कौसर की तरफ है मेरा। करबलाई हूँ मैं, करबलाई हूँ मैं, ये भी तो शरफ है मेरा। मैं भी जिंदा हूँ शरर नकवी इसी गम के लिए, मैं भी जिंदा हूँ शरर नकवी इसी गम के लिए। जिंदगी वक्फ है शब्बीर के मातम के लिए, मैं भी जिंदा हूँ शरर नकवी इसी गम के लिए। जिंदगी वक्फ है शब्बीर के मातम के लिए। अच्छा मुख्तारनामा अगर आप लोग सुनने के लिए कह रहे हैं तो पहले मैं 4 मिसरे पढ़ के आपका इम्तिहान लेता हूँ। अगर ये 4 मिसरे आपने सुने तो 2-4 बंद पढ़ दूंगा बहुत जल्दी से, और अगर आपने नहीं सुने तो फिर मैं गुफ्तगू अपनी यही मुलतवी कर दूंगा। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद। मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, मजलूम करबला के तरफदार जिंदाबाद, हिम्मतों की बज़्म के जर्रार जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। मारूंगा इस तरीके से दुश्मन हुसैन के, अब्बास खुद कहेंगे, अब्बास खुद कहेंगे कि मुख्तार जिंदाबाद। रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर, रहवार से बचकर कभी असवार से बचकर भागे हैं जो मैदान में तलवार से बचकर। उन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, जाएंगे कहाँ हजरत मुख्तार से बचकर। उन भागने वालों से शरर इतना तो पूछो, जाएंगे कहाँ हजरत मुख्तार से बचकर। मैं हूँ मुख्तार जमाने से अलग मेरा मिजाज, मैं हूँ मुख्तार जमाने से अलग मेरा मिजाज। उल्फत आले पैगंबर का मेरे सर पर है ताज, मैं शराफत का भरोसा तो तहारत की भी लाज। अपना थोड़ा सा तारुफ में कराऊं तुम्हें आज, सहने बेदार में यादें अज़ली रहती है और मेरे होठों पर सदा नादे अली, मेरे होठों पर सदा नादे अली रहती है। तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ, तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ और लहजे में कयामत का असर रखता हूँ। जिक्र हैदर के लिए हाथ पर सर रखता हूँ, कैद में रह के जमाने की खबर रखता हूँ, कैद में। क्या बात है, कैद में रह के जमाने की खबर रखता हूँ। पैरवे हैदर कर्रार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आजाद तो मुख्तार मुझे कहते हैं। पैरवे हैदर, पैरवे हैदर कर्रार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आजाद तो मुख्तार मुझे कहते हैं। देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास, मेरे होठों पर हमेशा है सनाए अब्बास। जानता हूँ मुझे हासिल है रिज़ाए अब्बास, हिम्मतें देता है मुझको भी खुदाए अब्बास, हिम्मतें देता है मुझको भी खुदाए अब्बास। मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं और मैं हूँ मुख्तार, मेरे नाम में भी शेर नहीं। मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं, मैं हूँ मुख्तार, मेरे नाम में भी शेर नहीं। एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर करके कलेजे से लगाया था मुझे, वाकया करबला का भी सुनाया था मुझे। मकसद ज़ीस्त मेरा क्या है बताया था मुझे, मकसद ज़ीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे और जिंदा औलाद अली का कोई कातिल न रहे। मकसद ज़ीस्त मेरा ये है कि बातिल न रहे, जिंदा औलाद अली का कोई कातिल न रहे। जो तमन्नाए हुसैन इब्ने अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत है मिली उसने कहा, जिसके दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा। कौन? जिसके दादा भी अली खुद भी अली। कौन? मौला सैयद सज्जाद, चौथे इमाम, नाम तो अली है। सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, ये तो अलक़ाबात है मौला के, नाम है अली। जिसके दादा भी अली,
जो तमन्नाए हुसैन इब्ने अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत है मिली उसने कहा, जिसके दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा, मेरे होठों के तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, मेरे होठों के तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, मेरे होठों के तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, हुरमला का मुझे सर काट के ला दे मुख्तार। ये जो आप कलाम सुन रहे हैं, अब तो आपने मुख्तारनामा देख लिया, सीरियल आ गया, ये सीरियल से पहले का कलाम है। सिल्वर जुबली आपकी, हाँ सिल्वर जुबली आपकी होगी अगले बरस, और ये कलाम, इस कलाम की सिल्वर जुबली हो गई है। और बस मुझे कुछ बंद याद है तो मैं वो पढ़ देता हूँ और आपसे हैं बहुत कलाम है आप नहीं इंशाअल्लाह मौला अगर कबूल फरमाएंगे और यहाँ मेरी नौकरी लिखी होगी तो मैं जरूर हाजिर होऊंगा। हाजिर करता हूँ जो तमन्नाए हुसैन इब्ने अली। अब जनाब मुख्तार का जवाब मुलाहिजा फरमाए। जो तमन्नाए हुसैन इब्ने अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत मिली उसने कहा, जिसके दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा, मेरे होठों के तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, हुरमला का मुझे सर काट के ला दे मुख्तार। जनाब मुख्तार कहते हैं हाँ तहारत ही तहारत के तरन्नुम के लिए, इल्म कामिल के लिए, इल्म के कुलसुम के लिए, और कुरान इमामत के तकल्लुम के लिए, लबे सज्जाद पर हल्के से तबस्सुम के लिए, लबे सज्जाद पर हल्के से तबस्सुम के लिए आसमानों की तनाबों को हिला सकता हूँ। हुरमला क्या है जमाने को मिटा सकता, आसमानों की तनाबों को हिला सकता हूँ। हुरमला क्या है जमाने को मिटा सकता हूँ। मेरे सज्जाद से जिस शख्स को बेजारी है, खुल्द में जाए वो किस तरह के वो नारी है। खुल्द में जाए वो किस तरह कि वो ना, दोनों माना आप समझ सकते हैं, जहन्नम वाला भी हिंदी वाला भी। खुल्द मेरे सज्जाद से जिस शख्स को बेदारी है, खुल्द में जाए वो किस तरह के वो नारी है। तेगे मुख्तार की हर ज़र्ब बहुत कारी है। हुरमला आज तेरे कत्ल की तैयारी है। बोलो भाई बोलो खुल के। मुल्तवी हो गया, मैं किसी भी बंद पे माइक छोड़ सकता हूँ कि मुझे सारे बंद याद नहीं है, तो कोई भी बंद आखिरी हो सकता है। तो जरा अच्छा, हुरमला आज तेरे कत्ल की तैयारी है। काबिले दीद हर एक समत का मंजर होगा, आज शब्बीर का कातिल तहे खंजर होगा। नारे सलाम। होने जा रही है, आप लोग शरीक हैं। ये काम आएगा। आयाज भाई आइए। 5 मिनट लगेगा, आप लोग ये रुकें, वो जब पूरा हो जाए। अभी गरम करवा के लगाते हैं। अगर आप कहिए तो रुके, कहिए तो अरे ये सब चले जाएंगे, 2 मिनट बांट दो, फिर नमाज पढ़िएगा। मुरादे के बाद नहीं ना, वो जमात पढ़ा देंगे, जमात पढ़ा देंगे फिर से। आयाज भाई नमाज पढ़ा देंगे, जमात पढ़ लेंगे हम लोग। ये बांट दे, चले जाएंगे मोमिन सब ना। अवार्ड बांट दे, फिर आप एक जमात और पढ़ा दीजिएगा, हम लोग पढ़ लेंगे बाद जमात। आयाज भाई पढ़ा देंगे, तो जमात पढ़ाते हैं यहाँ पे। मौलाना से जमात करवा देंगे। अभी बाजमात नमाज होगी और आप मोमिन यहीं रहे, बस क़ुरा होने जा रहा है। अपने अपने इनामात जिनके जिनके क़ुरा में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम जिनके किस्मत में क़ुरा के ज़रिए इनाम है वो निकलेगा, वो लोग ले लें। और उसके फ़ौरन बाद अभी बाजमात नमाज होगी, जिसको मौलाना अयाज़ आलमपुरी साहब नमाज पढ़ाएंगे। नाम जो
हाँ पर्ची निकालिए। पर्ची निकालिए, बस एक एक करके निकालते जाइए, बोलते जाइए नंबर। किसी बच्चे से निकालो नारे सलवात। अपनी अपनी पर्ची आप लोग जो है याद रखिएगा। 16 नंबर की पर्ची का कोई यहाँ पर मौजूद है? 16 नंबर पर्ची। 16 नंबर की पर्ची वाला मौजूद नहीं है। दूसरी पर्ची 34। माशाअल्लाह, नारे सलवात। ये 34 भी पर्ची निकली है। ये कौन निकाली? 90 नंबर की पर्ची किसी के पास है? 90 नंबर की पर्ची। एक नंबर पर्ची, एक नंबर 18 नंबर। हाँ ले आइए 56 नंबर। ये क्या है? 18 ये 18 है। 56 नंबर। एक नंबर। हाँ। एक नंबर भी एक नंबर ले ली गोलू भाई। 56 नंबर। 56 50 6 56 51 नंबर की पर्ची है। देखिए लाइए। किसका है ये? औरतों में क्या? ये दे ये भैया ये 51 नंबर। भाई ये क्या इधर है जो इनाम जिसका इनका इधर है? पर्ची दे ले। 54 नंबर कोई है? 88 नंबर। पर्ची दे दो। पर्ची 88 नंबर। जितनी पर्ची निकला इनाम की ले लो। आपकी क्या आई? भाई सलवात भेजिए भाई। अल्लाह 26 नंबर। 26 बच्चे के आगे आ जाओ भाई। चलो उधर जाओ, ले लो। 26 नंबर दो। सलवात भेजिए। 65 नंबर। ये फूल पैर के नीचे आ रहा है, इसको उधर। 65 नंबर। कितनी है? 65 नंबर। लो बच्चे को तो उधर लो। 70 नंबर ये हमारी है। 70 नंबर आपकी है। ले भैया दे दो उधर, दे दो उधर। जो पर्ची खुल के ले लो। 66 नंबर। 66 25 नंबर। रात में कोई नहीं बचा सकता। 25 लाइए। 25 नहीं है 25 3 है। 42 नंबर। 42 नंबर। 80 नंबर। 2 नंबर। धीरे है औरतों में है। 42 2 नंबर। 2 नंबर है ये। 42 हाँ 42 दे दो। 87 नंबर। 87 हिला के 38 नंबर। 38 87 लो 87 डालो। ये लो। 38 नंबर शायद लड़की का है। नहीं हम मिलेगा। ले आओ 50 नंबर। 50 नंबर ले आओ। 15 नंबर। 15 कितना? ये लो 50 लो 50। 15 नंबर। 15 औरतों में मस्तूरात में 69 69 नंबर। 69 नंबर 69 82 नंबर। अंतर क्या? 69 हाँ लो 82 नंबर। तुम्हारा कौन सा कितना नंबर? 29 नंबर। 32 किसका है? 29 नंबर।
77 नंबर ले आइए 77 नंबर ले आइए। 76 नंबर 77 76 के बाद 77 76 ये लीजिए 76 इनको दीजिए। 76 इनका लास्ट 5 आखिरी बार कितना है? 78 नंबर 78 है। 78 कहाँ है? नहीं 78 था। बोला था हाँ निकाल लिया। हाँ निकाल लिया। 86 नंबर 86 नंबर आखिरी बस 5 हैं। 23 नंबर 23 और कितने बचे? 3 बताए 3 बचे बताइए। भाई ये पकड़िए 3 बचे बता दीजिए। निकलेगा ये 60 नंबर 60 हाँ दे दो। हाँ नहीं और तो कौन 60 नंबर पर्चे का और है 60 नंबर 60 है 60 में खत्म। ये क्या है? 47 ये लो भाई ये लो 16 नंबर नहीं। बस इसके बाद इनाम खत्म हो गया है। अब नहीं है 16 नहीं निकला था। दुआ करा दे आइंदा साल के लिए मुलतवी करा दे दुआ। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जश्न इंशाअल्लाह यहाँ पर ख़त्म नहीं किया जा रहा है, अगले साल तक के लिए मुलतवी किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले साल सिल्वर जुबली के उन्वान से ये जश्न का बाकायदा एहतमाम किया जाएगा और तमाम मोमिनीन और मोमिनात और बाहर से आने वाले और तमाम जो भी लोग जहाँ से भी आए उनको कोई अगर तकलीफ़ हुई तो अंजुमन गुंज अब्बासिया उसके उनका शुक्रगुज़ार है और उनकी जो कमियाँ वमियाँ हुई हैं वो इंशाअल्लाह आइंदा पूरी की जाएंगी। और कोई भी किसी को अगर कोई किसी तरीके की कोई तकलीफ़ हुई है इस जश्न में तो इसका सिला मौला अबुल फज़ल अब्बास जनाब फ़ातिमा ज़हरा आपको ज़रूर अता करेंगी इंशाअल्लाह। और आइंदा साल फिर इसी तरीके से जश्न गुंज अब्बासिया जश्न अब्बास मनाएगी। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साआ व फी कुल्ले साआ वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला